And yes, there is a bit of moisture around in the morning, but teams who have overcome the new ball have done really well. It has been close to 240, 250 mostly, and it has been chased down if the top 6 have scored. Yes, runs on the board is all that matters at this wicket of Rawalpindi. You got to spend some time in the middle. But talking about the tosses in Pakistan Cup so far, no captain has decided to bat first out of all the 20 games we have seen so far. And let's see what happens in this very game that is coming up between Lahore Blues and Rawalpindi region. We have Ali Yunus all in readiness at the center of the wicket with both captains for the all-important toss. Yes, it's toss time for round number 6 of the Pakistan Cup. I've got the two captains alongside me. Imran Butt for Lahore Blues, Umar Amin for Rawalpindi. Mr. Iftikhar Ahmed is the match referee, and it seems like Umar Amin is going to spin it. Let's do it. Heads is the call. Tail did it. Umar Amin has been very lucky with the toss. Umar, एक बार फिर टॉस जीते हैं, क्या करेंगे? क्यों? बॉलिंग. क्या वजह लग रही है आपको? पिच अच्छा लग रहा है? जो एक नॉर्म चल रहा है, थोड़ा सा अर्ली ऑन जो मॉइस्चर है उसको यूटिलाइज करेंगे. ये पिच अंडर कवर्स रहा है. आप बीइंग द लोकल गाय, आप क्या चेंजेस देख रहे हैं इस पिच पे? आई थिंक अर्ली ऑन स्विंग होगा. इतनी ज्यादा शायद सीम मूवमेंट ना हो, लेकिन इन द एयर काफी स्विंग होगा. 3 मैचेस रावलपिंडी जीत चुके हैं, बट स्टिल आप चाहेंगे कि ये मैच जीतने और थोड़ा सिक्योर कर लें सेमीफाइनल स्पॉट? बिल्कुल यही टारगेट है कि आज हम लोग मैच जीत के अपना सेमीफाइनल का स्पॉट जो है वो सील करें. तो आप बॉलिंग फर्स्ट, आप क्या चाहेंगे, कितना आपको चेज करने को मिले? एनीथिंग अंडर 200. अंडर 200. एनी चेंजेस इन द टीम? देयर आर अ फ्यू चेंजेस. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं क्योंकि मुबस्सिर अनफॉर्चुनेटली सुबह अनफिट हो गए वार्म अप में, तो उनकी जगह हम लोग आज 4 पेसर्स के साथ जा रहे हैं और 1 स्पिनर के साथ. ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. नॉट लकी विद द टॉस. जीतते तो क्या इरादे थे? ऑब्वियसली बॉलिंग करते क्योंकि अर्ली स्टार्ट है, थोड़ा सा मॉइस्चर का फ़ायदा लेते हैं, बट इट्स ओके. अगर आप अच्छा स्टार्ट करें एज ए बैटिंग यूनिट तो हमने देखा कि यहाँ पे बैटिंग सेकंड भी हारी हैं मैचेस, सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अस. आपने स्टार्ट का जिक्र किया कि आपका बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ही स्टार्ट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन ये मिडिल ऑर्डर है जहाँ पे टीम फंस रही है, तो कोई ये कंसर्न है आपकी टीम के लिए? जी बिल्कुल है, और उसके ऊपर हमने डिस्कशन भी किया, एक चेंज भी बीच में लेके आए हैं, तो होपफुली आज जैसा नहीं होगा. 5 में से 3 मैचेस हार चुके हैं, तो ये मैच जीतना भी जरूरी है और नेट रन रेट भी बेहतर करना है. जी बिल्कुल, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आई बिलीव कि तब आपकी बेस्ट गेम जो है ना वो अपीयर होती है, तो होपफुली दिस इज द डे फॉर अस. और टीम न्यूज़? Couple of changes for us. All the best. Thank you very much. Right, the news from the toss is that Rawalpindi captain Umar Amin has won the toss and they will be bowling first. We have got the news from the centre. That's a Rawalpindi side opting to ball first. We have a few changes for the Lahore Blues side. We have Zaid Alam, Kashif Bhatti and Salman Irshad coming in. Some impressive lineup. Imran Butt is the skipper. Rizwan Hussain, Umar Siddiq, Hussain Talat. Some very experienced players we have seen in the ranks of Lahore Blues. Talking about the local side, the Rawalpindi, Razaul Mustafa comes in, Awais Anwar and Bilawal Bhatti, the experienced fast bowler. Other than that, it has been the usual fixture. Umar Amin leading the side, Zishan Malik and Abdul Fasi, the opening batters. Well, we're about to get underway at the Rawalpindi Cricket Stadium with the 2 opening batters coming in the middle. Imran Butt, the experienced Imran Butt, leading the side of Lahore Blues and has been among the runs in this tournament. 265 runs, the second leading run getter of the tournament. Joining me in the commentary box, Pakistan's ex-captain Salman Butt. Good to have you, Salman. It's a very good morning from the Rawalpindi Stadium. Very good morning to you, Naman, and everybody watching. Day is bright, all beautifully set up for this encounter where Lahore will be looking to win. Imran Butt, 72 games for him, healthy average of 40, and he's been scoring in the last few games, scored 100 and a 90. He has got 500s to his name, a good strike rate of close to 80. And on the other end, it is Rizwan Hussain, the young dasher, 49 games for him. Average is 30. I would like to see this average go up a bit because he has immense talent, a very healthy strike rate of close to 100. And both of them need to put up a show. Lahore previously, Kashif Ali, the bowler, who has been doing a good job along with his partners, the Pindi fast bowlers, have been really on top of their game. So for Lahore, it's a absolutely must-win game
to remain in the race of semi-finals. And this opening pair needs to put up a show. New ball will be very important for both the teams. 9 wickets already in the tournament for Kashif Ali. He would want to carry on his form in the game against Lahore Blues. One slip in place. Kashif Ali with the ball number 1. This one came in. It's a good start. Off the mark goes Lahore Blues and Imran Butt. It's always so good first up in the innings to get something off the blade. Rizwan Hussain, the left-handed opening batter. He is immensely talented. Has got 174 runs in the Pakistan Cup so far. He's got leaner, he's got fitter. It's always so good to see the players working upon their fitness. 2 slips in place for Kashif Ali. Oh, that's a beautiful delivery. Going away from the left-handed batter. And every now and then you're going to expect that at this Pindi pitch. Both the first deliveries have swung the same direction, into the right-hander, away from the left-hander. Both angles were well created by the bowler. This time coming around to the left-hander, angling it in and then moving it away. It's always a difficult angle. There we see a very steady and a balanced run-up, a good approach to the bowling crease, and his eyes focused where he wants to pitch the ball all the way. That's good to see. It's a good angle he's creating. The left-hander will have to be careful early on. You're absolutely spot on. And tell you what, earlier on in the innings, as a bowler, you would surely want to make the batter play at everything, because in that case, you're surely going to get the chance of an outside edge, a ball carrying to the slip fielder or the wicket keeper. So you should always try to make the batter play. In the air, right in the hands of the fielder, in and out. Umair Masood at the point region has dropped an absolute dolly. Well, what do you say to such a fielding effort? And from a guy who's originally a wicketkeeper, he should just have taken that without any bother. Maybe with one eye closed, he could have caught it. And he is letting his bowler down early on. And this guy could be very dangerous, Rizwan Hussain. A little bit of grip and easily lobbed. I don't know what to say. Poor fielding effort that. Once again, he's beaten outside off. The ball is swinging away, and Rizwan very careless so far. And absolutely, you've got to make sure that earlier on in the innings, you shouldn't be playing those half-hearted shots. That wasn't a conventional hit, that was just a half-hearted push. And that was, as Salman mentioned, a very conventional catch. Going through the shot, going straight in the hands of the fielder, in and out. End of the first over, just one with a drop chance. The worrying sign is not that the catch was dropped. The worrying sign is that the batter playing a poor stroke and the fielder making a poor effort, both are least bothered. The very next ball, he again goes for a shot which is not on against the swinging ball. And the fielder, well, they don't come much easier than this one. This could have been a brilliant start. Now it's Awais Anwar from the other end, from the pavilion side,
2 matches, 2 wickets, early days in his career, is just playing his second game. Economy rate of 6. Well, all this will be determined after a few games, how good he is. But he has the chance with the new ball, and this pitch, we all know, it helps the fast bowlers. 2 slips in place for OS. He's up against the skipper of Lahore Blues, Imran Butt, who has been in good form throughout the Pakistan Cup. Once again, a good channel to start. That length is very key. At all phases of the innings, you've got to make sure that you bowl in the right channels and especially maintain a good length. Mr. Tariq Rashid officiating in today's game. And with him is Mr. Imran Javed. That's in the air. Fielder running underneath that one. Another drop catch. It went straight in the hands of the third man fielder. And he has spilled yet another dolly. First up, it was Rizwan Hussain. Now it's Imran Butt. Within the span of 8 deliveries, both of these openers, they're getting a chance. Very generous start there from the Rawalpindi fielders, giving a chance to both the batters earlier on, and both easy takes. This one again was cut by Imran Butt and carried to a decent height, and the man came in, had his opportunity, and I must say at this level, this is an easy opportunity. But Rawalpindi boys, I don't know what they are up to. The kind of start they have given to Lahore Blues is very generous. Earlier on in the innings, if you are being provided with such opportunities, you got to grab that, because had they gone 2 wickets within the span of the first 8 deliveries, Lahore would have been pushed to the back foot. And these are the small margins. You got to win. You got to make sure that you take the opportunities. Of course, you've got to take these opportunities. This one was wide down the leg side. And it is very important for Rawalpindi to win this game and make sure they spot for the semi-finals. But the way they have started, Lahore possibly could escape this situation, because the ball is doing a bit. This one is again off the inside edge, goes down to the fine leg. And Rizwan Hussain and Imran Butt both living dangerously so far. And what we have seen at the number of wickets we have seen in Pindi Stadium, that every single time if you spend some time in the middle, you make sure that you get to a good total. But both of these batters, they have got a chance each. First up, it was Rizwan Hussain, then Imran Butt. Played with a straight bat. That's better. That's better from Imran Butt. But Rizwan Hussain, it was first up. The catch was dropped by Umair Masood through the point region. Kashif Ali, it was a driving length, playing away from the body, and Umair Masood spilled the chance. And after that, Jandad Khan, a third man, came racing in but couldn't grab the catch. Only they have themselves to blame. 2 easy chances, both given away. This one is cut to point again, and it's Umair again. This time he manages to stop the ball, not cleanly, but there is no damage done. Well, Imran Butt has been the prolific run getter for Lahore Blues. 265 runs in this tournament, 128 against Fatah, 94 against Peshawar. The leading run getter of Pakistan Cup 2023. They have dropped the big face. This man has been among the runs. That's a solid push towards covers to end the over. 2 done, 4 without the loss of any wicket.
Once again, the solid length from Kashif Ali. Well, Kashif has been bowling good lines, and so has done the other bowler from the pavilion end. But two chances created by both the boys, and both times unsuccessful to take advantage of those. Important for Lahore that they play out these two new balls, at least the first 8 to 10 overs. They could manage to keep up this partnership, things could ease up for them. Once again, Rizwan Hussain is refusing to play correct cricket. He's just going after, following his instincts, edging another one, this time 4 towards third man. Getting runs, but not very elegant. Absolutely not a convincing way to get a boundary. Once again, playing away from the body. No confidence whatsoever, no foot movement whatsoever. Just throwing the kitchen sink at every delivery. That's the reason he has stayed where he is for a number of years now. He's been part of the domestic circuit for maybe close to 10 years now. But no success at the top level. And the reason is he's playing as if he was playing in his first year. The same things have been repeated throughout. Very minimum feet, just backs his instincts of going big. But when the situation and the pitch demands differently, he has no different answers. The answers have been the same. Yeah, that makes you a better player on how you adapt to the situations, how you adapt to the conditions. And that is what these guys should have been doing at this level, the premier domestic level, that you should adapt to the situation in a better way. The ball's moving around. You got to spend some time at the crease. Steps out, that's gone up in the air. Fielder coming underneath that one, but that will land in the no man's land. Once again, trying to create a shot out of absolutely nothing. Maybe Lahore also need to win by a margin of 287 runs. That's the way Rizwan has started. It's absolutely beyond comprehension what sort of a batting attitude this is. Lahore already has been dented always when they have played the new ball with the 3 or 4 wickets in the first power play, especially here at the Rawalpindi Stadium. So all they need to do, they just need to do is play out the new ball decently. And apart from Lahore Blues, they are the only side in the Pakistan Cup who has got 4 times the score of 50 plus in the power play against Lahore, Faisalabad, Fatah, Peshawar, Multan. So they have got more than 4 times a score of 50 plus in the power play. So probably that's the intent Rizwan Hussain is trying to show. Yeah, once again, pushing it towards the covers. A dot ball will end the over. 3 done, 10 without the loss of any wicket. Well, Lahore, they played against Multan at the Aptabad Stadium. It was a good game, but Lahore ended up losing that match on Duckworth Lewis. Multan, they're having a good game, the good run in this tournament. Lahore scored 257, courtesy half centuries from Hussain and Rizwan. That was another good delivery, good start to the over. Where Thanwa getting the ball in, but Multan, they were up on the DLS method in the run chase. 82 for Shajil Khan, 33 of 35 for Sohaib Maqsood, 164 for 3. They won the game by 37 runs, the Multan side. So good to see the teams making sure that they're ahead of the equation on the DLS method. Once again, playing away from the body. Maybe there is a definite plan to go after the bowling, because even Imran Butt, he's just going after the ball, which wasn't there for the stroke. It was a length delivery moving away. It's a high arm action from the tall bowler, and the ball was wide
moving further away. And Butt went after it, unable to connect, was lucky, did not edge it. Awais looks a good prospect. Good height, high arm action, swinging the ball. Again, well bowled. Good channels. If he can keep consistently in these channels, then success will be around the corner, provided the fielders do a better job next time. Salman, you've mentioned about the plan, the approach, the intent that has been shown so far. But what do you make of this, that if you come out to bat, the certain plan has been given to you by the team management, but if you go out in the middle and the ball is swinging, wouldn't that just be difficult for you to attack right from the ball go? And that is where your adaptability comes into play. Well, there's one thing called intent and the other is application. Oh, that's a great shot. Short and wide, and this time, but the inform Butt cuts it over point. Gets the boundary, providing a lot of room on the off stump, and also the length was there to hit this stroke. And Butt took full advantage. He's coming off 100 and a 90. He would be watching the ball better than most batters at this time. Well, this one had both intent and the application written all over it. Getting a boundary that must be a confidence booster for Imran Butt. It was thanks to the Rawalpindi fielders that the plan wasn't executed, whatever Lahore was carrying. Had they taken both the catches, the plan would have been different. It's always when you go in, you have a look, and then you decide how you have to get to your plan, because there is not one way. There are different ways of getting to the same destination, and you have to find the one that is suitable for you. This one on the pads and flicked away by Butt. This will be another boundary. The wheels are coming off now. Awais, this over, maybe he's getting impatient. He has to be consistent on his line because Imran is experienced batter and he is also in form. That was a poor ball, easy pickings for the likes of Imran Butt on the pads. Flicked, good flick of the wrist. Placement was perfect, the timing was immaculate. Gets a second boundary of the over, Imran Butt. And now, seems like the plan's working. And that has been totally helped by the poor bowling and the fielding effort of the Rawalpindi side. Played with soft hands. Out to the fielder at backward point. 8 of the over. 18 without the loss of any wicket. Rawalpindi played last against Karachi Whites, who have just peaked at the right time in this tournament. They've got a mammoth total of 357 against the Rawalpindi side. 364, I beg your pardon. Courtesy 179 from Saim Ayub. This boy has been in the great run scoring form. Rawalpindi with 169 for 5 at the end of 27. Handing the victory over to Karachi Whites by 72 runs on the DLS method. Once again playing with soft hands. Once again with very little feet movement. Yes, Rizwan plays with hard hands and there's a definite thing in his mind where he's just watching the ball. If it is in his zone, he will go after it with full force. And the fielders, they have to be vigilant because anytime there's going to be another chance coming up. The way he's looking, he's only waiting for the ball to be closer in his zone. Wants room. And that is where Kashif has been good. Hasn't provided him any room in the first 2 deliveries. But surely when I see Rizwan playing these couple of balls, he's definitely looking for something wide and full, and he'll go after it, no matter what. Salman, at this point, there comes a debate that at what areas you should bowl. If you are an attacking bowler, you will make sure that he drives for an outside edge. But if you are following a defensive approach, you can target his body line. Again playing away from the body, but that's a good fielding effort this time. Yeah, it's bowling dot balls is not a negative line. Bowling dot balls builds up the pressure, asks the batter to do something which he doesn't want to do.
and then there will come a mistake. So this is the pitch that we see. Abrasive today. The cracks opened up. The groundsman has done a wonderful job keeping it dry. It rained for a number of hours the night before, and still he has been able to keep it to very less moisture, and that also we know it's cool. It's that time of the year. And that's a right area, that's a right channel. You've rightly mentioned about Rizwan Hussein's approach first up, and then these guys, they deserve some credit too, making sure that they produce an absolute belter of a surface at the Rawalpindi Stadium. Yes, a lot of impressive things about the wicket. There is the head curator, and he has done a great job. Sarfaraz, he's been very vigilant with his team, and they've kept the pitches in very good shape. There we see again, Fuller one moving away, no feet at all. Rizwan, no clue what to do. And Kashif, continuing on the good line, is not giving any room. This time we see, if you are an opening batter and you get beaten of a full delivery with both your off and middle stump exposed, the technique needs to be bettered, definitely. It's too much visibility of the stumps for an opening batter. Pushed out to the point fielder, a maiden to end the over. Good display of fast bowling by Kashif Ali. 18 still on the board. Conceded 2 boundaries of his last over of F. He'll continue. Still got 2 slips in place. Just his second game. He looks a good prospect, just has to be patient and just bowl in the right channels. Both the boundaries that he got hit, maybe got impatient. He's new. This one again, well bowled, swinging, takes the outside edge. There is no gully, luckily for Imran, but it goes to third man for just 1 run. I wonder that on this pitch where there's spongy bounce and some movement, why we haven't seen a gully so far in the tournament. Not even once. And there are a number of balls that have gone through gully which could have been caught. None of the captains earlier on, they just come and they win the toss and they say we are going to bowl first. But we haven't seen a gully position in the whole tournament. Yeah, you're spot on. We have seen the number of deliveries flying through the gully region just as the last ball. So being a captain, that is where your thinking skills, your adaptability comes into play. Your approach has to be spot on. Because these are the fine margins you have to win. What a shot. Rizwan Hussain through the covers and getting a boundary. Well, this time he connects one, and when he connects one, he looks spectacular. But the movement remains the same, just that the ball is in his zone. And this time, only 1 stump was visible. So improvement of covering the middle stump, getting closer to the ball, driving it on the up. But that is what he is, that is what he carries. When he connects, he looks great. Otherwise, he looks pretty shaky. Plays with the hard hands. This one was also driven really hard. Again playing away from the body, but we'll find the fielder. Been among the wickets in this tournament. Been a decent prospect. Got 6 wickets at the Rawalpindi Stadium. 10 wickets in the tournament for Hunain Shah. Hussain Talit is always very animated. So does Salman Irshad. Yeah, that's better. That's better.
The line has to be within the stumps. No matter at what surface you're bowling, no matter at what opponent you're bowling, you've got to make sure that your target line should be the stumps. Especially to a batter who is exposing all three stumps to you. Taken out a slip now, just one slip in place. Kind of a wide first slip. Once again, some hint of movement from the deck. Yes, he is not comfortable when the ball is coming in onto his thigh pad and this abdominal region. He hasn't seemed comfortable at all. All he wants is room outside the off stump so he can swing his arms hard. That's what he's been looking to do. And the bowlers who have bowled to him within the middle stump and the leg stump have been better off. Whereas for left-handers, usually if you bowl this line, you go for runs. But here, Rizwan, he hasn't been comfortable on that line. Yeah, that's better. This has been a good over post boundary. Bowling in the right channels. A dot ball will end the over. 23 at the end of 6. ज़ैद आलम आज अपना पहला मैच खेल रहे हैं लाहौर ब्लूज के लिए। काफ़ी तब्दीलियां हैं दोनों ही टीमों में। दोनों टीमों का आज बॉलिंग अटैक है वो तब्दील हो गया है। रावलपिंडी ने आज नए विकेट कीपर को मौका दिया है, रज़ा को, और उसका असर जो है वो पहले ही ओवर में देखने को मिला जब कैच गिरा दिया गया पॉइंट पोजीशन पर रिजवान हुसैन का, क्योंकि दो विकेट कीपर्स के साथ खेल रहे थे और रज़ा उल मुस्तफ़ा ये विकेटों के पीछे हैं, और जो दूसरे विकेट कीपर थे उमर मसूद वो पॉइंट पर थे, उन्होंने कैच गिरा दिया। उनको रास आई नहीं ग्लव्स के बगैर फील्डिंग करना। अली यूनुस भी कमेंट्री बॉक्स में पहुंच गए हैं रावलपिंडी की सर्दी से महसूस होते हुए, और अचानक बहुत तेज हवा चलना शुरू हो गई है। कुछ देर पहले तक पसीना आ रहा था लेकिन अब हालात जो हैं 180 डिग्री मुख्तलिफ। या तारिक भाई, ये नहीं है एहसास हो रहा है कि महसूस होना है या बचना है इस ठंड से, क्योंकि बहुत ठंडी हवा सुबह से चल रही है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बादल हैं लेकिन हवा उतनी तेज नहीं है, बट स्टिल आप अगर ग्राउंड में मौजूद हैं तो आपको फील जरूर होती है कि कितनी ठंडक है इस हवा में। पुल करने के लिए गए, यहां पर कैच होना चाहिए, हाई बॉल है और गिरा दिया जीशान मलिक। ये क्या किया देखिए, इस वक्त ये देख नहीं सकते बॉलर और अपने कप्तान की जानिब, क्योंकि इससे आसान नहीं आते ये कैचेस जो हैं। लेट हो गए थे यहां इमरान बट पेस और बाउंस पे, और ये तीसरा ड्रॉप चांस इस पावर प्ले में। जहां ऑलरेडी दो कैचेस इससे पहले ड्रॉप हो चुके हैं। रावलपिंडी जरूर ऊपर है टेबल में लाहौर ब्लूज से, लेकिन अगर ऐसे चांसेस देते रहेंगे, इतने आसान चांसेस देते रहेंगे, गलत शॉट और उतनी ही गलत फील्डिंग, बहुत देर बॉल में हवा में रहा था, और जीशान मलिक का शुमार बेहतर फील्डर्स में होता है, और अगर आप ऐसे ही कैच छोड़ते रहेंगे तो वो पोजीशन आपसे छिन जाएगी इस मैच के बाद। यहाँ जो है विकेट कीपर उनको जो है उनको भी आना चाहिए था इस तरफ, क्योंकि विकेट कीपर जो है दायरे के अंदर जब इस तरह का कैच आता है, खास तौर पर जो कि बैटिंग एंड की तरफ हो, तो विकेट कीपर आपके लिए ज्यादा महफूज ऑप्शन होता है। ये दूर नहीं थे विकेट कीपर से, या क्योंकि ज्यादा ऑप्शन होते हैं, उसके बाद ग्लव्स होते हैं तो ज्यादा आसानी से विकेट कीपर ये कैच ले सकता था, लेकिन जीशान मलिक का शुमार भी बेहतर फील्डर्स में होता है। डिसअपॉइंटेड होंगे दूसरा कैच इनकी बॉलिंग पे। ऑल्दो रावलपिंडी, अभी हम बात कर रहे थे कि पॉइंट्स टेबल पे थोड़ा सिक्योर जरूर है, लेकिन उनको मैचेस अभी भी जीतने हैं, क्योंकि दूसरी टीम्स अगर लाहौर ब्लूज को ये मौका देंगे
ये मिस आउट नहीं करेंगे और 3 मौके ऑलरेडी पहले 7 ओवर्स में दे चुके हैं। एक पॉइंट पे, एक थर्ड पे और अब स्लिप में एक कैच, और 2 कैचेस जो हैं वो काशिफ अली की बॉलिंग पे ड्रॉप हुए हैं। उमर उमीन ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ हंस सकते हैं। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, मिड इन ओवर, जो विकेट मिड इन आसानी के साथ हो सकता था काशिफ का। 7 ओवर्स के बाद लाहौर 23। दोनों ही बैटर्स को वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन मौका दिया है। कैचेस ड्रॉप हुए दोनों ही, इमरान बट और रिजवान हुसैन के दोनों 11 रन पर मौजूद हैं। अच्छी फॉर्मेडेबल साइड है, सॉलिड साइड है। उठा खेला, ये बड़ा शॉट है, ये छक्का है। गेंद जो है सीधी स्टैंड से टकरा गई और ऐसी आवाज आई थी यहां रिजवान के बल्ले से कि इसे जाना ही था सरबसर। यहाँ थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो गए बॉलर यहाँ पे। आसान शॉट, आसान लेंथ, आसान जोन में बॉल कर दिया और ये ढूंढ रहे थे यही वाला लेंथ। ऑल्दो गेंद बाहर को निकल रहा था, थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व जरूर था, लेकिन इतनी अथॉरिटी से खेलने, अपने फ्रंट लेग को क्लियर किया और सबसे अच्छी बात है कि सीधा खेलने गए। पावर दिखाई है अपनी रिजवान हुसैन ने। बिल्कुल आपने सही कहा, ताकतवर स्ट्राइकर हैं और अच्छी फॉर्म में भी हैं रिजवान हुसैन। फर्स्ट क्लास का पहला मैच खेले थे कायदे आजम ट्रॉफी का लाहौर वाइट्स के खिलाफ, उसमें सेट होकर आउट हुए और उसके बाद से ये टीम से बाहर रहे। लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट जो है ये इनकी खासियत है और ये दिखा रहे हैं अपने जलवे। यहाँ बैकफुट पे अच्छा खेलते हैं। लॉन्ग लेग है, डीप थर्ड मैन है, रिवायती फील्ड है पावर प्ले की। दोनों ही बॉलर जो हैं बदकिस्मत रहे। काशिफ की गेंद पर एक कैच गिरा, उवैस सनवर की गेंद, काशिफ की गेंद पर दरअसल 2 कैचेस गिरे। उवैस सनवर जो हैं इनकी गेंद पर एक कैच गिरा। लेकिन यहाँ अच्छा बॉलिंग एक्शन है उवैस सनवर का, खासे लंबे कद के हैं, बुलंदी से गेंद को रिलीज करते हैं। अच्छा लग रहा है उनको नई गेंद करते हुए देखना। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान कप की अगर बात करें तो फास्ट बॉलर्स की खास बात रही है, लेंथ बहुत शानदार अपनाई है। लेकिन अगर कैचेस नहीं होंगे तो फास्ट बॉलर या बॉलर क्या करेगा। 3 कैचेस ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ड्रॉप हो चुके हैं। ये पहला कैच था, ये सिंपल चांस था, सीधा ही गया था पॉइंट के फील्डर के पास, थोड़ा जल्दी करके झपट पड़े थे। दूसरा भी आसान कैच था, थर्ड के फील्डर को इस लेवल पे ये कैचेस लेने चाहिए, नजरें हटा ली थी। और प्रोबेबली ये मैं कहूंगा ये भी बहुत आसान कैच था, बहुत देर हवा में बॉल रहा है। जिशान मलिक एक बेहतर फील्डर हैं, डिसअपॉइंटेड होंगे। एक ही रन यहाँ पर बन सका। मेहमान नवाजी का पूरा हक अदा किया रावलपिंडी ने। अभी तक बड़ी आसानी के साथ जिस तरह जो है 2 नई जिंदगियां मिल चुकी हैं रिजवान हुसैन को, इमरान को भी मौका मिल चुका है। ऐसा कम देखने को मिलता है कि 2 बैट्समैन हैं यके बाद दीगरे इतने कैचेस क्रिकेट मैच में गिरा दिए जाएं एक प्रोफेशनल टीम की जानिब से। और दोनों ही फॉर्म बैट्समैन हैं इस पे तुर्रा। इमरान भट्ट दूसरे नंबर पर हैं रन्स की तादाद के लिहाज से। अच्छी डिलीवरी, बाल बाल बचे, अच्छी रिस्ट पोजीशन थी, लेट स्विंग हुई बाहर की जानिब। शानदार बॉलिंग उवैस सनवर की। छोटा स्विंग, थोड़ा होल्ड अप किया अपनी लाइन को पढ़ने के बाद, थोड़ा सीधा रहा है बॉल और हल्की सी मूवमेंट, हल्की जैसे आपने कहा थोड़ा सा बाहर निकला है। और ये स्विंग जो छोटा स्विंग होता है ये ज्यादा खतरनाक होता है बॉलर के लिए।
अच्छा ओवर है ये, ऑल्दो महंगे साबित हुए लेकिन बॉलिंग अच्छी किया वेस्ट ने। 8 ओवर्स के बाद 30 बगैर किसी नुकसान के लाहौर ब्लूज। एक बार फिर अच्छी डिलीवरी, रिजवान जो है बिल्कुल 19 कर दिया। इस गेंद ने मूवमेंट का कतई तौर पर उनको अंदाजा नहीं हुआ। ये देखिए ऑल एंड्स अप बीट करती हुई गई, बासानी इनकी बेल्स को उड़ा सकती थी, इनकी मिडल स्टंप की बेल्स को। जहाँ लेंथ रावलपिंडी के स्टेडियम में जिस भी बॉलर ने लेंथ अच्छी अपनाई है उसने विकेट्स हासिल किए हैं। और काशिफ भी जो हम देख रहे हैं बार बार बीट कर रहे हैं, अनलकी रह रहे हैं क्योंकि लेंथ अपनाई हुई है, रन्स नहीं दे रहे हैं। और बोल्ड हो गए इस बार, और भी ज्यादा बेहतर लेंथ थी, आगे से स्विंग हुई और डिफेंस को चैलेंज किया उनने रिजवान हुसैन के, जिनने पिछले ओवर में बड़ा छक्का लगाया था, लेकिन यहां उनका दिफा पाश पाश हो गया। या काफी देर से काशिफ कोशिश कर रहे थे विकेट लेने की, इस बार उन्होंने सोचा फील्डर्स का सहारा नहीं लेना चाहिए। बहुत ही शानदार लेंथ पे गिरा हुआ बॉल, ऑल हैंड्स बीट हुए, पेस से बीट हुए, खड़े खड़े खेल गए, कोई फीट मूवमेंट नहीं, ऑल हैंड्स। शानदार डिलीवरी काशिफ की जानिब से। रिजवान हुसैन को वापस जाना होगा, इन फॉर्म थे, 18 रन बनाकर वापस जाएंगे, 30 पर 1। ज़ैद आलम की नया इजाफा है लाहौर ब्लूज की इस बैटिंग लाइनअप में। बहुत जल्दी उनकी बैटिंग आ गई है मुश्किल कंडीशंस में, जहां पर सीम और स्विंग मूवमेंट है। पाकिस्तान की जानिब से अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। ये 7 मैचेस जो हैं ये इनको खाल खाल मौके मिले हैं, कई बरसों में इन्होंने 7 मैचेस खेले। हर साल एक आध मौका मिलता है। ये बेहतर टेक्निक थी रिजवान हुसैन के बरक्स, जिन्होंने अपनी स्टंप्स को बिल्कुल कवर नहीं किया हुआ था। पिछली गेंद पे भी उनकी स्टंप्स एक्सपोज थी और इस बार काशिफ ने देख भी लिया था। जहां बिल्कुल ही लाइन को मिस कर गए, फीट मूवमेंट ना होने के बराबर है। जब आप इतना विकेट्स एक्सपोज करेंगे और बॉलर्स को थोड़ी मदद मिल रही होगी तो अच्छे बॉलर्स मिस आउट नहीं करेंगे। ये तीसरा मौका था, यहाँ से कंटिन्यूअसली बीट कर रहे थे, एक अपॉर्चुनिटी भी इसी लेंथ से क्रिएट की गई थी। अच्छे बॉलर हैं ये, जानदार बॉलर हैं। ये बेहतर तरीका है, लाइन को कवर कर रहे हैं और एकदम से आपको एहसास होता है कि ये पाकिस्तान कलर के प्लेयर हैं। अंडर 19 ऑल्दो, बट पाकिस्तान कलर है, अंडर 19 लेवल पे ही है। उनकी टेक्निक से अंदाजा हो रहा है कि जितनी अच्छे तरीके से लाइन कवर की है। और काशिफ अली डेफिनेटली ये वन ऑफ द पिक ऑफ द बॉलर्स हैं। इकोनॉमी रेट की अगर बात करें तो बहुत ही कम है, 78% बॉलें ये डॉट करते हैं नए बॉल के साथ। और अगर आप इतने डॉट बॉल आपकी एफिशिएंसी होगी तो यकीनन आप एक अच्छे बॉलर हैं टीम के लिए। हमारे जो HSM कॉलेज के जो बड़े मशहूर कोच गुजरे हैं अब्दुल रब साहब, उनकी बड़ी शोहरत थी लाहौर क्रिकेट में और पाकिस्तान क्रिकेट में भी कोचिंग की। वो एक बात कहा करते थे कि अपनी स्टंप्स को दिखाना नहीं चाहिए, कभी भी अपनी विकेट को नहीं दिखाइए बॉलर को। अगर आप विकेट दिखाएंगे तो फिर विकेट ले जाएगा बॉलर। रिजवान हुसैन ने वही गलती की है। यार स्पेशली नए बॉल के साथ तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं कर सकते आप।
जहां पे सीम और स्विंग हो रहा हो बॉल, तो ये क्राइम है एक। इस बार दिल का शॉट खेला ऑफ द बैक फुट, 2 रन का इजाफा ऑफ द मार्क हुए जायद आलम, और इस तरह उन्होंने मेडन से भी, विकेट मेडन से महरूम रखा काशिफ को। 9 के बाद 32 पर 1। तारिक रशीद जो हैं सर्दी से मुतासिर लग रहे हैं, जिस तरह ये दूसरे पावर प्ले का इशारा कर रहे थे। सर्दी से मुतासिर जो है लाहौर ब्लूज की बैटिंग भी लगी है। ये हर बार 50 से ज्यादा रन्स बनाते हुए आ रहे थे पावर प्ले में, आज इन्होंने 32 रन्स बनाए, एक खिलाड़ी आउट हुआ। ये इससे भी ये बदहाली होती अगर कैचेस ले लिए जाते। ये सिर्फ एक चीज जो लाहौर ब्लूज के हक में जाती है कि इमरान बट अभी क्रीज पे मौजूद हैं, ऑल्दो एक कैच इनका भी ड्रॉप, इनफैक्ट 2 कैचेस इनके ड्रॉप हुए हैं। ये इनफॉर्म है, सेंचुरी स्कोर की है, एक और बड़ी इनिंग खेली है 50 रन्स की, दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान का इस साल टॉप रन्स गेटर में। तो क्योंकि ये मैच लाहौर ब्लूज को ना सिर्फ जीत रहे हैं, इनफैक्ट रन रेट को भी इन्होंने मद्देनजर रखना होगा इनको, क्योंकि काफी पीछे हैं, नंबर 6 पे है टेबल पे लाहौर ब्लूज की टीम। काफी स्कैटर्ड फील्ड है, सिर्फ एक ही स्लिप अब रखी हुई है, क्योंकि अवैस थोड़ा हटे हैं अपनी लाइन से। ऑल्दो बॉलिंग अच्छी की है, रन्स दिए हैं, लेकिन स्टिल काफी बीट किया है, काफी बार बीट किया है बैटर के डिफेंस को। और यहाँ पे नए बैटर को बॉलिंग कर रहे हैं, इससे भी होप मिलेगी कि विकेट हासिल हो जाए। अच्छी डिलीवरी, बेहतर खेला भी। तो पावर प्ले की बात हो रही थी, जो वर्ल्ड कप हो रहा है भारत में, इसमें जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो पेश है, उसने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। तो एक जो चीज़ उनकी दूसरों से मुख्तलिफ लग रही है, वो पावर प्ले जीत रहे हैं, बैटिंग पावर प्ले भी, बॉलिंग पावर प्ले भी दूसरी टीमों से। उनके फास्ट बॉलर्स जो हैं पावर प्ले में विकेटें ले रहे हैं, ओपनर्स जो हैं विकेटें गंवा नहीं रहे और रन्स भी बना रहे हैं। ये बहुत अहम है, ये पावर प्ले का जो मरहला होता है इस तरह की क्रिकेट में, 2 नई गेंदों के साथ। या पावर प्ले एक बार फिर बॉलर्स के नाम रहा है, लेकिन फील्डर्स ने सपोर्ट नहीं किया उनको। बहुत आसान कैचेस में पहले ही 9 ओवर्स में ड्रॉप होते हुए नजर आए। पहले 2 ओवर्स में ही 2 कैचेस गिरा दिए थे रावलपिंडी के फील्डर्स ने। रिजवान हुसैन जैसे बैटर को अगर आप मौका देते हैं तो वो आप रन्स करते हैं। इमरान बट भी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, लीडिंग रन गेटर है अपनी टीम के लिए। पुल किया है लेकिन ज्यादा फोर्स नहीं है, सिर्फ एक ही रन बनेगा क्योंकि एक फील्डर पीछे ले रखा है डीप स्क्वायर लेग पे। चंद अच्छे शॉट्स खेले, ये बड़ा छक्का लगाया बॉलर के सर के ऊपर से, उसके बाद अपनी स्टंप्स को एक्सपोज करना शुरू किया। इनकी टेक्निक जो है ये बेनकाब हुई है। 2 कैचेस गिरने के बाद ये मंजर नहीं इनको पेश करना चाहिए था रिजवान हुसैन को। पावर प्ले में लाहौर ब्लूज 5 विकेटें ली हैं। बैटिंग और बॉलिंग दोनों में लाहौर ब्लूज की टीम पावर प्ले में नुमाया रही है, लेकिन मिडिल ओवर्स में इनकी जो बैटिंग है उसने भी मायूस किया है और इनके बॉलर्स भी विकेटें हासिल नहीं कर सके। ये टॉप ऑर्डर काफी रन्स बनाते हुए हैं रिजवान हुसैन, इमरान बट, लेकिन डेफिनेटली मिडिल में स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। सिर्फ 5 विकेट्स गंवाई हैं, रन्स पर ओवर भी 6.11 है और डॉट परसेंटेज भी सबसे कम है। ये क्वालिटी है सबसे ज्यादा जो मैं वनडे क्रिकेट में देखता हूं कि डॉट परसेंटेज कितना है, इनका बाकी सारी टीमों में से सबसे कम है। रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक पे बिलीव करते हैं लाहौर ब्लूज की टीम। हवा में बॉल था लेकिन दूर था फील्डर से, 1 रन जरूर बनेगा। आप बात कर रहे थे रिजवान हुसैन की, तो हैरानगी हुई उनकी टेक्निक को देख के। बात करेंगे इस पे मजीद। 10 ओवर्स के बाद 36 पर 1 लाहौर ब्लूज।
काशिफ अली ये जारी रहेंगे शैलेंड से। धूप है खासी निखरी हुई है। 2 दिन पहले बारिश से मैचेस मुतासिर हुए थे। डीएलएस पर फैसले सामने आए। इन दोनों टीमों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आसमान जो है वो दूर तक साफ है। आज रावलपिंडी का विंटर मॉर्निंग है क्रिकेट के लिए। ये और मुश्किल हो जाता है बैटिंग के एतबार से। लेकिन यहाँ पे तारिक भाई बहुत ही वाज़ेह फ़र्क है ज़ैद आलम की टेक्निक में और जिस तरह से रिजवान हुसैन खेल रहे थे उनकी टेक्निक में। ये लाइन को कवर कर रहे हैं, फीट मूवमेंट अच्छी है, पीछे आ रहे हैं बॉल के और अच्छा डिफेंस दिखा रहे हैं। लेकिन रिजवान हुसैन जैसे आपने अभी जिक्र किया कि अपने विकेट्स को एक्सपोज करके खेल रहे थे, एज इफ वो बॉल से दूर भाग रहे हैं, लाइन में नहीं आ रहे हैं। और नए बॉल पे जहाँ पे बॉल स्विंग और सीम हो रहा हो वहाँ पे तो इस टेक्निक से आप ज़्यादा देर सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। और काफ़ी अरसे से रिजवान हुसैन सीन में है, PSL भी खेले हैं, डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं। और इतने सालों के बाद भी अगर आप इस तरीके से आउट हो रहे हैं तारिक भाई, तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं को बड़ी खामी मौजूद है। या वो आपके दिल में है कि आप थोड़ा घबराते हैं नए बॉल से, लेकिन फिर आपको ओपन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये टेक्निक आपकी होगी तो आप ज़्यादातर सर्वाइव नहीं करेंगे। लेकिन लाइन को कवर ही नहीं करते हैं, दूर से ही खेल जाते हैं, ज़्यादा फीट मूवमेंट में नहीं है। और अच्छे बॉलर जहाँ पे उनको हल्की सी भी सपोर्ट मिल रही होगी वो मिस आउट नहीं करेंगे। यहाँ पर निशाना लिया काशिफ ने, क्योंकि फील्डर्स से उनको मदद नहीं मिल रही थी। उनने अपनी मदद आपके तहत चलता किया। यही एक तरीका रह गया था विकेट हासिल करने का पिंडी के बॉलर्स के पास आज। यकीनन वो काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आए थे काशिफ अली, क्योंकि जब आप इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं, इतनी डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आप और फील्डर सपोर्ट ना करें तो वो फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका बढ़ जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं मेडन पे मेडन कर रहे हैं काशिफ अली, एक और 4 डॉट डिलीवरी, प्रेशर डाल के रखा हुआ। वेस्ट इंडीज के एक फास्ट बॉलर से देखिए अच्छा खेला, बिल्कुल नजरों के नीचे बल्ले का पूरा फेस दिखाया, इंतहाई डेड बल्ले के साथ। उसके बाद गेंद भी लगी है जाकर नाखूनों पे। पिंडी को पहले ही नुकसान हुआ है मुबस्सिर खान का, उनका नाखून उड़ गया यहाँ फील्डिंग करते हुए और वो मैच से बाहर हो गए। चार्ज किया लेकिन गेंद क्योंकि रुक रही है तो इससे शॉट जो है पूरी तरह लगा नहीं सके। क्योंकि दूर बॉलिंग कर रहे हैं फास्ट बॉलर, इसलिए पिच ऑफ द बॉल पे पहुंचने की कोशिश है, किसी ना किसी तरीके से उस लाइन को डिस्टर्ब किया जाए। एक तरीका सही है ये कि आप थोड़ा फीट मूवमेंट दिखाइए, क्रीज में मूव कीजिए, तो आप थोड़ा लाइन को डिस्टर्ब कर सकते हैं काशिफ अली की, क्योंकि अभी बहुत सेटल्ड हैं वो, एक लाइन और एक लेंथ पे बॉलिंग किए जा रहे हैं जहां पे बैटर्स को ट्रबल हो रही है। तो बुरा तरीका नहीं है कि आप थोड़ी मूवमेंट क्रीज में दिखाइए। अच्छा खेला, उम्दा बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर जायद। गनफरादी स्कोर हुआ 4 और 11 के बाद 37 पर 1। हुसैन तलत और जुनैद अली, इन दोनों ये मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। लाहौर ब्लूज मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। इन लोगों ने रन्स किए हैं लेकिन कंसिस्टेंटली रन्स नहीं किए हैं। जहां पे आपको कंसिस्टेंटली रन्स करने हैं, अगर आपने हुसैन तलत की अगर बात करें कमबैक करना है, तो आपको कंसिस्टेंटली हर मैच में परफॉर्म करना है। जुनैद विकेट कीपर बैटर हैं, अच्छे टैलेंटेड स्किलफुल हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं मिसिंग है दोनों में, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर में स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं लाहौर ब्लूज की टीम। कंसिस्टेंसी से याद आया, एक अच्छी इनिंग खेली थी बिलावल भट्टी ने जब लास्ट टाइम रावलपिंडी यहाँ मैच खेला था, मैच विनिंग बैटिंग से एक इनिंग खेली थी। 125 विकेट्स हैं इस लेवल पे, इकोनॉमी बहुत इंप्रेसिव है 5.21 की। 5 विकेट्स वाला कॉलम खाली है, वो थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि कैलिबर है, पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। यहाँ उस दिन ये मैच के बेहतरीन खिलाड़ी थे जब इन्होंने यहाँ पर
वो मैच विनिंग इनिंग खेली, लेकिन उसके बाद अगले जो दोनों मैचेस हैं बिलावल भट्टी नहीं खेल सके, क्योंकि जब ये बैटिंग कर रहे थे उस दिन तो आपको याद होगा कि इनके घुटने में तकलीफ हुई थी, मुमकिन है उसी वजह से अगले दो मैचेस नहीं खेल सके हों। और आज भी जो है आखिरी मौके पर इनको टीम में शामिल किया गया जब मुबस्सिर खान अनफिट हुए। देखना होगा ये कितने फिट हैं। ये तो एक फिट बॉलर की गेंद थी। काफी स्ट्रॉन्ग लैड है बिलावल भट्टी, ज्यादा लंबे कद के नहीं है लेकिन सख्त जान है, पटकते हैं बॉल को। यहाँ पे फ्लोटर की आगे बॉल करने की कोशिश की है, स्विंग मिला है, बीट किया है जैद आलम को। और अभी तक जैद आलम ने अच्छा डिफेंस दिखाया है, क्योंकि लेंथ बॉलिंग हो रही थी। ये पहली बार उनको थोड़ा आगे बॉल किया गया है, उनको चांस दिया गया कि ड्राइव मारिए, क्योंकि स्विंग अभी तक मिल रहा है। और कितना ही बदलाव आया है, क्योंकि इससे पहले हमने सारी क्रिकेट कदाफी स्टेडियम में कवर की, और जब रावलपिंडी हम आए तो यहाँ पे बॉलर्स की चांदी रही है। और ये शानदार फील्डिंग है, बहुत जोरदार ड्राइव, बॉलर्स बैक ड्राइव मारी थी जैद आलम ने, लेकिन फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग की गई है बिलावल भट्टी की जानिब से। और वो आप देख सकते हैं कि कितना तगड़ा शॉट था, जोरदार शॉट था। कुछ सर्दी है, कुछ बॉल लगा है। इमरान भट्ट ने छेड़छाड़ भी की है, नॉन स्ट्राइकर थे, इनके साथ सुई नॉर्दर्न गैस में खेलते हैं। कैच के करीब था इमरान भट्ट, रन आउट भी हो सकते थे। ऑल एक्शन क्रिकेटर हैं यहाँ बिलावल भट्टी, और यहाँ पर 2 रन का इजाफा होगा। जैद आलम जिस साल अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे, शाहीन अफरीदी, अरशद इकबाल जैसे खिलाड़ी उस पाकिस्तान की टीम में थे, और जब ये टीम यहाँ से जा रही थी तो इनसे बड़ी उम्मीदें हो गई थी। और उस वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, वहाँ इन्होंने चंद बड़ी इनिंग्स खेली थी, वहाँ छक्कों से भरपूर, चौकों से भरपूर। तो ऑस्ट्रेलिया में विकेटों में बाउंस होता है, तो मुमकिन है यहाँ की जो बाउंसी कंडीशंस हैं पिंडी में, उन पे इसलिए शायद बेहतर लग रहे हैं कि बाउंसी पिचेस पर इनको खेलने का है आइडिया। वो न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप में ज्यादा रन नहीं हुए थे। ये टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, मीडियम पेसर भी हैं, ये डेवलप हो सकते थे, लेकिन 2018 के बाद इनको मुसलसल मौके नहीं दिए गए। इनके अंदर पोटेंशियल मौजूद था, स्किल मौजूद है, अभी भी है, लेकिन जैसे आपने पहले जिक्र किया कि कंसिस्टेंटली इनको भी मौके नहीं दिए गए। और जब आप ऑस्ट्रेलिया में रन्स करते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर वो टैलेंट होता है, तो आप उन कंडीशंस में रन्स करते हैं। तो मिस आउट किया है पाकिस्तान क्रिकेट ने। एक बार फिर गेंद को गैप में धकेला, दूसरे रन के लिए आना चाहिए। दोनों अच्छे एथलीट हैं, जायद और इमरान। पिछली 3 गेंदों में मुसलसल 3 दुगियां देखने में आई, 43 पर 1। तेरह रन की शराकतदारी जैद आलम और इमरान भट्ट के दरमियान जारी और सारी है। जहादाद खान 11 विकेटें 6 मैचेस में, ये पाकिस्तान कप के सीजन के लीडिंग विकेट टेकर हैं। और इस टूर्नामेंट की अगर आप फाइंड की बात करें तो यकीनी तौर पर जहादाद खान का शुमार उन्हीं खिलाड़ियों में होता है जिन्होंने बहुत मुतासिर किया है इस टूर्नामेंट में। ड्राइव किया खूबसूरती के साथ इमरान भट्ट को गेंद अब बेहतर अंदाज से दिखाई दे रही है, क्योंकि मुश्किल वक्त इमरान भट्ट ने क्रीज पे गुजार लिया है और अब कमेंट्री बॉक्स की पिच पे वक्त गुजारने आ गए हैं एजाज अहमद। वेलकम एजाज। बहुत शुक्रिया नौमान, थैंक यू वेरी मच।
यकीनी तौर पर रावलपिंडी के जो पेसर्स हैं उन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में बॉलिंग करवाई। गो के जो फील्डिंग है वो उस तरह से नहीं रही आज पिंडी की, लेकिन यहाँ पर यकीनी जो मौके हैं लाहौर के बैटर्स को वो मिल रहे हैं। और अगर यहाँ से एक अच्छा स्कोर ना किया लाहौर की टीम ने तो वो तमाम तर मौके जो हैं बेसूद होंगे। अच्छा सिंगल लिया जैद आलम ने यहाँ पर, और दुरुस्त फरमाया एजाज आपने कि चांसेस आपको लेने होते हैं, क्योंकि इस लेवल ऑफ क्रिकेट में जिस तरह के प्लेयर हमने इस टूर्नामेंट में देखे हैं, जिस तरह के परफॉर्मर्स इस टूर्नामेंट में देखे हैं, इमरान भट्ट का शुमार इस टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले खिलाड़ियों में होता है। और अगर आप उनका कैच छोड़ते हैं, ऐसे प्लेयर का जो इन फॉर्म है, ऐसे प्लेयर जो अच्छी बैटिंग करते आए हैं टूर्नामेंट में, हर वेन्यू पे इन्होंने रन किए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जीशान मलिक ने काम कैच छोड़ा था रिजवान हुसैन का, इसके बाद वो कोई अपॉर्चुनिटीज जो है वो लेनी होती हैं। जहादात खान ने कैच ड्रॉप किया था थर्ड मैन पर। इसके अलावा उमैर मसूद ने इस इनिंग्स के पहले ही ओवर में एक कैच गिरा दिया था। तो पावर प्ले में 3 कैचेस छोड़ना ये यकीनी तौर पर एक मुजरिमाना गफलत है। जी हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है बॉलर्स का भी कि जब फील्डर्स आपको उस तरह से सपोर्ट ना कर रहे हो तो यकीनी तौर पर आपकी जो एफर्ट्स हैं वो बरोएकार नहीं ला पाते उस तरह से बेहतर अंदाज में। यही वजह है कि इस वक्त सिर्फ 1 विकेट गिर चुका है। जोकर स्लिप की फील्डर की तरफ गई, लेकिन इस टूर्नामेंट में जितना मुतासिर जहादात खान ने किया है उनकी तारीफ बनती है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और बेहतर अंदाज से इन्होंने गेंदें की हैं इस टूर्नामेंट में। इससे पहले मैच में लाहौर की टीम के खिलाफ बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। 5 मैचेस में 11 विकेटें जहादात खान की, और इन्हीं के साथ जाहिद महमूद भी इस लिस्ट में हैं जिन्होंने 11 खिलाड़ियों को आउट किया। तो ये जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर हैं पाकिस्तान कप के। इकॉनमी अगरचे 6 के पेटे में है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मुतासिर किया है इस नौजवान बाएं हाथ के फास्ट बॉलर ने। और ये टैली बेहतर हो सकती थी और अभी भी बेहतर हो सकती है, क्योंकि चांदाद सक अपना पहला ओवर कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर अगर यहाँ पर 3-4 विकेट निकालते हैं तो 11 के हिस्से में अगर 3-4 विकेट्स ऐड करें तो 14-15 विकेट बनती हैं। लेकिन अब एफर्ट कितनी है इस पिच में जान है बॉलर्स के लिए, क्योंकि गो के इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं, लेकिन जो पेस है ऑलरेडी पिंडी की जो बॉलिंग है वो जानी जाती है कि उनके जो पेसर्स हैं बेहतर रिदम में इस इवेंट में। ड्राइव करने जा रहे थे की बार फिर बाल बचे। पिछली दोनों गेंदों में किस्मत ने साथ दिया है इमरान भट्ट का, बल्कि अगर ये कहा जाए कि आज के सारे दिन के खेल में किस्मत इमरान भट्ट पर बेहतर अंदाज से जो है उनके फेवर में गई है। सिंगल के साथ जहादात खान के जबरदस्त ओवर का अख्ताम। बिलावल भट्टी बड़े तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, और ऐसे प्लेयर्स का इजाज टीम में होना बहुत ज़रूरी है जो इनका इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा हो, जिन्होंने खातिर खां इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस दी हो। और इससे पिछले मैच में भी देखा जब रावलपिंडी लाहौर वाइट्स के अगेंस्ट पिंडी स्टेडियम में खेल रहा था तो बैटिंग से मैच जितवाया बिलावल भट्टी ने। ज़बरदस्त काउंटर अटैक देखने को मिला, 100 से ज़ायद रन की शराकतदारी इन्होंने उमैर मसूद के साथ 8वीं विकेट के लिए की। 97 रन पे 6 विकेटें गिर गई थी। वहां से एक बड़ा टोटल जो है वो चेस करने गई रावलपिंडी की टीम। 69 रन याद पड़ता है शायद उस गेम में बनाए इन्होंने। अच्छी गेंद की बार बिलावल भट्टी की। बड़े तजर्बाकार खिलाड़ी रहे हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक।
बेहतर बॉल था, ऑफ स्टंप पे पड़ा। खड़े खड़े इस स्ट्रोक को पंच करने गए थे ऑफ साइड की तरफ, लेकिन बहुत करीब रहा कि बॉल जो है वो आउटर एज बल्ले पे लगती। और इस तरह से जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि बिलावल भट्टी अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उनकी लाइन और लेंथ बेहतरीन है। निकालने की कोशिश की, लेकिन अब की बार बड़ी अच्छी फील्डिंग एफर्ट। किसी तौर पर फील्डर ने आगे गिर के गेंद को रोका। ईशान मलिक घर एक कैच छोड़ चुके हैं, लेकिन अब की बार जो इनकी एफर्ट है वो बड़ी एक्रोबैटिक थी। एग्जैक्टली और चाहिए भी, क्योंकि ऑलरेडी आप एरर्स कर चुके हैं, उनको रेक्टिफाई करना है। एज अर्लियर बॉल निकल रही थी, लेकिन अच्छा दोनों हाथों से उसको रोका। और सपोर्ट करना होगा अपने बॉलर्स को, पिंडी के फील्डर्स को यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी जो पहला सेशन था 10 ओवर्स का, उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स रही फील्डर्स की तरफ से। उठा दिया इस गेंद को, फील्डर नीचे आते हुए क्या कैच कर पाएंगे? नहीं, आज का दिन कैचिंग के लिए अच्छा नहीं रहा रावलपिंडी की टीम के लिए। और अब की बार फील्डर थे हैदर अली, जिन्होंने सड़तोड़ कोशिश के बावजूद कैच गिरा दिया। वेल, हैदर ने ग्राउंड अच्छा कवर कर लिया था, बड़ा तेजी से भागते हुए आए। सूरज गो के उनकी आंखों में था, क्योंकि जिस डायरेक्शन से वो भागते हुए आ रहे थे, बॉल जिस डायरेक्शन से आ रही थी, उधर सूरज यकीनी था। लेकिन कोई उन्होंने इसका ऐसा आंसर या तासुर नहीं दिया कि सूरज उनकी आंखों में आया, लेकिन मेरे ख्याल से कि ये ड्रॉप है। और एक और मौका, सॉफ्टली निकाला इस गेंद को, टाइमिंग बड़ी जबरदस्त थी इमरान भट्ट की जानिब से, लेकिन एक सिंगल ही मिलेगा। हाँ, ग्राउंड अच्छा कवर किया था हैदर ने, एक चांस क्रिएट किया था बिलावल भट्टी ने। ऑफ स्टंप पे बाहर पड़ा हुआ बॉल काफी देर से कंटेन कर रहे थे, और इस दफा कोशिश थी कि थोड़ा सा ऑन साइड पे खेलने जाए, लेकिन लीडिंग एज हुआ और बॉल काफी देर तक फिजा में रही। लेकिन यहाँ पर उनकी निगाहें हट गई बॉल से, जिसकी वजह से प्रॉपर्ली बॉल उनकी पॉकेट में ना आई, और एक और जिंदगी लाहौर की टीम को। खूबसूरती के साथ फ्लिक किया इस गेंद को जैद आलम ने, और 2 रन लेने की कोशिश, और इसमें कामयाब हो जाएंगे ये दोनों बैटर्स। 2 रन के साथ स्कोरबोर्ड पे लाहौर ब्लूज की टीम के 50 रन भी मुकम्मल हुए। 14 के बाद 51, 1 विकेटों के नुकसान पर। ओमान इस वक्त 51 पे 1 है, लेकिन ये विकेट कॉलम यहाँ पर अगर 4 होते, जो कि अब तक के ड्रॉप हुए, इनफैक्ट 5 विकेटें जा सकती थी। बड़ा डिफरेंट पड़ता है, या मुख्तलिफ सूरत हाल होती इस वक्त लाहौर की टीम की, अगर वो तमाम 4 के 4 जो कैचेस हैं वो पकड़ लिए जाते। कट किया खूबसूरती के साथ इमरान भट्ट ने, फील्डर के लिए तवील चेस, और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब इस गेंद को रोकने में कामयाब हुए। और अब अच्छे आगाज को बड़े रन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इमरान भट्ट। रियाज, ये छोटे छोटे मार्जिन होते हैं जो आपको गेम में जीतने होते हैं। अच्छी फील्डिंग एफर्ट, एक अच्छा रन आउट, आउटफील्ड में अच्छे कैचेस। आप अगर ये छोटे छोटे मार्जिन जीतते हैं तो आपकी टीम का पलड़ा जो है वो मैच में भारी होता है। लेकिन कुछ फील्डिंग एफर्ट जो है वो बेहतर नहीं देखने को मिली। 42 गेंदें, 7 ओवर कबल पिछली बाउंड्री लगाई गई थी। खूबसूरती के साथ फ्लिक किया इमरान भट्ट ने, और ये बड़े प्लीजिंग टू द आई बैट्समैन है कि जब जब ये ऑन ड्राइव खेलते हैं, कट करते हैं, तो ये आंखों को भा जाने वाली साइट होती है। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं। और जिस वक्त अपोनेंट टीम आपको इतने मौके दे रही हो, तो आपका दिल मजीद बड़ा होता है, बड़ी शॉट्स मजीद देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर पिंडी के प्लेयर्स को भूलना होगा, गलतियों को आगे देखना है। खूबसूरती के साथ निकाला इसको स्वीपर कवर की जानिब। लाहौर ब्लूज की कुछ बैटिंग की बात करें तो उमर सिद्दीक, हुसैन तलत, जुनेद अली,
कासिम अकरम, इन तमाम प्लेयर्स का भी आना बाकी है। और लाहौर की टीम 3.77 के रन रेट से बैटिंग कर रही है। इस विकेट पे 245 इस पिच पे जो है वो एवरेज स्कोर है इजाज। तो यकीनी तौर पर ये बैटर चाहेंगे कि मुश्किल जो वक्त है वो उन्होंने गुजार लिया है, तो अब जो रन रेट है उसको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपको बड़े टोटल की तरफ, एक अच्छे टोटल की तरफ जाना है तो आपको अपने रन रेट को बेहतर करना होगा। और अभी वक्त भी है इनके पास। और आपने सही कहा, उमर सिद्दीक, हुसैन तलत, कासिम अकरम, जुनेद, इन सब की बैटिंग है और ये तमाम रन्स करते आ रहे हैं इस इवेंट में, क्योंकि लाहौर की टीम को एक बड़ी फतह चाहिए। 3 गेम्स अब तक जीती हैं लाहौर ने, 2 में शिकस्त। कट किया खूबसूरती के साथ, लेकिन थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन बन पाएगा। अक्सर औकात इजाज जब आप सेट हो जाते हैं तो आप फिर फैंसी शॉट्स भी खेल सकते हैं, आप शॉट्स बना भी सकते हैं। यही मौका लग रहा है अब इमरान भट्ट के लिए, क्योंकि 33 गेंदों का उन्होंने सामना कर लिया है, मुश्किल वक्त गुजार लिया है। अच्छी फॉर्म में है, ऑलरेडी एक सेंचुरी बना चुके, 90s में भी उनका स्कोर रहा। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये पार्टनरशिप लगता यही है कि चलनी चाहिए और चलेगी, जिस तरीके से इन्हें मौके मिल रहे हैं। फील्ड अबूर करने में कामयाब नहीं हो पाए ज़ैद आलम। इस ओवर में सिर्फ 5 रन आए, 15 के बाद 56 एक विकेट के नुकसान पर। और इसके साथ ही रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में वक्त हुआ चाहता है पानी के वक्फे का।
90 गेंदों में 4 कैचेस ड्रॉप हुए हैं, 56 रन्स बने हैं, सिर्फ 1 विकेट ले पाई है रावलपिंडी की टीम। इस स्कोर कार्ड पे इस वक्त 5 खिलाड़ी भी आउट हो सकते थे, लेकिन आपको कैचेस लेना होंगे अगर आप विकेटें लेना चाह रहे हैं। इमरान भट्ट चांस मिलने के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता रन्स कर रहे हैं। 21 पर, जैद आलम मौजूद हैं 16 पर। रिजवान हुसैन की वाहिद गिरने वाली विकेट काशिफ अली ने ली है। इसके बाद उमर सिद्दीक, हुसैन तलत, कासिम अकरम जैसे नाम आना बाकी हैं। और ये कैचेस छोड़े गए रावलपिंडी की टीम से। पहले उमैर मसूद, उसके बाद थर्ड मैन पर जहादात खान दौड़ते हुए आए, कैच नहीं ले पाए। और उसके बाद इमरान भट्ट ने एक ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को उठा खेलना चाहा, स्लिप में ईशान मलिक ने कैच छोड़ा। और फिर जैद आलम का कैच डीप एक्स्ट्रा कवर पर दौड़ते हुए उमर अमीन ने छोड़ा। तो आज का दिन अब तक ड्रॉप कैचेस के नाम रहा है। किसी किस्म की जल्दी में नहीं दिखाई दे रहे इमरान भट्ट, ये विकेट पे सेट हो चुके हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टेम्परेचर कम है, जैसे 7-8 सेल्सियस है, तो आपको फील्डिंग करते हुए थोड़ी सी परेशानी होती है कि बॉल एकदम से तेज़ी से आ रहा है, हाथ पे लग रहा है, उस वजह से मिसफील्ड हो। लेकिन आज टेम्परेचर, क्योंकि सर्दी ज़रूर है लेकिन उतना वर्स नहीं है कि आप 6-7 टेम्परेचर हो रहा और मुश्किल हो रही हो फील्डिंग करते हुए। तो ये तमाम तर एरर्स जो हैं ये ह्यूमन एरर्स है, वेदर नहीं है। लेकिन एजाज, सर्दी की हिद्दत कुछ हद तक बढ़ गई है, इसी वजह से आज इस टूर्नामेंट में पहली दफा हमने आपको जैकेट पहने हुए देखा है। और आपको तो हम जैकेट पहने हुए कम देखते हैं, लेकिन अक्सर औकात प्लेयर्स जो हैं वो जरूर इस जैकेट में, इस वार्मर में रहते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बेहतर रखना होता है। अच्छा बाउंसर बिलावल भट्टी का, और बिल्कुल इसी किस्म की बॉल के लिए उन्होंने फील्ड भी ले रखी थी, वाइड करार दिया तारिक रशीद ने। काफी वक्त लिया था अंपायर ने, लेकिन वाइड करार दिया इस गेंद को। एफर्ट इस दफा बिलावल ने कोशिश की थोड़ा सा पीछे रखें, जिसके जैसे स्क्वेयर लेग अंपायर ने इशारा दिया इस वक्त ऑन फील्ड अंपायर को कि इस वक्त ये काफी ज्यादा हाइट पे थी, जिसकी वजह से इसको वाइड बॉल करार दिया। बिलावल गुस्से में भी है। टॉप एज गेंद फील्डर के ऊपर से निकल गई थर्ड मैन की जानिब। ये बड़ी जबरदस्त गेंद थी बिलावल भट्टी की, लेंथ पे पड़ने के बाद राइज हुई, और इस किस्म का बाउंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जैद। जब आप काफी देर से क्रीज पर हो, 30, 32 या 34 बॉलें खेल चुके हैं, तो आपको आइडिया होता है कि इस वक्त सरफेस का बाउंस कितना है। लेकिन ये सरप्राइजिंग एलिमेंट था, बिल्कुल बल्ले के ऊपर जाकर लगा और सरप्राइज किया बैटर को। खुशकिस्मत रहे यहाँ पर कि बॉल जो है वो फील्डर से दूर रही, और वाकई इस वक्त लाहौर की टीम किस्मत की धनी है। आप इसे किस्मत ही कह सकते हैं। पहली 94 गेंदों में आपके 4 कैचेस छोड़े जाएं, और वो भी 4 मुख्तलिफ फील्डर्स की तरफ से। कोशिश की गई फील्डर्स की तरफ से, कैच नहीं ले पाए। और दूसरी तरफ अब ये देखना होगा कि जो मौके मिले हैं इमरान भट्ट और जैद आलम को, उसको वो किस तरह उन पे बेहतर अंदाज से रन कर पाते हैं। निकाला खूबसूरती के साथ ऑन साइड में। जब तक फील्डर आएंगे दोनों बैट्समैन एक ही रन पर इत्तेफाक करेंगे। अब तक सिर्फ 4 चौके लगे हैं, जबकि 1 छक्का इस इनिंग में। 16वां ओवर है। पावर प्ले में नॉर्मली हम देखते हैं कि बैटर्स जो हैं वो बॉलर्स के पीछे होते हैं, तेज खेलना, मौके मिलना, लेकिन इन 16 ओवर्स में सिर्फ 4 चौके, जो कि किसी भी स्टैंडर्ड से कम लगता है कि आप पावर प्ले में खेल रहे हो। तो लगभग 8 से 10 चौके लगने चाहिए। 51 बॉलें हो चुकी हैं कि अब तक बाउंड्री नहीं लगी।
बढ़ा दिया इस गेंद को खूबसूरती के साथ जैद आलम ने लेंथ को पिक किया और इस गेंद को उठाकर खेल दिया मिड विकेट फेंस के पार। ये बड़ा जबरदस्त छक्का जैद आलम की जानिब से, लेंथ को बड़ी जल्दी पिक किया और डिपॉजिट किया मिड विकेट स्टैंड्स की तरफ। वेल पीछे पड़ा हुआ बॉल था, खड़े खड़े इस बॉल को खेल दिया ऑन साइड पे। बिलावल भट्टी का एक और बैक ऑफ लाइन बॉल और क्या खूबसूरत अंदाज में इसको मैनेज किया डीप मिड विकेट पे। काफी देर से इस तर्ज की बाउंड्री की तलाश में थे लाहौर की टीम, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रेशर था उसको सी ऑफ करना था। तो काफी लंबी बारी कर चुके, 44 बॉलें खेल चुके हैं दोनों इकट्ठे, 29 की अब पार्टनरशिप है। तो एक चौका छक्का हर एक ओवर में बनाना यहाँ पर इमरान भट्ट का जो कैलिबर है उसको शो करता है। ऑफ साइड पे अपनी फील्ड को चेक किया इमरान भट्ट ने, चूंकि एक थर्ड मैन डीप है लेकिन उसके साथ एक वाइडिश फ्लोटिंग या गली सॉर्ट ऑफ फील्डर भी मौजूद है। बॉल की लाइन बेहतर थी क्योंकि उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट्स ऐसी कर रखी हैं कि जो इमरान भट्ट को अलाउ करे कि थोड़ा सा कट करें या अवे फ्रॉम द बॉडी खेले, क्योंकि ऑलरेडी एक ऑन साइड पे बड़ी हिट लगी, कहीं ना कहीं रश ऑफ ब्लड आता है कि अब मैं अगले बॉल पे भी चौका लगाऊं। या बिल्कुल आपको गियर शिफ्ट करने होंगे और जिस तरह पिछले ओवर में गियर शिफ्ट किया गया जैद आलम की तरफ से। खूबसूरती के साथ कट किया इस गेंद को इमरान भट्ट ने। ये गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट पर बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी। खूबसूरत टाइमिंग इमरान भट्ट की और पिछले ओवर में आने वाले छक्के के बाद जो मोमेंटम है वो अब लाहौर ब्लूज के हक में जाते हुए। जी हाँ, यहाँ पर अटेम्प्ट बेहतर था। जानदाद की जो सोच थी, कप्तान की जो इस वक्त फील्ड प्लेसमेंट है उसके मुताबिक थी, लेकिन बैटिंग यहाँ पर इमरान भट्ट की बहुत क्लास की। उन्होंने गैप निकाला फील्डर्स के दरमियान से, बावर किया कि बॉल जो है वो नीचे रहे। देखिए थोड़ा सा पीछे हटे, रूम बनाया, अच्छा प्लेसमेंट, अच्छा कट, लेट खेला इसको। ये शो करता है कि इसका काफी कॉन्फिडेंट है इमरान। फिर खूबसूरती के साथ ओवर पिच गेंद, इसका भरपूर अंदाज से फायदा उठाया इमरान भट्ट ने और ये तवातुर से दूसरी बाउंड्री लगा दी। वेल बहुत ही उम्दा, बहुत खूबसूरत और सेंसेबल, क्योंकि थोड़ा सा दूर था, ओवर पिच बॉल था। इससे पहले थोड़ा सा बैक ऑफ लाइन बॉल दिया, उसको भी पंच किया इन्होंने चौके के लिए। और यहाँ पर आगे पड़ा हुआ बॉल और क्या खूबसूरत इस्तेमाल इस वक्त टाइमिंग का, गो के दूर जरूर था अपने जिस्म से लेकिन बहुत ही खूबसूरत दिलकश कनेक्शन, बिल्कुल मिडल से राइट अंडरनीथ ऑफ द बैट। 4 रन्स। फिर ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, लेकिन अब की बार स्वीपर कवर पर फील्डर मौजूद थे। जहां 51 गेंदों के बाद बाउंड्री आई और उसके बाद जो अगली 4 गेंदें थी उनमें 3 बाउंड्रीज आ गई, तो जिसे कहते हैं कि गियर चेंज करना, वो बेहतर अंदाज से देखने को मिला हमें लाहौर ब्लूज की तरफ से। देखें इस वक्त कॉन्फिडेंस आ चुका है दोनों बैटर्स के दरमियान। पार्टनरशिप 45 पे जा पहुंची 50 बॉलों में। एक बड़ी हिट इनको 50 की पार्टनरशिप दे देगी। यकीनी तौर पर ये वक्त है कि आपने बॉलर्स को टेक ऑन किया। ऑफ स्टंप से अभी भी जो थोड़ा सा बाहर है बॉल को रख रहे हैं। कोशिश यही है कि जो ऑफ स्टंप की फील्ड है उसी पे अटैक करें, लेकिन विकेटलेस है। जानदार अच्छे बॉलर हैं, लेकिन 2 बाउंड्रीज ऑलरेडी उनको लग चुकी। इस ओवर में 10 रन आ चुके हैं, तो कोशिश इनकी ये होगी या तो कंटेन करें। तो काफी बेहतर और हैप्पी मोमेंट इस वक्त लाहौर की टीम के लिए, क्योंकि उनके जो दोनों बैटर हैं वो सेट हैं, रन्स कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस गेन कर चुके, और यहाँ पर थ्रो नहीं करनी चाहिए अपनी विकेट इस स्टेज पे। फिर खूबसूरती के साथ ऑफ ड्राइव किया, लेकिन अब की बार मिड ऑफ पर फील्डर को पालेंगे और इस ओवर में 10 रन आए लाहौर ब्लूज के लिए। 17 के बाद 76 पर 1।
बिलावल भट्टी और जैद आलम के दरमियान ये मार्का जारी है जो अब तक बराबर चल रहा है। एजाज, कुछ अच्छी गेंदें की बिलावल ने, उसके बाद भरपूर जवाब दिया जैद आलम ने। जबरदस्त गेंद अंडे के बाद हल्की सी बाहर की जानिब निकली। अपने तजर्बे का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं बिलावल भट्टी, अच्छे एरियाज में गेंद करते दिखाई दिए हैं। जी हाँ, डिसीव कर रहे हैं। एक आध डिलीवरी इनकी ऐसी होती है हर ओवर में जहां पर बैटर डिसीव होता है, और तकरीबन यही लेंथ है और यही लाइन है जिस पे बैटर जो है वो मुश्किलात का शिकार होते हैं। लेकिन उसी के साथ इसको मोमेंटम को या इस लाइन और लेंथ को बिलावल भट्टी उस तरह से बरकरार नहीं रख पा रहे, जिसकी वजह से एक या दो बॉलों के बाद उन्हें रन आना पड़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ इजाज तारीफ बनती है जैद आलम की भी, जिस तरह उन्होंने इंटेंट दिखाई पिछले ओवर में बिलावल भट्टी के खिलाफ। पिछले ओवर में बड़ा दिलचस्प मार्का देखने को मिला बिलावल भट्टी और जैद आलम के दरमियान। एक बाउंसर किया गया बिलावल भट्टी की जानिब से। ये देखिए, ये जबरदस्त बाउंसर था जो कि वाइड बॉल करार दी अंपायर ने। उसके बाद टॉप एज हुआ, लेंथ से गेंद राइज की और ओवर की आखिरी गेंद पे ये मार्का जीता जैद आलम ने। जबरदस्त छक्का लगाया मिड विकेट की जानिब। के बाद बिल्कुल आखिरी लम्हे पर निकालने में कामयाब हुए थर्ड मैन की जानिब। ये अच्छी बैटल है, क्योंकि जिस वक्त आप बॉलर को इस तरह से पंच करते हैं या हिट करते हैं तो यकीनी तौर पर विनिंग मोमेंटम या फिर जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी तरफ होता है। बिलावल गो के विकेट लेस हैं 4 ओवर्स में, लेकिन दूसरी तरफ वो जो पहले सेशंस की कुछ गलतियां हैं जो लाहौर को इस वक्त पुश दे रही हैं क्रिकेट टीम को कि वो रन्स करें। तकरीबन 50 या 51 बॉलों के बाद जब बाउंड्रीज आना शुरू हुई तो वो फुआर नहीं थी बल्कि मूसलाधार थी। जी, और अब इस सिलसिले को जारी रखना होगा इमरान भट्ट और जैद आलम को, क्योंकि हमने देखा कि जब जब बाउंड्रीज लगाई गई फील्डर्स को थोड़ा सा सर्कल से बाहर पुश कर दिया गया। और यही अप्रोच होनी चाहिए बैट्समैनों की, जब आपको बाउंड्रीज मिल गई हैं, आप जो मोमेंटम आपके हक में है उसे आप कैरी करें, और उसके साथ साथ सिंगल डबल्स का सिलसिला भी जो है वो रुकना नहीं चाहिए। यही खासा है इस क्रिकेट का कि अप टू द मेरिट आप हर बॉल को खेलें। और अब तक उन पहली गलतियों के अलावा लाहौर की टीम पिछले कोई 2-3 ओवर से बेहतर मोमेंटम हासिल कर चुकी है, रन्स आ रहे हैं। किसी तरह की कोई बड़ी गलती नहीं की अब तक इन दोनों बैटर्स ने, और अपनी विकेट थ्रो भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों इमरान 33 जैद 25 बना चुके हैं। बिल्कुल विकेट पे ठहरना है, क्योंकि 48 रन की ये शराकतदारी 56 गेंदों में। पच्चीस पर खेल रहे हैं जैद आलम, लेकिन ये आज नहीं खेल रहे। 10 विकेटें इस टूर्नामेंट में ले चुके हैं, 6 विकेटें रावलपिंडी स्टेडियम में इन्होंने हासिल की थी। साथ काफी तजर्बाकार काशिफ भट्टी हैं, नवाबशाह से काशिफ भट्टी का ताल्लुक है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की स्क्वाड में मुंतखब हुए थे। अपील बिलावल भट्टी की, यकीनी तौर पर ये गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी, नॉट आउट करार दिया अंपायर ने। लेग बाय सिग्नल अंपायर की जानिब से। बिलावल ने अपील की और कुछ लम्हे बाद उन्हें लगा कि ये अपील बेहतर नहीं थी उनकी तरफ से, चूंकि बॉल ड्रिफ्ट कर रही थी लेग साइड पे, और अंपायर ने स्ट्रेट अवे इसको नॉट आउट करार दिया। सिंगल के साथ ओवर का इख्तिताम 18 गए, 79 for 1। काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है लाहौर ब्लूज की, और ये पार्टनरशिप जो है आहिस्ता आहिस्ता ये तूल खींचना शुरू हो गई है, जो कि अच्छी अलामत है ब्लूज के लिए। रिजवान हुसैन
18 रन बना सके। लाहौर ब्लूज की ये ऐसी पोजीशन बिल्कुल नहीं होती। अगर कैचेस ले लिए जाते, 4 कैचेस जो हैं वो गिरा दिए गए। बॉलर्स की जो मेहनत थी उस पर बड़ी हद तक पानी फेरा है इनके फील्डर्स ने। अच्छा शॉट खेला बैकफुट पर, ये बेहतर लगे दोनों ही बैट्समैन शॉट खेलते हुए। सलमान बट कमेंट्री बॉक्स में आए, बैकफुट पर खेलना उनको भी काफी पसंद रहा है। सलमान, अब तक के खेल का लीजिए जायजा। कैचेस गिरे, उसके बाद ये बेहतर पार्टनरशिप। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। जी बिल्कुल, अभी तो स्कोर कार्ड की शक्ल वो नहीं बता रही जो आज हुआ है। बॉलर्स ने खासी अच्छी बॉलिंग की है और अनलकी रहे हैं काफी हद तक। फील्डर्स ने इनका साथ नहीं दिया। यहाँ पर अब इमरान बट क्योंकि फॉर्म में हैं और 2 मैचेस में उन्होंने लगातार रन्स किए, एक में 94, एक में 100 से ऊपर। तो ऐसे प्लेयर को अगर आप 2 आसान चांसेस देंगे, एक थर्ड मैन पे उनका कैच ड्रॉप हुआ, एक स्लिप में ड्रॉप हुआ, उसके बाद जो नया है ज़ैद आलम, इनका डीप पॉइंट बाउंड्री पे कैच ड्रॉप हुआ। इससे पहले रिजवान हुसैन ने अपने बाजू घुमाए, उन्होंने अपने चांसेस लिए, उनका पॉइंट पे आसान कैच ड्रॉप हुआ। तो अगर आप 20 ओवर्स के अंदर पहले टॉस जीत के बॉलिंग करके जहां पे आप विकेट लेने का सोच रहे हैं, वहां पर अगर आप 4 आसान कैच छोड़ेंगे तो फिर तो आप बैटिंग साइड की ही मदद कर रहे हैं। 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है, अब ये 53 की होगी। जो पहली 39 गेंदें थी उनमें 3 कैचेस गिरे। वेस्ट इंडीज के एक फास्ट बॉलर को बहुत पहले ये सुना गया था कहते हुए, उनसे किसी ने सवाल किया था कि आप फास्ट बॉलर क्यों बने, तो उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ जिस तरह की क्रिकेट होती थी, कैचेस लिए नहीं जाते थे, एलबीडब्ल्यू को देता नहीं था, जब तक बोल्ड नहीं होता था आउट नहीं मानता था, तो इसलिए तेज बॉलिंग की तरफ वो रागिब हो गए। आज लगता है कि पिंडी के जो फास्ट बॉलर हैं उनके पास भी यही एक तरीका रह गया आउट करने का। देखिए काफी हद तक तो वही सिनारियो हुआ है आज के दिन जो आपने बयान कर दिया वेस्ट इंडीज को लेकर। और अगर हम देखें तो जो बोल्ड हुए हैं रिजवान, वो उसका एक बिल्डअप था। बिकॉज आप जितनी बारी देखिए रिजवान हुसैन की, वो जब बॉल डिफेंड करते हैं या वो स्ट्रोक खेलते हैं, आप उनके 2 या 3 स्टंप्स देख सकते हैं। अब किसी भी ओपनर के लिए स्पेशली क्योंकि आप स्पेशलिस्ट होते हैं नए बॉल के अगेंस्ट, और ऐसी कंडीशंस में अगर आप आपकी स्टंप्स एक्सपोज्ड हैं तो लाजमी आपकी टेक्निक में कोई ना कोई झोल है और आपको उस पर काम करना है। एक स्विंगिंग बॉल के अगेंस्ट अगर आपकी 2 स्टंप्स नजर आ रही हैं तो सिर्फ आप इंतजार कीजिए उस वक्त का कि जब तक आगे से अच्छी जगह से बॉल कुछ करे, और जैसा ही ऐसा हुआ रिजवान बोल्ड हो गए। 19 ओवर्स मुकम्मल हुए, लाहौर ब्लूज 85 पर 1। ये देखिए रिजवान हुसैन, जब बॉल बीट हो रही है आप दोनों स्टंप्स देख सकते हैं। ये देखिए 3 स्टंप्स इस बॉल पे देख सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए, तो जब आप अपनी स्टंप्स को कवर नहीं करेंगे तो फिर तो सिर्फ उस वक्त का इंतजार है जब एक बॉल सही लाइन और लेंथ से हल्का सा हिलेगा, और उसके बाद नतीजा यही निकलेगा, और इसमें किसी और फील्डर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस बार पेस बाउंस, गेंद कट हुई और सीधी जाकर लगी है इनके ग्लव पर। खासी तकलीफ में है इमरान बट। ये ऐसी पिच है जहां सेट होने के बाद भी गेंदें जो हैं वो लगती हैं आपके ग्लव्स में। जी हाँ, यहाँ पर बिलावल भट्टी का बॉल इन डिपर कट हुआ है, और बैटर जो थे वो थर्ड मैन खेलने के लिए एक पोजीशन ले चुके थे, और वहां से फिर एस्केप का कोई मौका नहीं था, हट नहीं सके आगे से। बॉल बड़ा शार्पली अंदर आया, और बिलावल भट्टी को हम देख रहे हैं कि हर ओवर में एक आध बॉल इनका जो है वो एक्स्ट्रा पेस गेन करता है, और ऑफ द पिच वो बॉल कुछ ना कुछ करता है। और हैवी बॉल कह सकते हैं कि बिलावल भट्टी हर ओवर में एक आध बॉल हैवी बॉल करते हैं, जो ज़रा ऑफ द पिच ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बैटर के लिए। और इमरान बट को हमने देखा है कि पहले भी थर्ड मैन खेलते हुए कैच दे बैठे हैं एक आध बार, और आज थर्ड मैन खेलते हुए इनको बॉल जो है जाहिर है उसकी मूवमेंट की वजह से हाथ पे लगा है। उम्मीद है कि ये ठीक होंगे, क्योंकि इनका
अच्छी और बड़ी इनिंग खेलना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो ये इन फॉर्म है, दूसरा ये लाहौर के कप्तान है, और तीसरा कि इनकी टीम के लिए ये मस्ट विन सिचुएशन है यहाँ पर। तो जो लाहौर के लिए बहुत ज़रूरी कि उनके कप्तान इमरान भट्ट जो हैं वो आज लंबी इनिंग खेलें, आज सेंचुरी करनी चाहिए इनको। महरान मुमताज़, अभी तक इनको बॉलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। तीनों जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्हीं को ही हमने एक्शन में देखा है, काशिफ, उवैस, फिर बिलावल, उसके बाद जहांदाद खान को। लाहौर का जो कॉम्बिनेशन है वो मुख्तलिफ है। उनकी टीम में 2 मुस्तनद स्पिनर हैं और 2 पेस बॉलर हैं लाहौर की टीम में, उमैद आसिफ और उनके साथ दूसरे सलमान इरशाद। आज जो तीसरे हैं वो नहीं खेल रहे, हुनैन शाह, उनको आराम दिया गया। तीसरे पेसर का रोल शायद आज हुसैन तलत पूरा करेंगे, जो कि एक ऑलराउंडर है और हर मैच में 4-5 ओवर्स करते हैं। पॉसिबल है, मुमकिन कि आज उन्हें थोड़ा एक्सटेंडेड स्पेल करना पड़े हुनैन की गैर मौजूदगी में। और हुनैन शाह वो बॉलर है जिन्होंने लास्ट टाइम इसी ग्राउंड के अंदर 6 विकेट्स लिए थे और अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराया था, और इसी पिच के ऊपर वो मैच हुआ था। और ये हुनैन शाह इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बिब पहने डॉक्टर असद से गुफ्तगू में मशगूल, और द स्मार्ट जैदी साहब, ये तारीख है लाहौर की, लाहौर क्रिकेट की। और यहाँ पर एक बड़ा ही वाइल्ड किस्म का स्ट्रोक जैद आलम की जानिब से हमने देखा। और लाहौर के बैटर्स आज इंटेंट अगर उनका देखा जाए तो खासा खुला खेल रहे हैं। शायद उन्हें एहसास है इस बात का कि बड़े रन्स करने हैं, क्योंकि यहाँ पर 250 रन्स चेज हुए हैं लास्ट गेम में, और जैसे जैसे आज धूप भी बहुत अच्छी है, मैच आगे जाएगा, पिच बेहतर होता जाएगा। अच्छे रिदम में लग रहे हैं बिलावल भट्टी। 2 मैचेस में इनको आराम का मौका मिला, उसके बाद आज टीम में वापसी हुई। अच्छी तेज बॉलिंग की है, गेंद को विकेट पर पटकते हैं, अच्छी रफ्तार है। ये दोनों टीममेट्स भी हैं, दोनों सुई नॉर्दर्न गैस के लिए काफ़ी साल क्रिकेट खेले, इमरान भट्ट और बिलावल भट्टी, और एक दूसरे को बखूबी जानते हैं कि कौन कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कौन कहाँ पे वनरेबल है। ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, और इसलिए ये जो मुकाबला है ये काफ़ी काबिल दीद है। एक सेंचुरी बनाई है इमरान ने इस सीजन में, 94 रन की एक इनिंग्स खेली। और ये वो शॉट है जो आज शुरू में खेलते हुए इनका कैच गिरा था, जहांदाद ने कैच गिराया था बाउंड्री पर, लेकिन ये गेंद उनसे खासी पहले गिर गई। ये मुख्तलिफ तर्ज का खेल है, ये 50 ओवर, ये 45 ओवर की क्रिकेट होती है। ये उस तरह की घुड़दौड़ नहीं है कि घोड़ा जो है वो सरपट सिर्फ भागता जाएगा। यहाँ पर आपको काम और वक्त जो है वो भी सवाल होता है हल करने के लिए। ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट की तरह इसका उतार चढ़ाव जो है उसके साथ बैटर को अडेप्ट करना है सिचुएशन के साथ। पार्टनरशिप लग गई है तो इसका टेम्पो और है, अगर विकेट गिरी है तो इसके टेम्पो में थोड़ा सा शिफ्ट आता है, अनलेस कि आप किसी एक रेट के पीछे जा रहे हैं और आप रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन कई दफ़ा आपको रीबिल्डिंग प्रोसेस में जाना पड़ता है इस फॉर्मेट के अंदर। अच्छा यॉर्कर बेहतर ख़त्म किया है, एक और उम्दा ओवर का बिलावल भट्टी ने, 88 पर 1। तैयार की जाती है मुख्तलिफ दुकानों पर, मरी रोड के मकाम पर आपको इसकी बड़ी वैरायटी मिलती है जा बजा, और इसके जो ग्राहक हैं वो भी आपको जा बजा मिलते हैं। यकीनी तौर पर सलमान ख़रीदारी करना चाहेंगे लाहौर जाने से पहले वापस। देखिए जी, ये ट्रेडिशनल
चप्पल है पेशावर की और बड़ी खूबसूरत, आजकल ये बड़ी इन है और काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स ने अपने स्टोर्स के ऊपर इस तर्ज की कह लीजिए फुटवेयर है वो आपको मिलता है बहुत सारे ब्रांड्स के नाम से और अच्छा लगता है ये डिफरेंट ड्रेसिंग के नीचे और बहुत सारे लोग तो इसे हर किस्म के कपड़ों के नीचे इस्तेमाल कर लेते हैं। थोड़ा कह लीजिए कि सख्त इसका वो है सोल, आदत होने की बात है, अगर आप इससे यूज्ड टू हैं तो फिर बहुत लोग ऐसे हैं जो इसके अलावा कुछ नहीं पहनते। यहाँ पर स्पिन जो है वो अब शुरू हो गई है। महरान को विकेट से मदद मिल रही है। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खासे कामयाब रहे हैं इस सीजन में। इस वर्ल्ड कप में भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो हैं उनका भी दौर दौरा रहा है। रात हमने महाराज को देखा भारत के लिए, रविंद्र जडेजा बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग का वनडे क्रिकेट में दौर वापस आया। साउथ अफ्रीका के महाराज भी बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं और हमने जो चीज और आखिरकार एक कैच पकड़ा गया शॉर्ट मिड विकेट पे, एक अच्छा कैच और काशिफ जो फास्ट बॉलर हैं जिनके बॉल पे 2 कैच छूटे थे, आखिरकार उन्होंने कैच पकड़ लिया और महरान को मिली पहली विकेट। और इन फॉर्म इमरान बट लाहौर के लिए बड़ा लॉस हो सकता है। जहां लंबे कद के थे, गेंद बड़ी तेजी से आई, ये कतई तौर पर आसान कैच नहीं था। और आज की दोनों विकेटों में हाथ रहा है काशिफ का, इस बार उनके दोनों हाथ थे। लेफ्ट आर्म स्पिनर को जल्दी कामयाबी मिली और इमरान बट सेट होने के बाद वापस गए, इससे मायूस नजर आते हैं। लाहौर 88 पर 2। उमर सिद्दीक जो ज्यादातर वन डाउन पोजीशन पर खेलते हैं, आज जैद आलम इनसे पहले आए। ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है लेकिन अच्छा रिकॉर्ड है, 40 की औसत है, 157 की बेहतरीन इनिंग्स, 3 सेंचुरियां बनाई हुई हैं। सीनियर बैट्समैन है, जरूरत है इनकी टीम को यहां से रन्स बनाकर जाएं और लाहौर की टीम को इस टूर्नामेंट में रखें। उमर सिद्दीक जो है ये बड़े एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हैं और ज़्यादातर क्रिकेट इन्होंने एज एन ओपनर खेली है और इनकी टेक्निक भी खासी डिसेंट है और बहुत सारे शॉट्स भी खेलते हैं। हम इन्हें मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी बहुत सक्सेसफुल ओपनिंग करते हुए देख चुके हैं और हैरानगी की बात यह है कि अगर पावर प्ले का एडवांटेज लेना था तो ये सबसे ज़्यादा कैपेबल प्लेयर थे और रिजवान हुसैन जो है उनकी टेक्निक नहीं है ओपनर्स वाली। बहरहाल ये एक फुल बॉल शायद इस दफ़ा तेज़ गेंद किया महरान ने जिसको थर्ड मैन की तरफ प्लेस किया और 2 रन्स मिलेंगे। सिद्दीक ऑफ द मार्क। 21 ओवर का खेल खत्म हुआ, 90 पे 2 लाहौर ब्लूज। अभी अभी इमरान बट आउट हुए, ये पुल करने के लिए गए, बहुत ज्यादा एलिवेशन नहीं मिली, अच्छी जगह पर खड़े हुए थे मिड सर्कल में। काशिफ ने उम्दा कैच लिया। तो इस तरह रावलपिंडी की टीम जो है वो खेल में फिर पूरी तरह वापस आ गई है क्योंकि पार्टनरशिप खतरा बन सकती थी। और इस बार रोक लिया और यहां कैच आउट हो जाएंगे। इस बार तवक्को नहीं कर रहे थे, तेज बाउंसर बिलावल भट्टी की जानिब से और यके बाद दीगरे ये 2 विकेटें, दोनों सेट बैट्समैन गए। पहले यहां पर इमरान और अब जैद आलम। जी हाँ, यहाँ पे लाहौर 4 कैचेस छुटने के बावजूद 90 पे अपनी 3 विकेट गवा बैठे और दोनों सेट बैटर्स यहाँ पर नजरें हटा ली लेकिन बैट नहीं हटाया जो कि हटाने की जरूरत थी। जब आप बाउंसर छोड़ते हैं तो आपका बैट नीचे होना चाहिए लेकिन यहाँ पर बिल्कुल
सही तरीके से नहीं छोड़ सके ज़ैद आलम और 30 रन बनाए 43 गेंदों पर, पवेलियन में वापस जाएंगे। खुशी है इस वक्त रावलपिंडी की टीम को। आसान का ही था विकेट कीपर के लिए। हुसैन तलत ने एक और लेफ्ट हैंडर को ज्वाइन किया है। एक सोच ये भी हो सकती थी कि यहाँ जो है कासिम अकरम को पहले भेज दिया जाता हुसैन तलत की निस्बत, क्योंकि उमर सिद्दीक मौजूद है मैदान में और एक तरफ बाउंड्री शॉट है। अगर राइट और लेफ्ट हैंड का जो कॉम्बिनेशन आप रखेंगे तो हर ओवर में ही आपको एक तरफ बैटिंग टीम को बाउंड्री शॉट मिलती है, लेकिन यहाँ दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं। हुसैन तलत 141 इनका बेहतरीन स्कोर, 6 सेंचुरियां हैं, 91 की औसत। यहाँ इनकी टीम को ज़रूरत है आज अच्छी इनिंग्स खेलने की और अच्छा स्ट्राइक रेट भी है 91 का। ये इनका होम ग्राउंड भी है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, एक ज़माने में खेलते रहे, ये यूं कहना चाहिए, अभी भी यहाँ खेलते रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। आप लाहौर कलंदर्स खेल रहे हैं। हुसैन तलत पे जिम्मेदारी आ गई क्योंकि इन फॉर्म इमरान बट अब आउट हो चुके हैं और ये पिछले ही मैच में 70 रन की इनिंग खेली और अच्छे टच में है। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा किसी एक प्लेयर का कि वो आखिर तक रहे। अभी 24 ओवर्स का खेल बाकी है और इस स्कोर को 240-250 से अगर ऊपर लेके जाना है, जो कि यहाँ पर चेज हुआ है पिछले 1-2 मैचेस में, तो फिर हुसैन तलत या उमर सिद्दीक में से किसी को बड़ी इनिंग खेलनी होगी। और ये यकीनी बनाना है कि अगर अपनी टीम को आगे वाले मरहले में लेकर जाना है तो एक बैटर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और बाकी उनके इर्द गिर्द खेलेंगे। और ये वो बाउंसर था जिस पे बैटर खुद तो नीचे चले गए लेकिन बैट अपना वहीं छोड़ गए जहां पर बॉल आ रहा था, और बहुत ही आसान कैच विकेट कीपर के लिए। आज हर बैट्समैन को जल्दी कराई है बिलावल भट्टी ने, अच्छे बॉलिंग रिदम में वो लगे हैं, मुश्किल सवाल पूछते रहे, शानदार बॉलिंग। हुसैन तलत भी इनके टीममेट हैं सुई नॉर्दर्न गैस से, तो ये आज एक दूसरे के मद्दमुकाबिल हैं। और बिलावल भट्टी को एडवांटेज ये है कि अर्ली पहले इनकी बॉलिंग आ गई है और पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार है, अच्छा बाउंस है, डिसेंट पेस है पिच में और मूवमेंट भी देखने में मिल रही है। और ऐसे में बिलावल भट्टी का ऑड बॉल जो है वो एक्स्ट्रा बाउंस भी ले रहा है। 2 फील्डर हैं बाउंसर के लिए, यहाँ पर उन्हें चकमा देने की कोशिश की, डबल ब्लफ करने चले गए थे लेकिन अपना पहला रन हासिल किया हुसैन ने थर्ड मैन को खेलकर। और ये बहुत ही अहम मरहला है अब मैच का, 2 नए बैट्समैन मैदान में दाखिल हुए हैं, यहाँ जाहिर है रन रोकने का भी मौका है रावलपिंडी के पास और मजीद नकब लगाने का भी। दूसरी जानिब लाहौर को पार्टनरशिप दरकार होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही हाल बयान किया दोनों टीम्स का। और यहाँ पर अगर कैप्टन उमर अमीन रावलपिंडी के कप्तान अगर चाहें तो थोड़ा सा अटैक कैचिंग पोजीशंस थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। उमर सिद्दीक जो है ये अगेंस्ट पेस ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं ये, और बहुत सारे शॉट्स हैं इनके पास और कई मरतबा इनकी कमजोरी भी बन जाता है टू मेनी शॉट्स का होना। और यहाँ पे पहले कैमरा गया अजहर जैदी साहब पे, पीएनटी के रूहे रवां, उसके बाद तारिक रशीद जो अंपायर हैं उनका भी ताल्लुक उसी क्लब से, उससे पहले रिजवान हुसैन आउट हुए उनका भी ताल्लुक पीएनटी से। तो पीएनटी ने हैट्रिक कर दी आज के मैच में। अच्छा जाने दिया, इस बार फिर से गेंद उछलती हुई गई
विकेट कीपर रजाउल के पास 91 पर 3। बड़ी नफी तोली और उम्दा बॉलिंग की है तमाम बॉलर्स ने रावलपिंडी के लिए। और अच्छा टॉस उमर अमीन जीते। वो बेहतरीन कप्तान है उमर अमीन, इसमें कोई शुबा नहीं। इस वक्त उमर अमीन, सरफराज अहमद, साहबजादा फरहान इस सीजन में उन्होंने अपनी कप्तानी से मुतासिर किया है। इनके पास बड़ा तजुर्बा है क़यादत का। हाल ही में लेस्टरशायर काउंटी के लिए खेल कर आए हैं इंग्लैंड में। जी हाँ, तीनों बासलाहियत कैप्टन्स का आपने जिक्र किया और हमने यहाँ इसी पिच पे इसी ग्राउंड में देखा शान मसूद ने जब कप्तानी की तो वो भी काफ़ी अच्छे चेंजेस करते रहे, बल्कि वो पहले कप्तान थे जिन्होंने इन कंडीशंस में हैवी रोल का इस्तेमाल किया। और उसके बाद हमने देखा कि जो पिच के ऊपर बैटिंग हुई, इतनी आसान बैटिंग पहले नए बॉल के अगेंस्ट कहीं नहीं लगी। और यही वो फ़र्क था जिसका उससे पिछले मैच में हमने यहाँ जिक्र किया था कि अभी तक किसी ने यहाँ पर हैवी रोल का इस्तेमाल नहीं किया। दो लेफ्ट हैंडर्स के सामने यहाँ पर चैलेंज दरपेश है, क्योंकि ये पॉजिटिव मैचअप है उमर हुसैन के लिए। लेकिन उमर अमीन ने बड़ी चालाकी के साथ इनको शैलेंड से बॉलिंग कराई है महरान को, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स के लिए फिर बाउंड्री बड़ी हो जाती है। मैदान की जो मगरबी समत है, अगर ये स्लॉग स्वीप करने जाते हैं तो बाउंड्री बड़ी मिलेगी, उस क्लियर करना आसान नहीं होगा। हुसैन तलत दोनों तरफ स्वीप करना भी पसंद करते हैं, अच्छा खेलते हैं स्पिन को हुसैन। महरान की अच्छी बात यह है कि इस टाइम पे बॉल को स्लो कर रहे हैं और पिच जो है उसमें थोड़ी ग्रिप मौजूद है, जिसकी वजह से स्लो बॉल को हिट मारना इतना आसान नहीं होगा। इंटेलिजेंट बॉलिंग की है अभी तक इन्होंने, जो 2 ओवर्स किए हैं। 23 ओवर का अख्ताम, 93 पे 3 लाहौर ब्लूज। बिलावल भट्टी मुसलसल 7वां ओवर कर रहे हैं। अच्छी फिटनेस उन्होंने दिखाई है। 6 ओवर का स्पेल काशिफ अली ने किया, उवैस सनवर ने 5 ओवर का स्पेल किया। तो अपने फास्ट बॉलर्स को जब रिदम में थे तो तब्दीली नहीं की उन्होंने, जो कि अक्सर इमरान भट्ट कर दिया करते हैं लाहौर ब्लूज की कप्तानी करते हुए, स्पेशली जब कोई विकेट ले ले। और ये वो बॉल्स हैं जिनका हमने जिक्र किया कि जो ऑड बाउंस कर रहे थे, और उसमें हमने देखा कि बिलावल भट्टी का जो हैवी बॉल है उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिला ऑफ द पिच, और आज अच्छे रिदम में बैटर्स को ट्रबल किया इन्होंने। और पिच इसके अलावा इस बॉलर के अलावा किसी और बॉलर को इस तरह आज बाउंस नहीं मिला। सो डेफिनेटली समथिंग जो कि इनके रिस्ट के मुतालिक है कि जिस तरह ये बॉल को लाकर पटकते हैं, अपने रिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हालांकि इनका कद छोटा है लेकिन ये एक्स्ट्रा बाउंस एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो रहे हैं, जबकि बाकी बॉलर सब इनसे लंबे हैं लेकिन किसी को एक्स्ट्रा बाउंस नहीं मिला। ये गेंद थोड़ी देर तक हवा में रही थी लेकिन जाहिर है कि पहले गिर गई। अच्छी फील्डिंग की बिलावल भट्टी, उनको रोकना मुश्किल हो रहा है। बॉल आगे थी और हुसैन तलत थोड़ा रिलक्टेंट हैं, आगे नहीं आ रहे पूरी तरह जिस तरह आना चाहिए बॉल के ऊपर। शायद पिछला बॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये। अच्छा छोड़ा ये गेंद, अच्छी लाइन पे था, अच्छी लेंथ पे था। और एक बैटर को ऐसे मौकों पे जब पिच ऐसी हो, बॉलर इस तरह के रिदम में हो, तो उसे अगले बॉल के लिए तैयार रहना है। हर सूरत हर वक्त आपको एज अ बैटर अगले बॉल के लिए तैयार रहना है। उसी से आपका बैलेंस भी ठीक रहता है और आप मोस्ट बॉल्स को ठीक नेगोशिएट करने की पोजीशन में होते हैं। या सलमान, लेकिन ये जो फील्डर 2 पीछे लिए हुए हैं, स्क्वायर लेग और
जो लॉन्ग लेग पर बिलावल भट्टी ने और उनकी जो लेंथ है, जो उनकी फितरी लेंथ है, वो शॉर्ट पिच बॉलिंग करना ही है, यही वो डिलीवरी। तो उस सूरत में ये किस तरह तवाज़ुन ला सकते हैं हुसैन तलत, जिनको मुश्किल भी होती है शॉर्ट पिच बॉलिंग खेलते हुए, कि फिर ये अगले कदम पर ही माइल रहें। देखिए, अगर आप पिछले बॉल के लिए तैयार रहेंगे तो फिर आप आगे नहीं आ सकते। अगर बॉल आगे आ गई तो फिर आप उस आगे वाले बॉल का फायदा भी नहीं उठा सकते। लेकिन अगर आप अगले बॉल के लिए तैयार हैं तो आप बेहतर पोजीशन में हैं बॉल को छोड़ने के लिए भी और खेलने के लिए भी, क्योंकि आपकी जो बेस है, जब आपके कदम थोड़े खुल जाते हैं तो आपकी बेस स्ट्रांग हो जाती है, और जब बेस स्ट्रांग हो जाती है तो आपकी बॉडी का बैलेंस बेहतर हो जाता है। अगर आप छोड़ना चाहें तो आप आसानी से नीचे बैठ सकते हैं, लेकिन ये लग्जरी आपको बैकफुट के ऊपर नहीं है। यहाँ अगले कदम पर खेला एतमाद के साथ और महज टाइम किया और गेंद सर बसर पहुंच गई। शानदार कवर ड्राइव यहाँ उमर सिद्दीक का। यही वो फर्क है जो उमर और हुसैन तलत में है। ये उसी बॉल को जिसको हुसैन तलत आगे नहीं आ रहे थे, देखिए उसी लेंथ को अगली टांग थोड़ी सी उन्होंने निकाली बॉल की पिच के नजदीक और सिर्फ टाइम किया उन्होंने बॉल को, बहुत ही खूबसूरत। तो ये वो फर्क है, जब आप अगले बॉल के लिए तैयार होते हैं तो आपको रन्स भी मिलते हैं और आपका बैलेंस भी होता है। जहाँ सिर्फ अपना बल्ला गेंद पर गिराया, अच्छे टाइमर हैं उमर सिद्दीक। यहाँ पर ये मौका इन्होंने जाया किया, एक और लूज डिलीवरी थी। तो ये बेहतर ओवर लाहौर ब्लूज के लिए 99 पर 3। पांच स्पेशलिस्ट बॉलर हैं रावलपिंडी के पास। और आज हमने देखा है तेज रफ्तार बॉलिंग की जो मदद थी उसका फायदा लिया काशिफ ने। हमेशा की तरह ओवैस जो हैं ये अच्छा टैलेंट लगे हैं, अच्छा बॉलिंग एक्शन है, लंबे कद के हैं, उनने मुतासिर किया है। वो कि विकेट हासिल नहीं की, बदकिस्मत थे। जी हाँ, पिंडी के जो फास्ट बॉलिंग टैलेंट है ये हमेशा से ही बहुत टॉप क्लास रहा है। अगर हम बात करें मोहम्मद अकरम, शोएब अख्तर, मोहम्मद आमिर, सुहेल तनवीर, राव इफ्तिखार, नजफ शाह, बहुत सारे अच्छे फास्ट बॉलर्स, यासिर अरफात, और ये तीनों चारों फास्ट बॉलर्स बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं जो रावलपिंडी के लिए खेल रहे हैं। तो ये अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान क्रिकेट की। ये जो एक कुदरती एक टैलेंट की फ्लो है फास्ट बॉलिंग को लेकर, स्पेशली इस रीजन में, वो बहुत ही शानदार है। और ये वो इनक्लोजर है सुहेल तनवीर के नाम से, और यहाँ बेशतर इनक्लोजर जो है वो फास्ट बॉलर्स के नाम पर है, चाहे वो शोएब अख्तर के नाम हो, सुहेल तनवीर के नाम हो, और बहुत सारे फास्ट बॉलर्स इस रीजन से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और इनकी जो कॉमन चीज थी, तकरीबन सभी अच्छी और तेज पेस पे बॉलिंग करने वाले थे। लाहौर ने 100 रन मुकम्मल किए, इसके लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी है उनको। हुसैन तलत, उमर सिद्दीक से बड़ी उम्मीदें हैं ये दो आजमूदाकार खिलाड़ी लाहौर ब्लूज के। उनके लिए डू एंड डाई ये मुकाबला। लेकिन एक सवाल ये भी उठना चाहिए कि जो कासिम अकरम हैं, जिनके पोटेंशियल से हम सब वाकिफ हैं, क्या बेहतर नहीं होता इन दोनों के दरमियान उनको इस्तेमाल किया जाता? बाएं और दाएं हाथ का जो कॉम्बो है उससे भी परेशानी होती फील्डिंग करने वाली टीम को। देखिए, किया जा सकता था इस्तेमाल, लेकिन हमें बेशतर उन्हें नीचे ही खेलता देखते हैं। और पोटेंशियल की हम बहुत बात करते हैं, लेकिन डिलीवरी उनकी उस तरह से नहीं है जिस तरह पोटेंशियल की बात होती है। और यहाँ पर पानी का वक्फा है, 101 रन, लाहौर ब्लूज के 3 खिलाड़ी आउट।
7 ओवर का लंबा स्पेल बिलावल भट्टी के जानिब से। और अब हम तब्दीली देख रहे हैं, जहांदाद वापस आ गए हैं। 4 ओवर्स में 24 रन दिए, विकेट हासिल नहीं किए। 25 ओवर में 101, 3 विकेट्स गवा के लाहौर ब्लूज। और लकी कंसिडर करेंगे रावलपिंडी की टीम पे, इतने कैचेस छोड़ने के बाद भी चीजें कंट्रोल में हैं। टिकल 4 रन के लिए बॉल जाना चाहिए था, लेकिन ज्यादा पेस मौजूद नहीं थी जहांदाद की इस बॉल में। इजाज अहमद मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में। 4 जब कैच एक टीम छोड़ती है फिर भी चीजें कंट्रोल में रहे तो काफी लकी कंसिडर करना चाहिए अपनी टीम को, उमर अमीन को। एग्जैक्टली क्योंकि इस वक्त अगर हम ग्राफ देखें लाहौर की टीम का तो यकीनी तौर पर ऊपर नीचे कर्व जरूर है। आगाज वॉचफुल था, किस्मत भी मेहरबान थी, उसके बाद थोड़ा सा हमने तेजी से रन्स बनते हुए देखे और अब दोबारा से पिंडी की टीम थोड़ा दबाव डाल रही है। बॉल थोड़ा नीचे रहा है। एक अच्छा मोमेंटम बना था जब जैद आलम और इमरान भट्ट बैटिंग कर रहे थे दोनों, लेकिन फिर विकेट्स इकट्ठी गिरी, 2-1 ऊपर नीचे गिरी। लेकिन उसके साथ जो कैचेस ड्रॉप हुए उन्होंने भी मोमेंटम दिया लाहौर की टीम को। लेग साइड पे वाइड बॉल, और शायद वो वक्त था जब रावलपिंडी की टीम, इनफैक्ट विकेट तो तकरीबन तमाम गेम में मिलती रहती हैं, लेकिन वो हकीकत में एक अच्छा वक्त था या गुड टाइम फॉर गेटिंग विकेट्स, ताकि प्रेशर अर्लियर ऑन लाहौर की टीम पे आए। जहां पहले ही 2 ओवर में 2 कैचेस ड्रॉप हो गए थे और दोनों इनफॉर्म बैटर्स थे, इसीलिए मैंने कहा लकी कंसिडर करना चाहिए उमर अमीन एंड टीम को कि जल्दी ही विकेट्स गिर गई। अच्छी बॉलिंग है, अच्छे एरिया में बॉलिंग की है आज चारों सीम बॉलर्स ने। बिलावल भट्टी जैसे हमने अभी जिक्र किया कि लंबा स्पेल किया, मेहरान भी अच्छे लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बॉल किए सारे ही फास्ट बॉलर्स ने। लेंथ शानदार रही है। बिलावल भट्टी के बाद एक्सपीरियंस है, ये एक फायदेमंद चीज है बाकी बॉलर्स के लिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए, और जब एक यंग बॉलर के साथ ये मिड ऑफ पे खड़े होते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है किसी भी नए बॉलर के लिए। जैसा कि एक अच्छी लाइन और लेंथ जहां पर जानदाद को विकेट दिला सकती है, और यकीनी तौर पर जो आपने बात की बिलावल भट्टी की, कि अब एक अच्छी इनिंग भी खेली उन्होंने, लगभग 69 रन थे, मैच विनिंग इनिंग इनफैक्ट कहना चाहिए, तो कॉन्फिडेंस आता है प्लेयर में, और वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर जानदाद को भी चाहिए क्योंकि अभी विकेटलेस है अपने 5-6 ओवर में। हवा में स्विंग मिला है और ऐसा लगता है कि जहांदाद नए बॉल से ज्यादा बेहतर बॉलिंग करेंगे। लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर जो होते हैं ये ज्यादा आगे बॉल करते हैं, जिस तरह के जहांदाद बॉलर हैं फ्लोटर ज्यादा करते हैं, स्विंग का चांस लेते हैं, लेकिन इतना कंपटीशन है इस रावलपिंडी की बॉलिंग लाइनअप में क्योंकि बहुत ही स्किलफुल बॉलर है सारे। काशिफ की बात करें, अवैस अनवर ने भी बहुत इंप्रेस किया, थोड़े महंगे जरूर साबित हुए लेकिन अच्छी बॉलिंग की है, अच्छा प्रोस्पेक्ट है अवैस अनवर भी। बिलावल भट्टी के एक्सपीरियंस है, ये डेलिब्रेट खेले हैं, लेट खेले हैं, एंगल किया बैट को, 4 रन के लिए बॉल चला जाएगा। स्मार्ट बैटिंग हुसैन तलत की जानिब से। थर्ड मैन थोड़ा सा वाइड था, अच्छा फाइन खेले, बिल्कुल आखिरी लम्हात में बल्ले के साथ बॉल को कनेक्ट किया, वेट किया, और ये भी देखा कि बॉल नीचे रहे, हवा में नहीं थी, तो 4 रन। इसके साथ ओवर का इख्तिताम 26 के 107 पे 3। मेहरान भी इंप्रेसिव रहा है, 3 ओवर में सिर्फ 6 रन देकर 1 विकेट हासिल किए। और सबसे खास बात क्योंकि ये लोकल टीम है रावलपिंडी की टीम, ये वाकिफ है कि इन कंडीशंस पे, इन पिचेस पे, इस साल के इस टाइम पे, इस मौसम में कैसे बॉलिंग करनी है, और इसलिए मेहरान को भी आप देख रहे हैं कि बहुत स्लो बॉल कर रहे हैं, दूर बॉल कर रहे हैं,
चाह रहे हैं कि बैटर्स पिच तक पहुंचे, कदमों का इस्तेमाल करें, कुछ अलग करने की कोशिश करें, क्योंकि दूर वाला बॉल मुश्किलात डाल रहा है। ये कदमों का इस्तेमाल किया है, कुछ अलग करना पड़ रहा है बैटर्स को, क्योंकि आसानी से रन्स मिल नहीं रहे हैं, बॉल करीब आ नहीं रहा है, इसलिए मनूवर करना पड़ रहा है, रन्स बनाने पड़ रहे हैं। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। स्पिनर को यहाँ पर खेलना क्योंकि इतना मुश्किल नहीं, लेकिन जो हालात हैं इस वक्त, जिस तरीके से मेहरान बॉल को करवा रहे हैं या पिच कर रहे हैं, उसमें यकीनी तौर पर उनकी कोशिश है कि एक आध और विकेट निकालें। एक्साइटिंग स्टार्ट फरहान ने दिया है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। सलमान इरशाद ये भी बहुत शानदार बॉलर हैं, लाहौर ब्लूज के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, 2 रन्स लेने की कोशिश, लेकिन अच्छी थ्रो, अच्छी फील्डिंग। कैचिंग अच्छी नहीं रही है, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग में काफी तेजी देखी है हमने। लेग बाय का इशारा इमरान जावेद की जानिब से। ये कॉन्ट्रास्ट रहा है कि आप कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग पिंडी की, क्योंकि फिट क्रिकेटर है सारे, एथलेटिक हैं सारे, यंग हैं, ग्राउंड फील्डिंग अच्छी रही है। एग्जैक्टली, इंप्रूवमेंट इस वक्त नजर आ रही है। अच्छा बॉल था, सरप्राइजिंग डिलीवरी थी यहाँ पर उमर सिद्दीक के लिए, बिल्कुल ऑफ स्टंप के करीब। सब बॉल तेज भी निकला। अच्छा मिक्सअप कर रहे हैं, इससे पहले हमने देखा स्लो बॉल कर रहे थे, दूर बॉल कर रहे थे, ये शार्प स्पिन किया, थोड़ा पेस डाली है, तेज किया है, इन दी एयर तेज बॉल किया है मेहरान ने, स्मार्ट बॉलिंग। 27 ओवर्स के बाद 112 पर 3 लाहौर ब्लूज। एवर स्मार्ट, एवर गुड लुकिंग अजहर जैदी साहब, PNT जिमखाना के रूह रवां, जिन्होंने बहुत बड़े क्रिकेटर्स बनाए हैं। अब्दुल रज़ाक का जिक्र करें, इमरान नज़ीर, सलीम इलाही, अलीम डार, ये सारे क्रिकेटर्स PNT जिमखाना से खेलते हैं। आउटसाइड एज, 1 रन जरूर मिलेगा। तो इनका बहुत अहम रोल रहा है लाहौर की क्रिकेट में। अजहर जैदी साहब का PNT जिमखाना, ऑल्दो ज़्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं था जहां जब ये PNT जिमखाना शुरू हुआ था, शुबुर्जी के पास एक छोटा सा ग्राउंड था जिसमें घास भी नहीं था, जहां पे PNT जिमखाना का नेट लगा करता था, और वहां से इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स को बनाना, उनको डेवलप करना, बड़ी स्टेज पे लेके जाना, इनका बहुत अहम रोल है लाहौर की क्रिकेट में। और ऐसे बहुत सारे और ओहदेदार हैं लाहौर क्रिकेट के जिनका बहुत रोल रहा है। वाइड बॉल हो जाएगा। शोएब डार भी एक नाम है, मॉल टाउन ग्रीन्स के रोआ रवाएं उसको हेड करते हैं। सलमान बट, वहाब रियाज, एजाज चीमा, सारे उनके क्लब से आए। क्रिकेट सेंटर जिनको स्टार्ट किया था खुरम हफीज साहब ने, उससे भी कामरान अकमल आए हैं। अभी हम देख रहे हैं हुसैन तलत भी ये स्टैग्स क्रिकेट क्लब से खेला करते थे। और एक क्लब इजाज, क्योंकि लाहौर की क्रिकेट की बात हो रही है, एक क्लब जिसने हमेशा ही PNT को टक्कर दी है वो लुधियाना जिमखाना, जिसे ग्रेट वसीम अकरम भी खेले, सऊद खान एक और बहुत बड़ा नाम लाहौर क्रिकेट का, सिद्दीक खान, उमर सिद्दीक, काशिफ सिद्दीक, खुरम सिद्दीक, ये सारे लुधियाना जिमखाना से खेले। फिर एक और क्लब है अपोलो, उनसे भी बड़े बड़े क्रिकेटर आए। मोहम्मद यूसुफ वहाँ से खेलते थे, सलमान अली आगा, मोहम्मद हफीज भी थोड़ा अरसा खेले हैं वहाँ से, जितनी देर वो लाहौर में रहे। ये बड़े नाम है जिन्होंने लाहौर की क्रिकेट को संभाल के रखा है। मंसूर साहब, नवाब मंसूर, जो कि मॉडल टाउन क्लब को देखते हैं, ये बड़े नाम हैं जिन्होंने लाहौर की क्रिकेट को इंटैक्ट रखा है। जी हकीकत में किंग मेकर्स। और अभी जो लाहौर की टीम है, इनफैक्ट लाहौर ब्लूज, इनको फतह दरकार है। आउट ऑफ 5 सिर्फ 2 मैचेस जीत पाई है। आगे पड़ा हुआ बॉल, अच्छा सिंगल लिया। और इस वक्त ये वक्त है कि एक अच्छी सेंसिबल बैटिंग की जाए, क्योंकि पार्टनरशिप गो के
थोड़ा टाइम ज़रूर ले रहे हैं दोनों बैटर्स। अच्छे बैटर्स हैं उमर सिद्दीक और हुसैन तलत। दोनों ने बड़े ना सही लेकिन कुछ ना कुछ रन ज़रूर किए हैं इस इवेंट में। तो इनकी टीम चाहेगी कि यहाँ से ऑनवर्ड एक अच्छे टारगेट की तरफ बढ़े टीम। 7 विकेट अभी बाकी हैं। ये रन्स तो किए ही किए। एक कैच बहुत शानदार पकड़ा था इन्होंने मिड विकेट पे खड़े हुए, जब लास्ट टाइम लाहौर ब्लूज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलने आई थी। उस मैच की वजह से काफ़ी चेंजेस आए थे, मैच में वापसी हुई थी। जीत नहीं सके थे लेकिन वापसी ज़रूर हुई थी। तो एक विकेट कीपर भी हैं, फील्डर अच्छे हैं, और इनके भी दोनों भाई जो बड़े भाई हैं वो भी अच्छे क्रिकेटर हैं। खुरम सिद्दीक, काशिफ सिद्दीक, इनके वालिद साहब बहुत ही फॉर्मेडेबल अंपायर सिद्दीक खान साहब। और ये वो नाम है जो अब बहुत कम हो गए हैं, मिसिंग हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। मजीद बात करेंगे 28 ओवर्स के बाद 118 पर 3 मिनट 40 सेकंड। हाँ ये वाला होगा। भाई जिक्र हो रहा है लाहौर की क्रिकेट का, तो दो नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौर की क्रिकेट में। पुल किया, फील्डर मौजूद है, एक ही रन बनेगा। एक नाम है मोहम्मद यूनुस, जिसे मामा जूना के नाम से जो बहुत मशहूर हैं लाहौर की, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट में। अक्सर हमने देखा बाबर आजम उनका बहुत जिक्र करते हैं, बाबर आजम को ट्रेन करने में, और जो बाबर आजम आज हैं उनका बहुत अहम रोल है। दूसरा नाम अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब का है। जितने भी लड़के कॉलेज क्रिकेट खेले हैं वो उनको जानते हैं, और वो बहुत ही शानदार कोच हैं अख्तर मुमताज़ भट्ट। थोड़े सख्त ज़रूर हैं लेकिन वो आपकी बेहतरी के लिए सख्त हैं। एमओ कॉलेज को कोच किया करते थे जब हम गवर्नमेंट कॉलेज से खेलते थे, और हम बहुत लकी थे कि हमारे अपोनेंट्स को कोच कर रहे थे अख्तर मुमताज़ भट्ट साहब, और हमें कोच किया करते थे साउथ खान साहब गवर्नमेंट कॉलेज में। तो बहुत लागतबाजी वाले तगड़े मैचेस हुआ करते थे। तो हल्का सा गाइड किया, सिंगल लिया। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से कोचेस जो है वो प्लेयर्स को बनाते हैं किंग मेकर्स, और ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि हॉकी में। मैंने एक दफ़ा एक कॉलम पढ़ा जहां पर बकायदा ये लिखा था कि जो प्लेयर बाहर बैठा हुआ था बेंच पे, 2-3 गोल हो गए अपोनेंट की तरफ से, तो जो साथ प्लेयर बैठा हुआ था कोच के, उसने कहा ये यहाँ से राइट फॉरवर्ड या सेंटर फॉरवर्ड यहाँ से खेलना चाहिए। उसको 2 लगाई कोच ने, तो कहा तू इतना अच्छा था, तू अंदर खेल रहा होता। तो ऐसी भी सख्ती रही है कोचेस की तरफ से। ग्लव्स लगे, पहला रन तेजी से लिया है, ये अच्छी क्रिकेट है उमर सिद्दीक की जानिब से, क्योंकि दूसरा रन फिर बहुत आसान हो जाता है। अगर आप पहले रन में तेज स्प्रिंट लगाते हैं तो आप दूसरे रन में आराम से भाग के वापस जा सकते हैं। अच्छी क्रिकेट है, अच्छी गेम अवेयरनेस है उमर सिद्दीक की जानिब से। हाँ जी, ये सख्ती बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट जब आप यंग एज पे होते हैं, जब आप सीखने की स्टेज से गुजर रहे होते हैं, तब आपको एक थोड़ी कहीं ना कहीं सख्ती की ज़रूरत होती है, क्योंकि अभी गेम थोड़ा स्लो पैसे चल रहा है, तो हम इतनी बातें कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये एक रिकवरी स्टेज है लाहौर ब्लूज के लिए। 29 ओवर्स के बाद 123 पर 3, और पानी का वक्फा भी यहाँ पे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में।
इमरान बट जो कि अच्छी फॉर्म में है, 37 रन बनाए। रिजवान हुसैन को भी मौके मिले, 18 रन ही बना सके। ज़ैद आलम ने अच्छी टेक्निक दिखाई थी, लेकिन एक ऐसा बॉल जो इसमें एक्स्ट्रा बाउंस था, विकेट गवा बैठे। 30 रन बनाए और अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही है उमर सिद्दीक और हुसैन तलत में। कासिम अकरम, जुनैद, ये दोनों ही बैटिंग कर लेते हैं। 123 पर 3 29 ओवर्स में। वेल, बॉलर्स ने अर्लियर ऑन कोशिश तो काफी की, लेकिन ये विकेट कॉलम मजीद इंप्रूव हो सकता था। एक विकेट शेयर किया काशिफ, बिलावल भट्टी और मेहरान ने। फिगर्स इंप्रूव हो सकते थे, लेकिन ओवरऑल सपोर्ट जो है फील्डर्स की वो नहीं रही बॉलर्स के लिए। इनफैक्ट इन द स्टार्ट, लेकिन इस वक्त किसी हद तक ग्राउंड फील्डिंग इंप्रूव हुई है। और दूसरी तरफ जो बैटर्स हैं वो भी इस कोशिश में है कि अब हवा में ना खेलें। हमने देखा पिछले 2-3 ओवर से रोटेट कर रहे हैं, एक आध बाउंड्री ऑड लगती है, लेकिन ज्यादातर रिस्क फ्री क्रिकेट। ज़िशान मलिक बॉलिंग पे आ गए, ऑफ स्पिनर हैं और ये जानते हुए उमर अमीन के दोनों लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहे हैं। ऑफ स्पिनर क्योंकि पार्ट टाइम बॉलर हैं। यहाँ पे अगर ये विकेट लेने में कामयाब होते हैं तो ये बहुत अच्छा स्टेप साबित होगा उमर अमीन की जानिब से। ओ, एक बार थोड़ी सी देर हवा में था बॉल और अच्छी फील्ड सेट कर रखी है। मिड विकेट पे फील्डर ले रखा है ज़िशान मलिक के लिए, क्योंकि ये मारते हैं एक शॉट मिड विकेट की जानिब उमर सिद्दीक। थोड़ा डिफरेंट बॉल किया है, थोड़ा तेज किया, जिसे एक्स्ट्रा कवर की जानिब उतने ही शानदार तरीके से टाइम किया है उमर सिद्दीक ने 2 रन के लिए। ये फर्क होता है एक नॉन रेगुलर बॉलर में और एक प्रॉपर रेगुलर बॉलर में, क्योंकि मेहरान मुमताज जो बॉलिंग कर रहे थे वो बहुत स्लो कर रहे थे थ्रू द एयर और दूर कर रहे थे। ज़िशान आए हैं तो थोड़ा तेज बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा फ्लैट बॉलिंग कर रहे हैं। ये रन सेविंग बॉलिंग तो हो सकती है, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलिंग जब तक बैटर गलती नहीं करेगा मुश्किल होगा। स्वीप शॉट, लेकिन एक ही रन के लिए। और बेहतर गए, अब तक सिर्फ 3 रन दिए ज़िशान ने अपने 4 बॉलों में। तो लगता है ये है कि एक आध बॉल पे टेक ऑन करने जा रहे थे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सेलेक्ट भी करना है कि नॉन रेगुलर बॉलर हैं, तो माइट भी आप थोड़ा एज अ बैटर अटैक कर दें उन पे और एक आध चौका ओवर में ले लें। राउंड आर्म बॉल किया, कुछ अलग करने की कोशिश। 30 ओवर्स मुकम्मल हुए, 126 पर 3 लाहौर ब्लूज। रिटर्न 101 डॉट डिलीवरीज, 30 ओवर 101 डॉट डिलीवरीज, 8 चौके अब तक, 2 छक्के। और अर्लियर ऑन भी हमने देखा कि इतने ज्यादा चौके पावर प्ले में नहीं आए। इस इनिंग में ज्यादा डॉट्स डिलीवरीज हमें देखने को मिली हैं, क्योंकि इससे पहले हमने ग्राफ देखा था जिसमें ओवरऑल पाकिस्तान कप में जो परसेंटेज है डॉट बॉल्स की वो लाहौर ब्लूज की सबसे कम है। लेकिन यहाँ पे रावलपिंडी में जहाँ पे बॉल थोड़ा सीम स्विंग ज्यादा होता है बाकी ग्राउंड से, थोड़ा वक्त लिया, थोड़े डॉट बॉल ज्यादा खेलने को देखने को मिले हमें। इमरान बट, रिजवान हुसैन और ज़ैद आलम से रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक कम रही है और प्रेडिक्टेड स्कोर जो है वो 189 है इस वक्त। इसको बढ़ना होगा, इसको 250 तक जाना होगा, क्योंकि लाहौर ब्लूज को एक तो ये मैच जीतना है और अच्छे रन रेट से जीतना है, क्योंकि 3-4 टीमें ऐसी हैं जो सेम पॉइंट्स पे हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि एंड पे नेट रन रेट ही फैसला करेगा ये कौन सी टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी। बड़ा शॉट है, जोन ढूंढा है अपना फील्डर है, लेकिन वो देखते रह जाएंगे। सर के ऊपर से खेल दिया ये शॉट 6 रन के लिए हुसैन तलत ने। अच्छा वक्त है ये बाउंड्री के लिए लाहौर की तरफ से, चूंकि जैसे अभी 189 जो कि एक प्रेडिक्टेड स्कोर है, इसको मजीद अपलिफ्ट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। आगे पड़ा हुआ बॉल की पिच तक पहुंचे और अच्छा कनेक्ट किया ऑन साइड पे। फील्डर मौजूद जरूर था, लेकिन अच्छा मैनेज किया उसके सर के ऊपर से। इस दफा फिर तेजी से खेले, यकीनी तौर पर एक और चौका। बहुत ही एक्सीलेंट बैटिंग, यहाँ जोरदार शॉट है ये। अब थोड़े प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं मेहरान मुमताज। एक और छोड़ा हुआ बॉल था, स्लो बॉल किया है, लेकिन जो लेंथ है वो उनके जोन में, कदमों का इस्तेमाल किया, अपनी लेंथ क्रिएट की है और यही वो चाह रहे थे। लेकिन थोड़ा बाहर बॉल करना होगा, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करेंगे तभी फायदा होगा उनके कदमों के इस्तेमाल करने का मेहरान मुमताज को। चलो चलो एक है
12 रन ऑलरेडी आ गए हैं 4 बॉलों पे, और ये महंगा ओवर साबित हुआ है, इस इनिंग का सबसे महंगा ओवर है। और आप देख सकते हैं कितनी कंट्रोल बॉलिंग की गई है टॉप 3 फास्ट बॉलर्स ने। इनफैक्ट ज्यादा थोड़े महंगे साबित हुए, 6 में 36 रन दिए। और एज लगाई है, 4 रन के लिए चली जाएगी बॉल। लकी बाउंड्री लाहौर ब्लूज के लिए। 50 रन की पार्टनरशिप भी मुकम्मल हुई है इस चौके के साथ। वेल, दोनों बैटर्स के लिए इस वक्त रन आ रहे हैं। शराकत, जैसे अली ने कहा कि 50 हो गए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट तो नहीं था स्ट्रोक, लेकिन रन आए। और यहाँ पर हुसैन तलत, उनके साथ उमर सिद्दीक, गो के इतने बड़े रन्स नहीं किए इन्होंने इस इवेंट में। एक अच्छा वक्त है इन दोनों के लिए कि रन्स की तरफ जाएं। डॉट डिलीवरी के साथ ओवर का हुआ इख्तिताम 142, 3 के नुकसान पे 31 के बाद। वेल, रिदम बेहतर है इस वक्त उस्मान कादिर का। और अभी फिलहाल हमने देखा कि स्पिन बॉलिंग में गो के उतनी ज़्यादा ब्रेक नहीं थी, लेकिन इनका रोल इनफैक्ट कहना चाहिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस सरफेस पे, क्योंकि ऑलरेडी जिस अंदाज से ये बॉलिंग करवा रहे हैं गो कि उस तरह से बड़ी विकेट्स हासिल नहीं कर पाए, लेकिन फिलहाल कि जो रिदम है वो बेहतर हुआ, इम्प्रूव हुआ। और दूसरी तरफ जीशान कोशिश करें कि विकेट ले पाए। बॉल जो है वो तेज कर रहे हैं जीशान मलिक। ऐसा लग रहा है थोड़ा बैकफुट में, आप थोड़ा दिलेर हुई है, थोड़ा हवा दीजिए, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर हैं। देखिए राउंड ऑन बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा तेज बॉलिंग कर रहे हैं, जो आसानी से निगोशिएट कर रहे हैं दोनों ही बैटर्स। अच्छी पार्टनरशिप है ये, क्योंकि दोनों ही एक्सपीरियंस्ड हैं, स्किलफुल हैं, हुसैन तलत और उमर। ये रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक अच्छे तरीके से करेंगे। एग्जैक्टली, उमर सिद्दीक 46 इनका हाईएस्ट है इस इवेंट में। और कोशिश इनकी यही है, जिस तरह से फुटवर्क इस वक्त दिखा रहे हैं हुसैन तलत, कहीं ना कहीं जीशान पे अटैक करेंगे। सेंसिबल क्रिकेट है दोनों जानिब से। विकेट्स के बीचों बीच बॉलिंग कर रहे हैं, ये अच्छी चीज कर रहे हैं जीशान मलिक। ऑल्दो तेज कर रहे हैं, राउंड आर्म कर रहे हैं, लेकिन जो लाइन है वो विद इन द स्टंप्स है कि जहां पे भी मिस आउट होंगे बैटर, ये विकेट हासिल करेंगे। यू मिस आई हिट, विद इन द स्टंप्स बॉलिंग कर रहे हैं। और जब भी बॉल यहां से मिस होगा या मिस हिट भी इवन होगा तो विकेट हासिल होगी। एग्जैक्टली, शायद यही वजह है कि वो थोड़ा सा बॉल को तेज भी कर रहे हैं। वाइड बॉल लेग साइड पे थोड़ा ज्यादा ड्रिफ्ट कर गई बॉल, अदरवाइज अब तक सिर्फ 4 रन दिए इस ओवर में। बेहतर कंटिन्यूटी है, इससे पिछला ओवर भी बेहतर किया जीशान ने। और इस दफा थोड़ा सा रूम बनाया, एक्स्ट्रा कवर की जाने बॉल फेंस पार कर गई 4 रन के लिए। थोड़ा पेस में कमी लाए थे, लेकिन उतने ही तगड़े तरीके से खेला गया शॉट। ये जोरदार शॉट था, रूम दिया, थोड़ा अभी भी राउंड आर्मिश था। ये इजी पिकिंग्स हैं, अपनी लाइन क्रिएट की है, लेंथ क्रिएट की उमर सिद्दीक ने, और प्लेसमेंट शानदार रही 4 रन के लिए। 32 ओवर्स के बाद 150 रन मुकम्मल कर लिए लाहौर ब्लूज ने। Abbas has been brought back in the attack. 150 for 3 at the end of 32 overs. Has been a good partnership, 60 of 65.
Some field set for Hussain Talat. Has got a decent start, 26 of 32. Down to the fielder at third man for a single. So got to make sure that they keep on rotating the strike. Along with that, they need boundary. If not every over, then at least in alternate overs. Joining me in the commentary box is Salman Butt. Salman, it has been a decent partnership, 61 of 66, and they are surely looking on course for a big total. Yes, thank you, Numan. Yes, it was very important that these two got on with this partnership, because Lahore has been a team which hasn't been doing well. If you have a look at the points table, they badly need to win this game. And by losing 3 wickets, out of which 2 were in quick succession when both the set batters, they failed to continue, then it was very important that both these experienced players, Hussain and Umar, they carried on in the partnership. It's all about getting runs on the board, and I think they need definitely 240 plus over here to make a match of it. Well, absolutely. It's a do-or-die game for Lahore Blues. They have won 2 out of their 5 games. They've lost 3, and if they win today, they can move up to number 2 or number 3 with their better net run rate. So they don't only need to win, they need to win good. And that's not the first time in the tournament we have seen Umar Sadiq showing some intent, showing some class. He's got some good runs in the tournament previously as well. Sban Kadir along with Haider Ali. It's a good spirit of the cricket, good camaraderie all over the place. So good to see these players. They have played together for a number of years. Pakistan A team, the domestic sides. So dealing in singles, and seems like the wicket has become quite easier to bat on. Down to the third man has been a productive region for both of these batters. Plenty of singles through this gap, and this could be plucked in because there hasn't been much towards mid-wicket lately, especially on the faster men. Umar Amin has done a great job so far. He's kept his fast bowlers going, kept him using while the ball was new, while the ball was doing a bit, and all the fast bowlers have responded really well. They've bowled good lines, good lengths, created chances. Not all of them were taken, but still I believe that they've bowled particularly well. This guy, just playing his second game, driven this time, driven hard to mid-off. No damage done, straight to Bilawal Bhatti, and Bilawal was on song today. He bowled 7 overs on the trot, giving away 33 runs, taking 1 wicket. Awais Anwar is bowling his 6th, and Kashif Ali has he's been really miserly, just given away 10 runs, 2 maidens, 6 overs he bowled. Just unlucky that the catches were not taken. Otherwise, Pindi would have been all over Lahore. It's a very interesting passage of the play. The partnership has been building, and if Rawalpindi to make sure that Lahore do not go beyond 100 and 250, 260, they need to break this partnership. 62 of 71, 33 done, 152 for 3. इसका 13 मिनट है गुड ओवर चलो बोल चलो वैस पहुंच जा बस ही पीछे ही रह जाता ना उमर भाई थोड़ा बाहर ही रखो 152 for 3 here, 33 gone, 12 to go. 2 set batters once again. Umar Siddiq on 33 and Hussain Talat on 27. Both have now set the platform. From here on, they should score at least 100 more runs. Have a decent total on the board. Umar Siddiq makes room, and the bowler obliges with a shorter length and very smartly has placed it through the third region. Will get another boundary. Intelligent batting this, using all his experience, and the bowler not being a regular one, Zishan, he fell in the trap, saw the batter move away and bowled a quicker one, shorter one, and that is what the batter was planning to do. Moving away, he knew the bowler would bowl quicker. He placed it easily through third man. Once again,
This time, it's just a 1. So good batting this. Once you get the boundary, then you come back to rotate the strike. You can take 7 to 8 risk-free runs. That's the way to go unless time comes when you can really force the issue. This is a third over from Zishan Malik. And if you look at the two batters in the middle, both of them are left-handed batters. It seems to be a right ploy to bring on an off-spinner. But he needs to deliver. He needs to take a wicket. It's not right. You have to be an off-spinner. Proper one. Just for the sake of matchup, you can't have a half-cooked bowler bowling. It's not the idea. Remember, in international sides, if you are a good left-arm off-spinner, or right-arm leg spinner, finger spinners or whatever, if you are a specialist spinner, you have to bowl both to the right and left-handers and you have to be good. This one has been placed over extra cover. Now the matchup is going clearly in the favor of the two left-handers because the bowler is just a part-timer. And here, this matchup thing has been blown out of proportion. You have to be a decent bowler to bowl to good batters like these. That's inside out, beautifully played. Umar Sadiq moves to 42. A dot ball to end the over. Zishan has bowled 3 overs, couldn't pick up a wicket, has given away 21 runs, 162 for 3. Here is the Rawalpindi bowling card. And this one pulled, but no damage done. Straight to the fielder at short mid-wicket. And if we have a look at the bowling card, we see all the faster men really doing well. They were unlucky. The chances were not grabbed. And then Jahan Dayat came in, and he also bowled really well. Then Mehran, he's been wonderful. 6 overs, 31 for 1. And then Zishan has come in, and my fellow commentator tells me that he's been among the wickets recently, but not on this occasion. Today, the batters have done really well. Dabs out to the short third fielder. That's a good stop. 72 of 79 is the partnership. Good thing Umar Amin has done today is that all the fielders in the circle are moving in. They are closer to the bat, cutting in on the angles and cutting on the short singles. There is Umar Amin on your screen. He's shown good game awareness, has been switched on with his captaincy, proactive, had the fielders in the right positions. Had he been fortunate, he might have had at the moment, oh, who knows, we might have reached 162 or not. The way the catches came in the first 4 or 5 overs. Yeah, that's better. That's better length. Now, the partnership has been going well, Salman. And these two batters, from this point on, they need to make sure that they do not lose a wicket here, because this is a very important stage of the play. They still have Qasim Akram and Junaid Ali to come, but Qasim is a kind of a player, if you give him, per se, 210 runs in 40 odd overs, he can give you some ball striking at the later phase of the innings. But for that reason, these two batters have to bat long. Pulled on the onside, in the gap. Hussain Talat gets a boundary. That's brilliant batting. Yes, this time he went across, brought his front shoulder in the line of the ball, and then was able to swivel and place it between the two fielders on the boundary. There we see him moving across, taking the ball outside of his front shoulder and then pivoting across, able to place it in the gap. Good shot construction by Hussain Talat on this occasion. He had the gap in his mind and he took full advantage of this length.
This time it's wide, and the umpire also thinks so. So he signals it a wide. So 5 runs of the 4 balls bowled so far. And what was going to be a good over now of 4 balls, it's 5 runs. Just because that one good shot from Hussain Talat, then the bowler goes way outside the off stump trying to compensate for the previous ball. And you rightly pointed out that these 2 batters, Naman, they need to go and try to bat at least till the 40th over. Yeah, that's what happens. Once you concede a boundary, you go back to plan B, and that is the defensive approach, to make sure that you bowl away from the batter, make sure that you do not bowl in his zone. Struck straight down the ground. That's another boundary. Make that 2 of the over. And Hussain Talat is getting in the groove. Yes, he's far more experienced, and the bowler just playing his second game. He doesn't seem to be very clever. He was firstly trying to overcompensate with his line. It went wrong, and then he bowled fuller, and Hussain just took a step towards the bowler and then placed it through mid-off. Another boundary, and Lahore Blues are now looking in a very good position. 171 for 3 with just over 10 overs to go. And with these 2 getting in their act together, this could be really good for Lahore Blues. Once again, every time he looks for a single, he tries to play it through third man. 35 gone, 171 for 3 Lahore Blues. Dugout, Faisal, the analyst, he's always does a good job, has been around with a number of teams. Along with him is the captain Imran Butt, Junaid the keeper, and Fal Masood, the bowling coach. They all have a bit of a concerned look on their face, both expecting these 2 boys to carry on. They know the importance of the set batter, playing through the innings towards the end overs, and that is where the big runs lie, if you can get there with the set batters and with a few wickets in hand as well. Like you just said, Numan, Qasim Akram, it would be ideal for him to play the lesser number of overs where he can be himself. Because once he comes in with a lot of overs to go, then at times he is found wanting what to do, gets confused how to play. There is the young Qasim Akram, loads of potential, good shot. He has a lot of good shots up his sleeve, but at times he just wants to play too many shots too early, and that brings about his demise. But when he plays good knock, he looks very attractive. Bilawal Bhatti once again. This time he avoids the fall. He often falls while he's bowling, and I don't know what goes wrong with him. It has got a very brisk, very swift run up. The load up, the action. Which you've rightly mentioned, every now and then he falls. But this time around he avoided that. Cuts well. No chance for the fielder at backward point. And that will go across the fence for a boundary. 2 boundaries in the last over. And starting this over with the boundary as well. Lahore Blues, they look on song today. The boundaries are flowing now with 2 batters set and looking really good. Umar Siddiq goes to 46 with this stroke. Not a very bad ball, but Umar created his room, taking his body a bit back and allowing his arms to swing through, placing the ball with perfection through point and the third. So the partnership now is 85, and they're taking their team towards a good total. Once again, a single through the third region. And Bilawal Bhatti now has gone around the wicket, trying a different angle. Umar Siddiq, I must say, has looked fluent from the word go. He's come in
He's taken the singles, he struck it beautifully. He has played shots which are good cricketing strokes over extra cover, through point, through the legs. He has looked on top of his game. Once again, dabs out to third man. Seems like this is his favorite zone. He always tries and fancies to get a few runs through that first slip, second slip, the gully, the third man region. Having known him over the years, playing in his oppositions, I know it for a fact that if you take a gully for Hussain Talat, he's not a happy man. He does not like a gully standing there because that is his one area where he gets away from the strike. And if you can plug that gap, then he has to think of other options, and that creates a discomfort for him. So we wonder why Umar Amin has not placed a gully for him, because that has been his strong zone throughout the innings. We have seen that, and being a proactive captain, you got to think out of the box. You got to make sure that you block the scoring options for the batter. Yes, definitely it is the job of the captain to be proactive and look for things such as this. But if he is occupied in something else, then it is the job of the people sitting in the dressing room, sitting in front of the laptops. This is what they need to tell, where the most runs are coming from, which gaps to plug in. Because one thing which is good in the Pindi boys is that they are consistent with their line and length. These fast bowlers, these young fast bowlers of Pindi, out of all the regions, have been most consistent with their line and length, at least on the occasions that they have played here at the Pindi Stadium. So this kind of good line and length allows the captain to take particular fielders, because you know these boys are not going to go wrong. So it is a luxury for the captain. So he can set particular fields because he knows these bowlers are very precise. Once again, a shorter delivery has been called as wide by the umpire. Not the first time. Rawalpindi has tried to bowl a bouncer that has been given as wide. It's been called one for the over by the umpire as well. Once again, trying to hit the deck hard. But the length was a bit too shorter. That's the reason why it has been called as wide. Plucks on the onside for a single. Hussain Talat will keep the strike. Single will end the over. 180 for 3. Second power play. End of second power play. हमारे भाई आ जाएंगे मैं डॉन आऊँगा मैं जाऊँ ना मैं डॉन 6 over का split है ना? ये 7 का तो 7 शुरू होगा। 31st से शुरू होगा। Bowling change, right arm. Over. 32nd से शुरू होगा। Oh, ज़्यादा ही साफ। The good-looking manager, and with a very good-looking young fast bowler, Hunain Shah, the skillful Hunain Shah. On the previous game, which was played here at this particular ground, he took 6 wickets, won the game from Lahore Blues. I wonder if he's fully fit, because you can't have him sit out if he is fully fit. Slow one this time, and the batter has no problem in just pushing it gently for a single down the ground. He has something to tell, something to communicate to Umar Siddiq. Salman Irshad was on your screens, the another fast bowler who's done well throughout the competition. With his Malinga-like action, he's pretty deceptive. Good slower balls, good yorkers. He's a very good package to have for any captain. Very easy game it is at the moment for Umar Siddiq. He's making it look so easy. Salman, you were mentioning about the Pindi fast bowlers being consistent in terms of their line and length, but if you talk about
the paces they have in the rank. Has been one of the most inexperienced bowling attack. 3 of the fast bowlers, they made their debut in this Pakistan Cup. Kashif Ali, Awais Anwar, Jadad Khan, all 3 fast bowlers, they made debut in this Pakistan Cup, and the performances from the Pindi bowlers, they have been exceptional throughout Pakistan Cup. Yeah, it has been a long love affair of Pindi and pace. If you have a look at the names that have played for Pakistan coming from the Pindi region and thereabouts, Shoaib Akhtar, Muhammad Akram, Yasir Arafat, Suhail Tanveer, Muhammad Amir, Najaf Shah, and you just keep counting the bowlers. And now these 3 young fast bowlers. So it's a soil where fast bowlers are found, and they all come with good pace, good actions, good heights. So definitely a pace battery area of Pakistan. You're absolutely spot on. The accuracy, the pace, the line and length, it has been there. So it's just about the land. It's just about surroundings of the beautiful city. Well, I didn't mention the beauty part of it. It's just the good fast bowling and pace. And yes, when they get ready, they look good as well. That's gone up in the air, but safely done by Umar Sadiq. He will come across for 2 runs, and these 2 will bring Umar Sadiq's 20th half century in the List A cricket. His first from the season. Has been a decent display of batting, and the best part about this knock is that he has played a runner ball knock of 50. Well played, Umar Sadiq. Yes, he came in when 2 wickets fell in quick succession, and the pressure was on Lahore Blues, and he came in and he delivered 51 of 50 deliveries, 6 fours, a strike rate of just over 100. Impressive knock, and now it's time for him to keep going. He just cannot get out now and leave them over here. He's built a good platform for his team now. And this one, and as we speak, he's given it all away, flicking it with soft hands and offering a gentle catch to the man at short mid-wicket who accepts it. Heather Ali is the one taking this easy catch. Well, I tell you what, Salman, you just mentioned it at the wrong time. Just when the partnership was looking threatening, 95 of 95 was a stand, and has been brought to the end by Kashif Ali, staying on the pad, flick of the wrist, straight in the hands of Heather Ali, who did not make a mistake this time around. He's grasped the opportunity the previous time, but this time around he's hold on to one. Umar Sadiq walks back after scoring a valiant 51 of 51. 185 for 4 Lahore Blues. The young and talented all-rounder Qasim Akram is in, and he needs to deliver for his team. High hopes from him. When he gets to play on, when he's on song, he looks elegant. He has a lot of shots up his sleeve, but at times he can play too many shots too early, and that can be his own downfall. He averages 33. 51 games, pretty much experienced now, 200s, 850s, a healthy strike rate of 94. A good 30 or 40 from him can do his team wonders at this stage. 8 overs to go now. Rawalpindi will continue. Got a wicket at the right time, the Rawalpindi side. Now if they get one more here or a couple of more wickets, Lahore Blues will be pushed to the back foot. Picked up. That's a very good shot by Hussain Talat. Has read the length early and has put it on the onside for a boundary. Yes, this time no
steep bounce for Bilawal Bhatti. This one was only waist high, just around about the midsection, and there Hussain Talat pulling it easily. This time just over the waist, where the batter is in absolute control of the stroke. Things looking good for Lahore Blues, but one of these batters has to go till the end. And this time again, short and wide, down the leg side. Was lucky the batter did not connect. It's a wide anyway, he has to re-bowl that. Hussain Talat, he's now well set, watching the ball really well. The pitch has also eased out, and the bowlers are a bit tired now. So all the reasons why he should carry on at a good strike rate. Well, the reason it seems like he's persisting with that shorter length because he has deep square leg and deep fine leg at the fence. But the line was not right on that occasion. It's again picked up, put towards the onside for a single. And one of the other factors why he's fancying going there, especially the batter, is because this is the shortest boundary side. And coming with the angle, coming in towards his body, if he can middle one, he can put one out of the stadium because it's not that big on the leg side, especially for Hussain Talat. Well, Qasim Akram has been in because Umar Sadiq has been taken out of the equation. Courtesy a good catch by Haider Ali. And shot mid-wicket. And just as the partnership was settling well, the 95-run stand was broken. Dropped a catch earlier, but made a good recovery. Take the catch of Umar Sadiq. Drills out to long on for a single. It is a big opportunity for Qasim Akram because after that they have 7 overs to come. Qasim needs to make sure that he bats till the end. He needs to get his eye settled in first, and he needs to make sure that Lahore gets past the psychological figure of 250. Yeah, so if we talk about balls, there are 46 remaining. And if these two can bat major portion of these 46 balls, then 70 should come from here on. And adding 70 to their total will make it 260 plus, which will be a good fightable total over here if Lahore can manage to bowl and field well. Yeah, absolutely. And at this very surface, we have seen 245 being the average score on the 2 games that have been played. On one occasion, 250 was chased by Karachi Whites. So this means that this wicket has runs. And if you have 250, 260 on the board, the Pindi side with the batting lineup they have, they can go on and chase that as well. So we have the game on at the Pindi Stadium. Chipped. Fell short of the fielder at short mid-wicket. I wonder if Bilawal Bhatti is bowling cross seam, because some of his balls, they just do not leave the pitch. He tries to bang them in hard, but at times it just slows down a bit. Actually bowled with the seam. This one did not come on at all, stopped. And this is something which bothered Qasim Akram. Couldn't time this one, so he needs to just take a few singles, let Hussain Talat take that heavier part where he can bludgeon the ball for runs, take some quick runs. On the legs this time, flicked away. Will be 138 gone, 194 for 4 Lahore Blues. हल्का सा इधर करो, ये 2 है, ओ साइड, और ये 2 लेग है, ये 2 लेग है, ये 1 है. Kashif Ali, very economical today. 15 for 2 in his 7 overs. Just when Lahore Blues are going at around 5.11, the run rate he has conceded only
15 in his 7 overs. So that shows how economical he has been. And he's also had 2 catches dropped off his bowling in the first spell with the new ball. So he has done a wonderful job for Rawalpindi. Qasim Akram doing the right thing, bringing Hussain Talat on strike, who is now well set on 46, a stroke away from another 50 in List A cricket. He scored 70 plus in the previous game. Once again, happy to just dab it through to the third and take an easy single. I wonder what sort of score they have in mind. I think they have wickets in hand. They have a set batter over there. They should be looking to go in excess of 250, 260 runs. You are absolutely spot on, Salman. And if you talk about the bowling options they have, today it seems like they're only going with 2 fast bowlers. Thumps straight down the ground, but will find the fielder. So we're talking about the score they would want to go on from here. 6 overs to come after this. So anything around 250 to 55 would be a good total. Because they have only 2 fast bowling options, Umaid Asif and Salman Irshad. And then they can go with Hussain Talat as the third option. He's a medium pacer. But comparatively, Pindi, they have 4 fast bowling options. Picked up on the onside. That's a very good shot by Qasim Akram. Has read the length early and gets a boundary to take Lahore Blues to 200. Yes, short and in his range, and he saw this big gap that is there between mid-on and mid-wicket, and that just lit up his eyes, this length. And there wasn't much pace on the ball, and Qasim Akram, we all know, he has a good bat speed, quick hands. And once he saw this line and length, he knew that there were 4 runs for the taking. Has to be careful here, Kashif. Cuts well, beats her in a ring. That'll just be a single. He's got a fairly decent start. Qasim Akram has been middling the ball well. Moves to 8. Hussain takes a quick single. It's a direct hit, but they will settle for a single only. So they have been marching along well, the Lahore Blues. Yes, and Lahore Blues must be knowing that its over rate is slow. There are too many fast bowlers bowling for Pindi, and they might get an extra fielder in this ring as a result of those 4 overs delay that Rawalpindi are at the moment. And the single, the fielder hitting the stumps, but nothing of harm for the Lahore Blues, who are 202 for 4 at the end of 39 overs. बॉलिंग चेंज है लेफ्ट आर्म ओवर जहांदाद के 3 ओवर्स बाकी हैं, काशिफ का 1 ओवर बाकी है, वह सनवर 2 ओवर मजीद कर सकते हैं। और यहां रन आउट होना चाहिए, और थ्रो नहीं लगी। जहांदाद ने गेंद को बर वक्त कलेक्ट कर लिया था, और जो फील्डर थे उनने भी रिलीज करते हुए थोड़ा सा वक्त लिया, थोड़ा ज्यादा वक्त लिया।
बहुत ज्यादा आगे चले गए थे। यहाँ कासिम अकरम वापस आने का कोई मौका नहीं था। उमर मसूद थे फील्डर, खासी मोहताज सी थ्रो थी। क्या बहुत आगे आ गए थे कासिम अकरम। ये डायरेक्ट थ्रो, और शायद उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि डायरेक्ट थ्रो की जाए। बहुत वक्त जाया कर दिया दोनों ही ने। ऐसे मौके पे कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको डायरेक्ट थ्रो की ट्राई करनी चाहिए। ये अच्छा शॉट, शानदार तरीके से खेला, वाइड ऑफ मिड ऑफ, और इस तरह आपने 50 रन मुकम्मल कर लिए। गेंद आगे गिरी थी और इसका खूब फायदा उठाया। 14वीं निस्फ सेंचुरी अपनी मुकम्मल की हुसैन तलत ने। उम्दा इनिंग्स, लाइन भी कवर की। ये एक परफेक्ट तरीका है लॉन्ग हिट मारने का। अगर आप एक यंग बैटर हैं, देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है, स्विंग भी बहुत शानदार है, और यही तीन चीजें आपको एक लॉन्ग हिटिंग में काम आती हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, लाइन को कवर करना और अच्छा स्विंग। 224 पे 4 लाहौर ब्लूज। गुज़श्ता ओवर में 10 रन बने थे और ये बाकी मानदा जो ओवर्स हैं ये भी डबल फिगर में लाना होंगे लाहौर ब्लूज को, अगर उन्होंने 260 तक पहुंचना है। वापस आ गए बॉलिंग करने के लिए उवैस अनवर। इस बार रफ्तार को कम किया और गेंद पीछे छोड़ जाएगी शॉर्ट थर्ड को, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 रन। हुसैन तलत जो है वो खुद ज्यादा सामना करने के मूड में है, इसलिए वापस दौड़े भी नहीं। कासिम अकरम चाहते थे वापस स्ट्राइक पे आना, या क्योंकि ज्यादा पेस नहीं थी, थोड़ा स्लोअर किया, पेस को कम किया, क्योंकि जानते हैं कि ये शॉट ढूंढ रहे हैं, ये पेस ढूंढ रहे हैं दोनों बैटर्स ही। एक और अच्छी गेंद, इस बार उन्हें ऑफ कटर किया, उनको बाउंस भी मिला, और ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन के सामने बहुत ही अच्छी सोच थी, अच्छा मंसूबा था यहाँ उवैस अनवर की जानिब से। मुतासिर कौन है वो? नहीं, यहाँ पे क्रेडिट देना होगा समीउल्लाह न्याजी को, जो कि फास्ट बॉलिंग कोच हैं, इनफैक्ट बॉलिंग कोच हैं, लेकिन खुद वो फास्ट बॉलर थे, इसलिए फास्ट बॉलर्स को बहुत मदद मिली है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से, जिस स्मार्टनेस से बॉलिंग कर रहे हैं, डेथ बॉलिंग। ऑल दो 364 रन जरूर करवाए थे सिंध के अगेंस्ट, लेकिन वहां पे ब्रिलियंस थी साइम अयूब की। यहाँ पे अच्छा कमबैक किया, डेथ बॉलिंग बहुत शानदार है। और अब यॉर्कर, 4 रन जरूर मिल गए, लेकिन अच्छी कोशिश थी उवैस अनवर की। उनकी बदनसीबी थी कि गेंद जो है फ्रेंच कट होके पीछे चली गई। यहाँ कुछ कर नहीं सकते थे, इसका थोड़ा सा रिवर्स स्विंग हमें होने को मिला है, लेट टेल एंड हुआ है बॉल। यॉर्कर था, ये किस्मत है जो साथ है कासिम अकरम की, क्योंकि बॉलिंग बहुत शानदार है। और ये शॉट है बल्ले से लगकर जब गेंद दोनों पैरों के दरमियान से जाती है, ये ड्रॉ कहलाता है क्रिकेट में, इसे ड्रॉ शॉट कहा जाता है। और फिर हवा में खेल जाए, इस बार विकेट कीपर ने कहा मेरा है, और ये उन्हीं का था आखिरकार। तीसरी कोशिश में इसे कलेक्ट कर लिया रजाउल ने। आज पहले ही उवैस अनवर की गेंदों पर कैचेस गिरे थे, इस बार खुशनसीबी ने उनका साथ दिया। कासिम अकरम जाएंगे वापस। यह काफी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि लेंथ मिल गई थी इस शॉट के लिए, लेकिन पेस नहीं मिली। थोड़ा स्लोअर वन किया, स्मार्ट बॉलिंग किया, दूर बॉल था, लेंथ सही थी इस शॉट के लिए, लेकिन पेस ना काफी थी। और तीसरी अटेम्प्ट में ये कैच पकड़ा है विकेट कीपर ने, और अच्छा कैमरा वर्क भी। अवैस अनवर सोच रहे होंगे कि क्या गलती कर दी है मैंने, ऑलरेडी 2 कैचेस छूट चुके हैं। इस बार रजा ने कोई गलती नहीं किया, 19 रन बनाकर कासिम अकरम वापस जाएंगे 230 पर 5।
प्रमोशन मिली है उमैद आसिफ को, क्योंकि ये लॉन्ग हैंडल अच्छा इस्तेमाल करते हैं। नजरें रखिएगा मिड विकेट एरिया पे, वो हॉट स्पॉट है जहां पे ये शॉट खेलते हैं उमैद आसिफ। जुनैद अली से पहले भेजा गया है, जुनैद अली ने भी काफी रन्स किए हैं, विकेट कीपर बैटर है, लेकिन इस वक्त लंबे छक्कों की जरूरत है, लंबी हिटिंग की जरूरत है, इसलिए उमैद आसिफ हैं। अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल, एक ही रन बनेगा, अच्छी बॉलिंग है, लो फुल टॉस। बहुत देर से जुनैद अली जो विकेट कीपर हैं ये पैड्स किए बैठे थे। जब ओपनर्स मैदान में दाखिल हुए थे उस वक्त से पैड किए बैठे थे, लेकिन अभी भी कासिम अकरम के आउट होने पे भी उनको नहीं भेजा गया। फिर से कटर और विकेट कीपर के ग्लव्स आखिर में काम आए। अब्दुल फसी थे फील्डर। ये ओवर इख्तिताम का पहुंचा, वैस अनवर ने इसमें कामयाबी हासिल की, 233, 5 खिलाड़ी आउट। जुनैद अली जो हैं ये आज सुबह से पैड किए बैठे हैं। जब ओपनर्स मैदान में दाखिल हुए थे मुमकिन है इनको कहा गया हो कि शायद इनको भेजा जाए, वन डाउन ये खेलते रहे हैं पिछले सीजन्स में, लेकिन अभी मुंतजिर हैं बैटिंग के। या फ्लेक्सिबल प्लेयर हैं, ये मिडिल ऑर्डर में कहीं भी खेल लेते हैं, ये इनिंग को लेके भी चल सकते हैं, फिनिश भी कर सकते हैं, लेकिन शायद इस वक्त लंबे छक्कों की जरूरत है और उसमें उमैद आसिफ जो है वो बेहतर हैं, क्योंकि इनकी रीच ज्यादा है, स्विंग अच्छा है, एक्सपीरियंस भी है। अच्छी डिलीवरी डिप करती हुई आई, रफ्तार को कम किया और झांसा दे दिया। बड़ी तेजी के साथ ये वापस पहुंच रहे हैं। इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि जो अंपायर हैं ये पेनल्टी ना इन पे लगाएं। ओवर रेट की ज़्यादातर ओवर फास्ट बॉलर्स ने किए। इसे उठा खेला, स्क्वायर लेग पर फील्डर सामने थे और गेंद पीछे चली गई स्क्वायर के 4 रन के लिए। बहुत ही जरूरी और अशद जरूरी ये चौका। यही एक्सपीरियंस है, पिक किया है स्लोअर वन को, आसान नहीं होता है पिक करना, और अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल, स्विंग भी ठीक था, प्लेसमेंट भी शानदार थी, फील्डर कोई नहीं मौजूद था, तो यही वजह है कि प्रमोशन मिली है उमैद आसिफ को। 47 रन की इनिंग खेली थी जब लास्ट टाइम रावलपिंडी में ये मैच खेलने आए थे। अच्छा यॉर्कर, एक ही रन यहाँ पर बन सकेगा। ये ऐसा स्कोर है जो रावलपिंडी की टीम जो है पहुंच सकती है, इनकी अच्छी बैटिंग लाइनअप है। ज़ीशान मलिक अगर अच्छी इब्तिदा फराहम कर देते हैं, उनके साथ अब्दुल फसी जो हैं उन्होंने, अब्दुल फसी भी अच्छी फॉर्म में है। उमर अमीन पिछले मैच में कराची से इनको शिकस्त हुई, सही तरह पिक नहीं कर सके। एक और आहिस्ता गेंद को हुसैन तलब। जी अच्छा कंट्रोल दिखाया जांदाद ने, क्योंकि आसान नहीं होता है जब आप वेरिएशन लाते हैं, स्पेशली बैक ऑफ द हैंड वाली वेरिएशन, कि उसको सही लाइन और लेंथ में गिराना, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बहुत बॉलिंग करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसा लगता है कि जहांदाद पाकिस्तान कप के लिए वेल प्रिपेयर्ड आए हैं, क्योंकि अभी भी एक भी बॉल ऐसा नहीं देखा है जो बैक ऑफ द हैंड किया हो, जो हाफ लेंथ गिरा हो या जोन में गिरा हो, दूर गिरे हैं बॉल। हवा में खेल गया है लेकिन दूर जाएगी ये शॉर्ट थर्ड के, और 1-2 और 2 ही पर इक्तिफा करना पड़ा। अच्छी फील्डिंग वहां बाउंड्री लाइन पर। काफी अच्छी फील्डिंग और ऐसी एफर्ट की जरूरत है, यही मैं जिक्र कर रहा था कि ग्राउंड फील्डिंग इनकी बहुत शानदार रही है। फरहान शफीक सब्स्टिट्यूट फील्डर, फिट क्रिकेटर हैं सारे, अच्छा भागते हैं, स्प्रिंटर अच्छे हैं, बस कैचेस में कहीं ना कहीं नजर लग गई।
यहाँ पर भी एक ही रन मिलना चाहिए। आउटफील्ड तेज है, गेंद तक बर वक्त पहुंच भी गए थे मसूद। इस ओवर में मां सिवाय चौके के बाकी गेंदें जो थी नपी तुली रही। 242 पे 5। मेरा ये प्रॉब्लम कर रहा है ही नजर ही नहीं आ रही, दोनों गायब है। और ये भी पाऊं आगे ना, वो भी यहाँ पे यही मशवरा हो रहा होगा कि अब स्ट्राइक किसके पास हो, क्योंकि हुसैन तलत 68 पे हैं, उमैद आसिफ 9 रन पे हैं, लेकिन उमैद आसिफ में वो पोटेंशियल मौजूद है लंबे छक्के मारने का। तो बहुत ही सेंसिबल बॉलिंग करनी होगी यंगस्टर अवैस को। 8 ओवर में 47 रन दिए, लेकिन मौका भी है विकेट हासिल करने का। क्या ये पैड पर लगी थी? इमरान जावेद का नहीं ख्याल, उनने वाइड करार दिया। आज एक्स्ट्रास की अच्छी खासी तादाद है। नवी वाइड बॉल थी आज के दिन में, तकरीबन 1.5 ओवर जो है उनको एक्स्ट्रा करना पड़ा। और इसी वजह से वो जो टाइमर है एक इनिंग में जो आपने रिक्वायर्ड टाइम में करना है उसमें पीछे हैं। एक्स्ट्रास भी हैं और 4 फास्ट बॉलर्स भी हैं, ये 2 वजह है। और आहिस्ता गेंद थी और इसे उठा मारा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अपनी लंबी कामत को इस्तेमाल में लाए उमैद आसिफ, और ये बेहद जरूरी छक्का लाहौर के लिए। या ये एक्सपीरियंस है, ये टैलेंट है, ये स्किल है। पिक किया है स्लोअर वन को, क्योंकि ये खुद बॉलर हैं, ये मेंटालिटी जानते हैं फास्ट बॉलर्स की कि आखिरी ओवर में फास्ट बॉलर क्या क्या कर सकता है। वेट किया अपना स्लोअर वन का, अपने तक बॉल को आने दिया, फिर वो स्विंग और 6 रन हासिल किए। बहुत ही हैंडी यूटिलिटी क्रिकेटर उमैद आसिफ। यहाँ बेहतर होगा कि इस फील्ड के साथ या तो यॉर्कर करें या इनटू द पिच आने की कोशिश करें राइट हैंडर को। यहाँ ये अच्छा यॉर्कर, लेकिन बदकिस्मती से गेंद निकल गई। इस बार फाइन लेग को 4 रन और 6-4 और 250 के पार पहुंचाया इन 2 बाउंड्रीज ने लाहौर ब्लूज को 45वें ओवर में। या जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि ड्रॉ शॉट है ये, फ्रेंच कट भी कुछ लोग कहते हैं। रन आने चाहिए, अच्छा लगना ना लगना ये बात की बात है, क्योंकि इस वक्त 4 रन ज्यादा जरूरी हैं लाहौर ब्लूज के लिए। अच्छी इनिंग्स उमैद आसिफ की, 237 उनका स्ट्राइक रेट है। 8 गेंदों में 19 रन उन्होंने बनाए हैं। अब मिड ऑफ को आगे लाया गया और इस वक्त डीप पॉइंट को पीछे भेज दिया गया। यहाँ पर तेज दौड़ना होगा स्ट्राइक वापस पाने के लिए, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। डीप मिड विकेट पर मेहरान मुमताज ने अच्छी फील्डिंग की। अच्छे फील्डर है मेहरान मुमताज। 254 रन। याद रहे कि यहाँ पे कराची ने चेस किया था 250 रन 35 ओवर्स में, इसीलिए बिलीव रखना होगा रावलपिंडी को कि ये गेटेबल स्कोर है। उस इनिंग में एक शानदार इनिंग थी शान मसूद की, जिन्होंने 100 रन बनाए थे। ऐसा ही कोई कारनामा अंजाम देना होगा उमर अमीन को, हैदर अली या जिशान मलिक को। अच्छी डिलीवरी, आखिरी मौके पर रफ्तार कम की और ये छोड़ती चली गई। यहाँ पर लेफ्ट हैंडर को हुसैन तलत को मां सिवाय उसे एक छक्के के आखिर में ज्यादा खुलकर खेलने का मौका दिया नहीं है। यहाँ पर दोनों सीमर्स ने। यार आप तारिक भाई देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वेरिएशंस आ गई हैं। इवन आप स्लोअर वन की बात करें, कुछ बॉलर्स इनटू द पिच कटर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही गैप दे के फिंगर्स में और थ्रू द फिंगर्स बॉल पुश कर रहे हैं। ये भी एक वेरिएशन है। और यहाँ फिर इनटू द पिच गेंद की, जो विकेट का भी बायस बन सकती थी, ज्यादा दूर नहीं थी फाइन लेग से। ये मैं देख रहा था प्रैक्टिस में, जब लाहौर वाइट्स की टीम यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी तो असदुल्ला उनके जो फास्ट बॉलर हैं वो नकल बॉल कर रहे थे। तो वो प्रैक्टिस के अंदर और अच्छी जगह पर उनकी गेंदें गिर रही थी। में अच्छा लग रहा है मॉडर्न डे वेरिएशंस को देखकर पाकिस्तानी बॉलर्स में भी।
यहाँ वेरिएशन होना एक अलग बात है, उसे एक्यूरेसी से करना एक अलग बात है। तो जो इस बार हमें बेहतरी नजर आई कि एक्यूरेसी बहुत बढ़ गई है कि आप अच्छे एरिया में, अच्छे चैनल में वो स्लोअर वन डालें। आखिरी गेंद इस इनिंग्स की ओवैस, और एक बार फिर वही वेरिएशन, आला बॉलिंग का मुजाहरा, और तारीफ होनी चाहिए यहाँ ओवैस अनवर की, जिन्होंने विकेटें हाथ में होने के बावजूद लाहौर को खुल खेलने का मौका नहीं दिया। तो 256, 5 खिलाड़ी आउट 45 ओवर्स के बाद ये लाहौर की आखिरी स्कोर लाइन है। हुसैन तलत अच्छा खेल के वापस जा रहे हैं, 69 रन उनने बनाए, आज 6 चौके और 2 छक्के लगाए। उनकी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप रही यहाँ उमर सिद्दीक के साथ, उनने भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। ये टॉप स्कोरर हैं हुसैन तलत, और लाहौर की टीम को और बैटिंग को उन्होंने सरनिगू होने नहीं दिया इस वाइटल मैच में। जहाँ दूसरी जानिब उमर अमीन एक खुश होंगे जिस तरीके से फिनिश किया गया है, क्योंकि 4 कैचेस छोड़ने के बाद भी अगर एक टीम को आप 256 तक रिस्ट्रिक्ट कर लें तो ये अच्छा फिनिश है। और इसका सेहरा जाएगा फास्ट बॉलर्स को। काशिफ अली, उवैस अनवर, बिलावल भट्टी, जांदाद, चारों ने बहुत स्मार्ट बॉलिंग की है, डेथ बॉलिंग जैसी होनी चाहिए। तो ये स्कोर कार्ड डोमिनेट किया है हुसैन तलत ने 69 रन के साथ। उमर सिद्दीक ने भी अच्छी इनिंग खेली, एक ठहराव दिया है इस पार्टनरशिप ने। 30 रन की इनिंग खेली ज़ैद आलम ने, 37 रन इमरान भट्ट की जानिब से, और एंड पे एक कैमियो खेली उमैद आसिफ ने, 10 बॉलों पे 20 रन बनाए और 45 ओवर में 256 रन स्कोर तक पहुंचा दिया। काशिफ जो इस टीम के सरकर्दा बॉलर हैं, उन्होंने जल्दी स्ट्राइक किया, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। ओवैस को भी अपने दूसरे कोटे के ओवर में विकेट हासिल हुई। बिलावल ने बड़ा तेज स्पेल किया, और मेहरान को पहले ही ओवर में आज कामयाबी मिली। 6 ओवर्स किए, कोई मेडन नहीं, 31 रन और 1 विकेट। अच्छी हुसैन ने इनिंग का आगाज किया था और शुरू में ही काफी मौके मिल गए थे। काफी खराब कैचिंग हमें देखने को मिली रावलपिंडी की जानिब से। पहले 2 ओवर्स में 2 कैचेस ड्रॉप हुए, उसके बाद थोड़ा ठहराव आया, थोड़े शॉट्स देखने को मिले हमें इमरान भट्ट और रिजवान हुसैन की जानिब से। फिर ये बड़ी विकेट हासिल की इमरान भट्ट की। एक और कैच जिस तरीके से छूटा, रिजवान हुसैन ने बड़ा तगड़ा शॉट खेले हैं लेकिन लाइन मिस कर गए, अपनी विकेट गवा दी काशिफ अली को। उसके बाद आए ज़ैद आलम, जिन्होंने आते ही थोड़े शॉट्स खेले लेकिन उनको भी काफी किस्मत ने साथ दिया। एक कैच ड्रॉप हुआ, ये अच्छा कैच काशिफ अली ने पकड़कर इमरान भट्ट की इनिंग का इख्तिताम किया। यहाँ पे लकी रहे, एक्स्ट्रा बाउंस मिला और अपनी विकेट गवाई ज़ैद आलम ने। और फिर एक पार्टनरशिप डेवलप हुई उमर सिद्दीक और हुसैन तलत के दरमियान, बहुत ही शानदार पार्टनरशिप जिसमें काफी फ्लेयरफुल शॉट्स थे। 50 रन मुकम्मल किए उमर सिद्दीक ने और उसके साथ ही अपनी विकेट भी गवा दी 50 रन बनाते ही। उसके बाद कासिम अकरम बैटिंग करने आए, 19 रन की उन्होंने इनिंग खेली, लेकिन दूसरी जानिब हुसैन तलत फ्लॉलेस इनिंग खेलते हुए अपने 50 रन मुकम्मल किए। और जिस तरह के शॉट्स हमें देखने को मिले इन फॉर्म हुसैन तलत, कासिम अकरम सिर्फ 19 रन ही बना सके और अपनी विकेट गवाई थी उन्होंने। उमैद आसिफ साथ देने आए और क्या ही शानदार कैमियो खेली है उमैद आसिफ ने और अपने स्कोर को 256 रन तक पहुंचा दिया। रावलपिंडी को 257 रन दरकार होंगे। जी हाँ, 45 ओवर्स में 5.71 की औसत से। और इस वक्त यहाँ पिंडी स्टेडियम में खाने का वक्फा है, जिसके दूसरी जानिब खेल जारी रहेगा। We have got the news from the center. That's a Rawalpindi side opting to ball first. What a shot, getting a boundary. और बोल्ड हो गए, आगे से स्विंग हुई और आखिरकार एक कैच पकड़ा गया। और इस बार रोक लिया और यहाँ कैच आउट हो जाएंगे। यहाँ अगले कदम पर खेला एतमाद के साथ, ये अच्छा शॉट शानदार तरीके से खेला। And he's given it all away, flicking it with soft hands.
अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर खुशामदीद आपको पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से, जहां पर एक दिलकश दिन और उससे बढ़कर मैच नंबर 23 जो कि रावलपिंडी रीजन और लाहौर ब्लूज की टीमों के माबैन जारी है। खाने का वक्फा और पहली इनिंग का इख्तिताम, उसके बाद अब ये कुछ फ्रेश लुक एक दफ़ा फिर ऑन स्कोर कार्ड ऑफ लाहौर ब्लूज। आगाज़ वॉचफुल था, मौके भी मिले इमरान भट्ट और रिजवान हुसैन को, उसके बाद जैद उमर और मिडल में अगर हम देखें कासिम अकरम, उनके साथ हुसैन तलत, उमैद आसिफ, तमाम ने रन्स किए, चिप इन किया मुश्किल वक्त से गुजर कर 256 5 के नुकसान पे। और बॉलर्स को अगर देखें तो अर्लियर ऑन बेहतर बॉलिंग थी, विकेटलेस रहे, लेकिन उसके बाद जब मिडल में जाकर फील्डर्स ने इनफैक्ट सपोर्ट किया, 2 विकेट लिए, काशिफ ने, अवैस ने अच्छी बॉलिंग करवाई, उसके साथ साथ बिलावल भट्टी और महरान खान, ये हैं अमंग द विकेट्स। और इस वक्त 45 ओवर में 5.71 रन्स की रफ्तार से रावलपिंडी को बनाने हैं 257 रन्स, जो कि इस पिच को देखते हुए, इस मौसम को देखते हुए और इस वक्त पर्टिकुलरली इतना मुश्किल लगता नहीं। मेरे साथ कॉम बॉक्स में है नौमान, वेलकम। शुक्रिया एजाज। 257 रन्स एक ऐसी बैटिंग लाइनअप में जिनमें जीशान मलिक ओपन कर रहे हैं, 81 का उनका स्ट्राइक रेट, 149 उनका बेस्ट, 35 की एवरेज, जबकि इनके साथ नौजवान बाएं हाथ के ओपनिंग बैटर अब्दुल फसी, सिर्फ 2 लिस्टेड मैचेस में 54 रन्स इन्होंने कर रखे हैं। पहले मैच में निफ्ट सेंचुरी स्कोर की, 54 इनका बेस्ट। और इस बैटिंग लाइनअप में बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं और इन बड़े खिलाड़ियों का शिकार करने की सरतोड़ कोशिश करेंगे सलमान इरशाद। 19 विकेटें 20 मैचेस में, 5.8 सिफर का इकॉनमी, 2 स्लिप्स के साथ सलमान इरशाद रन चेस की पहली गेंद के साथ के बाहर गेंद पड़ने के बाद और बाहर की जानिब निकली। अच्छा डिसेंट आगाज सलमान इरशाद की जानिब से। जी हाँ, अर्लियर ऑन उन्हें चाहिए भी इस तरह का आगाज के ऑफ स्टंप से बाहर रखें, क्योंकि एक स्लिप है, उसके साथ साथ ऑफ साइड पे 2 स्लिप्स इनफैक्ट ऑफ स्टंप से बाहर था। थोड़ा लेजी खेलने गए, लेकिन आखिरी लम्हात में उन्हें लगा कि बॉल काफ़ी उनकी दस्तरस से दूर है, इसलिए इसको छोड़ना बेहतर रहेगा। आउटर एज गेंद बैकवर्ड पॉइंट रीजन की तरफ गई और इस असना में 2 रन्स का इजाफा जीशान मलिक के लिए। रावलपिंडी की टीम को अगर इस 257 रन्स के हदफ के ताक़ुब में जाना है तो इस ओपनिंग पेयर को बड़े रन्स करने होंगे, खास तौर पे जिस तरह हार्ड हिटिंग की सलाहियत रखते हैं जीशान मलिक, उन्हें इस पावर प्ले में अच्छा आगाज फराहम करना होगा। और इस बैटिंग लाइनअप में हैदर अली, उमर अमीन, उमैर मसूद, बिलावल भट्टी, मेहरान मुमताज, ये तमाम प्लेयर्स अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। जो और इन पिंडी के बैटर्स ने बाज़ औक़ात आगाज़ अच्छे लिए, 20, 25, 30 रन्स, लेकिन उसको कैपिटलाइज उस तरीके से नहीं कर पाए, क्योंकि जिस तरीके की आपने बात की कि ज़ीशान हैं, फसी, जिन्होंने अपने पहले ही डेब्यू मैच पे 50 रन स्कोर किए, तो ये वो प्लेयर्स हैं जिनके पास ये कैलिबर है कि इन 30s को कन्वर्ट कर सकें हाई 80s या इनफैक्ट इनटू 100 एज वेल। और आज अच्छा मौका है ज़ीशान के पास भी और फसी के पास भी। लेकिन अब तक अच्छा आगाज रहा है सलमान इरशाद का। शुरू में 1-2 गेंदें उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की, उसके बाद अब जब स्टंप्स में गेंद कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं होता स्टंप्स में गिरी हुई गेंद को खेलना। सलमान इरशाद, इनका एक्शन भी रीड करना इतना आसान नहीं है। रजा उल मुस्तफा, मुबस्सिर खान, उमर अमीन, बल्ले का फेस ओपन कर कर निकालना चाह रहे थे इस गेंद को, लेकिन डॉट बॉल। पर अर्लियर ऑन हमें नॉर्मली इस सरफेस पे यही देखने को मिल रहा है कि बैटर्स इवन पहली इनिंग में या दूसरी इनिंग में, वेल मुबस्सिर इस वक्त बैंडेज है, नाखून का इशू है कोई, जिसकी वजह से उन्होंने ये बैंडेज की हुई है, इसी वजह से वो मैच नहीं खेल रहे। आउटर एज, गेंद चली है थर्ड मैन फेंस की तरफ, सिर्फ 1 रन पर ही इत्तेफाक करना पड़ेगा।
पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली सलमान इरशाद की जानिब से। 3 बना पहले ओवर में बगैर किसी नुकसान के। सलमान इरशाद के साथ नई गेंद शेयर कर रहे हैं दूसरे एंड से उमैद आसिफ। 47 विकेटें 45 मैचेस में का शुमार भी बड़े थिंकिंग क्रिकेटर्स में होता है। ये अक्सर औकात अपने विकेट की सेलिब्रेशंस, अपने हेयर स्टाइल, तमाम चीज़ों के लिए मशहूर रहते हैं और ये अर्ली ऑन नई गेंदों से विकेटें लेने के लिए भी जाने जाते हैं। एक स्लिप है क्योंकि इस वक्त भी बॉल नया है, कहीं ना कहीं अगर ऑफ स्टंप से बाहर रखें तो माइट भी रिजल्ट ओरिएंटेड हो उनके लिए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, जिसको सीधा खेले लेकिन मिड ऑन पर फील्डर कैच करने में कामयाब हुए और अब पहली ही गेंद पर कामयाबी दिलाई उमैद आसिफ ने। वेल इतना पायदार स्ट्रोक नहीं था, ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर था। ज़ीशान इस कोशिश में थे कि उमैद आसिफ पे स्ट्राइक करें पहले ही बॉल पे, लेकिन उमैद ने बॉल जो कि ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर पड़कर हल्का सा अंदर को आया, जिसकी वजह से स्ट्रोक मैनेज नहीं कर पाए ज़ीशान। और अच्छा कैच मिड ऑन पे, और आते ही यहाँ पर जाहिद आलम ने उनको जाहिद हुसैन ज़ीशान मलिक 3 रन्स बनाकर पवेलियन जाते हुए अर्ली ऑन बड़ा धचका रावलपिंडी की टीम को। कप्तान उमर अमीन नंबर 3 पे बारी करने आए हैं रावलपिंडी की टीम के लिए। क्या ये आज मर्दे बहरान साबित होते हैं, क्योंकि बड़ा टारगेट है रावलपिंडी के सामने और कप्तान को आज कैप्टन्स नॉक खेलनी होगी। इजाज 6000 से जायद रन, 171 मैचेस में, 40 की औसत, 156 इनका बेस्ट है। ये सलाहियत रखते हैं बड़ी इनिंग्स खेलने की। गुड कैलिबर बैटर, थोड़ा अर्ली है उनके लिए, लेकिन बीइंग अ कैप्टन लीड करना है टीम को, और सख्त वॉचफुल होना चाहिए। स्लिप इन प्लेस, अच्छी गेंद पैड पर, ये इंपैक्ट जो है ये आउटसाइड था, इस वजह से किस्मत ने साथ दिया उमर अमीन का। वेल उमैद आसिफ काफी सख्त थ्रेटनिंग है, लेग साइड पे इसका इम्पैक्ट था। विकेट कीपर भी तकरीबन लेग साइड पे वॉक इन कर रहे थे और अंपायर ने स्ट्रेट अवे इसको नॉट आउट करार दिया। लेकिन काफी अच्छी और लीथल बॉलिंग, पहली विकेट उड़ाई और इस वक्त भी अच्छे एरियाज में बॉल को पिच कर रहे हैं। एक और अच्छी गेंद स्टंप्स में आती हुई। उमर अमीन नंबर 3 पे बारी करने आए हैं क्योंकि ज़ीशान मलिक की इनिंग्स का खात्मा किया उमैद आसिफ ने। अच्छे एरिया में गिरी हुई गेंद क्लियर करना चाह रहे थे मिड ऑन को, फील्डर दायरे के अंदर मौजूद था, पावर प्ले का फायदा उठाने की कोशिश, लेकिन सही तरह टाइम नहीं कर पाए। बड़ा अच्छा कैच जैद आलम की जानिब से, आज बैटिंग में भी रन्स किए, फील्डिंग में कैच भी किया। ये लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट है उमर अमीन को, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि जब जब ये गुड लेंथ से गेंद राइज होती है उमर अमीन के लिए मुश्किल रहती है काफी। स्टंप से बाहर, इनफैक्ट इस पिंडी के सरफेस पे हमने देखा कि बहुत से बैटर्स जो हैं वो अनसर्टन रहे, अपने जो स्ट्रोक्स मेकिंग है उन पे इतना ज्यादा पायदारी नहीं रही। और अभी ऑलरेडी एक विकेट गिर चुका है रावलपिंडी का। ये वो आगाज नहीं जो पिंडी की टीम ने फिलहाल सोचा था।
स्टंप के बाहर गेंद, लालच देने की कोशिश की उमर अमीन को कि वो ड्राइव के लिए जाएं, लेकिन जाने दिया विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंदबाजी उमैद आसिफ की। एग्जैक्टली ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर बॉल रख रहे हैं, स्लिप इन प्लेस है, फील्ड प्लेसमेंट तकरीबन उसी तर्ज की है जिस तरीके से वो बॉलिंग करवा रहे हैं। कप्तान ने यकीनी तौर पर उन्हें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि आप ऑफ स्टंप से बॉल को बाहर रखें। इमरान इस वक्त इस कोशिश में है कि एक आध और विकेट इससे नए बॉल से अगर ले पाए तो बहुत ज्यादा प्रेशर में आएगी पिंडी की टीम। आउटसाइड एज और गेंद स्लिप और गली के दरमियान से निकल गई। बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी उमैद आसिफ की। उन्होंने मखमसे का शिकार किए रखा उमर अमीन को इस ओवर में। सिंगल के साथ ओवर का इख्तिताम, 2 के बाद 4, 1 विकेट के नुकसान पर। Spot on. उमर अमीन पिछले ओवर में उनका सामना उमैद आसिफ से था, जो बड़े अच्छे एरियाज में गेंद कर रहे थे। ऑन ड्राइव, लेकिन फील्ड बूट करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। एजाज, ये बड़ा जरूरी होता है जब एक एंड से एक बॉलर अच्छे एरियाज में अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंद कर रहा है। जिस तरह पिछले ओवर में हमने उमैद आसिफ की गेंदबाजी देखी थी, तो दूसरे बॉलर को भी कॉम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे अगर हम देखें कि उमैद आसिफ ने बिल्कुल स्क्वायर अप कर दिया था। गेंद ने पड़ने के बाद थोड़ा सा राइज हुई और स्लिप और गली के दरमियान से गेंद गुजर गई। और ये अच्छा लाइन ऑफ अटैक है ऑफ स्टंप से बाहर, और दोनों बॉलर्स सलमान इरशाद और उमैद आसिफ यकीनी तौर पर तजर्बाकार है। उन्हें इस चीज़ का आइडिया है कि कहाँ पर उमर अमीन को जो है वो ग्रैब करना है, कहाँ पर उनको फंसा कर उनकी विकेट लेनी है। क्योंकि कप्तान की विकेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली हम देखते हैं कि ओवर द ईयर्स टीम्स जो है विकेट कॉलम डिस्टर्ब रहे तो थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर कप्तान की विकेट जाए तो यकीनी तौर पर कुछ मार्जिन बढ़ता है। और ख़ास तौर पे वो कप्तान जिन्होंने डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाए हुए, टूर्नामेंट में भी एक दो अच्छी बारीज खेली हैं उमर अमीन ने, और अर्ली ऑन अभी स्ट्रगल कर रहे हैं इस टूर्नामेंट पे। एक निफ्ट सेंचुरी फैसलाबाद के खिलाफ स्कोर की, 98 गेंदों में 65 रन की बारी। कराची के अगेंस्ट 44 रन, लाहौर के अगेंस्ट 36। इन्हें स्टार्ट मिला, लेकिन इन तमाम तर जो स्टार्ट्स हैं उसको बड़े रन्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए उमर अमीन, और ये शायद इनके तमाम तर क्रिकेटिंग करियर का यही खुलासा रहा है। खूबसूरती से खेले, बड़ी उम्दा ड्राइव, ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ मिली और इसको भरपूर अंदाज से टाइम किया उमर अमीन ने एक्स्ट्रा कवर की जानिब 4 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक था, साउंड बड़ा जबरदस्त था, अच्छा मिडल किया, बैलेंस बेहतर था, और यही खास है उमर अमीन की बैटिंग का कि जिसको को अच्छी क्लिक में देखे, सिंपल, सो सिंपल, हाई एल्बो, उसके साथ जो फॉलो थ्रू था बेहतरीन, और बिल्कुल ग्राउंड के साथ ये बॉल होती हुई 4 रन पार कर गई। तो थोड़ा सा जो रिदम है वो नजर आना शुरू हुआ है उमर अमीन की बैटिंग में। और फिर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इसको खूबसूरती के साथ निकाला मिड ऑफ की जानिब। हम बात कर रहे थे उमर अमीन की, उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है तीनों फॉर्मेट्स में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका टेस्ट डेब्यू रहा, बेन हिल्फनहाउस ने इनको आउट किया था जब डक करना चाह रहे थे। इसके बाद ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान टीम में आते जाते रहे, अक्सर औकात बड़ी दिलकश बारियां भी इन्होंने खेली हैं। उनकी जो आखिरी बारी पाकिस्तान के लिए रही, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक T20 मैच में आखिरी ओवर में इन्होंने 3 छक्के लगाए थे। ये जाने जाते हैं इसी किस्म की बैटिंग के लिए कि गेयर शिफ्ट कर सकते हैं। यहां पर भी इन्हें अर्ली ऑन थोड़ा बेहतर आगाज देना होगा और उसके बाद
गेज शिफ्ट करने होंगे। वेल उमैद ने अपना पहला ओवर अच्छा करवाया, लाइन ऑफ अटैक बेहतर था, लेंथ अच्छी थी और काफी ज्यादा ड्रामा था उस ओवर में। गो के एक विकेट भी लिया। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, इसको खेलना चाह रहे थे, ड्राइविंग लेंथ थी, आउटसाइड एज और सिंगल के साथ अपनी इनिंग्स का आगाज किया अब्दुल फसी ने। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लगा उस स्ट्रोक में जो उन्होंने खेला, क्योंकि ऑफ स्टंप से बाहर था। उमैद आसिफ ने लालच दिया था, लेकिन काफी जो फ्लैश था वो तेज था, जिसकी वजह से बॉल फील्डर के सर के ऊपर से गुजर गया, क्योंकि प्रोटेक्शन मौजूद है डीप में थर्ड मैन की पोजीशन पे। उमर अमीन के लिए ये जो गुड लेंथ पर पड़ के गेंद राइज होती है, ये काफी मुश्किलात रही हैं इस टूर्नामेंट में इस लेंथ पर इन्हें, क्योंकि बिल्कुल इनके जो पांव हैं वो फंस जाते हैं जब ये बैकफुट पर इस लेंथ को खेल रहे हो। पिंडी स्टेडियम में ही लाहौर वाइट्स के खिलाफ आमिर जमाल ने इस लेंथ से इन्हें आउट किया था, और आज जैसा लग रहा है कि उमैद आसिफ भी बिल्कुल तैयारी करके आए हैं उमर अमीन के खिलाफ, तवातुर से एक ही लेंथ पे गेंद कर रहे हैं। पैड्स पर बॉल खूबसूरती के साथ फ्लिक कर दिया ऑन साइड में, और ये गेंद चली है मिड विकेट फेंस के पार 4 रन्स के लिए। दूसरी बाउंड्री से यकीनी तौर पर एतमाद में इजाफा होगा उमर अमीन के। अच्छा स्ट्रोक था, रिस्क वर्क बिल्कुल ऑन द पैड्स थी और अच्छा खेला इसको, कलाइयां घुमाई और बिल्कुल प्लेस किया इनटू द गैप। जो सबसे अच्छी चीज है कि आहिस्ता आहिस्ता उमर अमीन का जो कॉन्फिडेंस है, जो बैटिंग रिदम है, वो बहाल हो रहा है। शॉर्ट बॉल पुल करने के टाइम सही तरह कर पाए, 4 रन्स मिल जाएंगे। सही पोजीशन में नहीं थे इसको पुल करने में, लेकिन फिर भी गैप में खेल दिया। टाइमिंग बहुत जबरदस्त चल रही है आज उमर अमीन की। वेल उमैद ने इस दफा बॉल को थोड़ा सा पीछे रखा, बैक ऑफ लेंथ पटका, लेकिन जवाब बेहतर था उमर अमीन का। अच्छी पारी करते हुए पावर किया कि ये बॉल हवा में ना जाए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बल्ले का रुख भी जमीन की तरफ मोड़ा और बआसानी 4 रन हासिल किए। तवातुर से 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं उमर अमीन। अच्छी गेंद, जबरदस्त कमबैक। जो 4th स्टंप का चैनल है, ये यहां पर पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकली और भरपूर अंदाज से बीट हुए उमर अमीन। यहीं पर फंसा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बैक ऑफ लेंथ बिल्कुल उनके मुंह के सामने जो था, ऑन साइड पे चौका गया और फुल लेंथ जो है वो आसानी के साथ उन्होंने इनफैक्ट जो ऑन द पैड्स थी फ्लिक किया था ऑन साइड पे। तो ये वो एक लेंथ है, लाइन है, जहां पर आप इस कैलिबर के बैटर को जो है वो फंसा कर उसकी विकेट ले सकते हैं। क्योंकि बाहर गेंद थी, इसको सिर्फ 1 रन के लिए निकाल पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये गेंद को रोकने में बिल्कुल रास्ते में आ गए थे उमर अमीन के। लेकिन इसके साथ ही इस ओवर का अख्ताम 4 के बाद 17 एक विकेट के नुकसान पर। उमैद आसिफ का ये ओवर थोड़ा सा बेहतर रहा फॉर रावलपिंडी, लेकिन यहाँ पर अच्छा पिकअप, तो कोलिजन होते होते अच्छा यहाँ पर। रन्स उस तवातर से नहीं आ रहे इस पावर प्ले में। 4 ओवर में 17 अब तक गो के 3 बाउंड्री जरूर आई हैं जो कि उमर अमीन ने लगाई। ड्राइव खूबसूरती के साथ, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग इनर रिंग में रिजवान हुसैन की तरफ से। विड्थ मिली अब्दुल फसी को।
और गनीमत जान गए कि इसको ड्राइविंग लेंथ पे खेलें, लेकिन अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा। शॉट बेहतर था, गैप नहीं निकाल पाए। प्लेस करना पड़ेगा अर्लियर ऑन इस तर्ज के स्ट्रोक्स को। सलमान इरशाद से आप इसी किस्म की बॉलिंग एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरह इनका स्लिंगी एक्शन है, ये अक्सर स्टंप्स को ही टारगेट करते हैं। काफी देर से अपनी जो गर्दन है उसको झटका रहे हैं फसी। आगे पड़ा हुआ बॉल, ओह पैड पे लगा, उसके बाद बॉल फिजा में गई और सलमान ने अपील जरूर की। बेहतर लेंथ, बेहतर लाइन सलमान इरशाद की। पिछली गेंद पर अपील जरूर की गई थी सलमान इरशाद की जानिब से। कुछ स्टंप्स में किया हुआ फुलर लेंथ पे ये बॉल था। ऐसा लग रहा है कि गेंद जमीन से लगकर आया है। बैट्स पे बॉल, इसको खूबसूरती से निकाल दिया ऑन साइड में। कप्तान इमरान भट्ट के लिए ये तवील चेस, बिल्कुल आखिर में गेंद को रोकने में कामयाब हुए। वैसे मैंने अभी फसी को देखा बैटिंग करते हुए, तो थोड़ा सा उनका जो सर है वो झटकाते हैं। शायद उनकी आदत है कि बहुत से क्रिकेटर्स जो हैं वो खेलते हुए मुख्तलिफ, ये देखिए हल्का सा जो सर है उसको झटकाते हैं। मुझे लसित मलिंगा याद आया, जो कि हर बॉल पे किस करते थे बॉल को। 60 किसेस इन वनडे क्रिकेट, लसित मलिंगा। और ये लसित मलिंगा की आपने बात की, सलमान इरशाद का एक्शन भी इनसे मिलता जुलता है। ये स्लिंगी एक्शन, इस तरह ड्राइव नहीं कर पा रहे सिस्टम के बाहर जब जब विड्थ मिलती है। और ये काफी मुख्तलिफ अंदाज होते हैं बैटर्स के। स्टीव स्मिथ को हमने देखा है कि वो हेलमेट के अंदर अपना सर हिलाते रहते हैं। मानस लबिशेन वो बेल्स को ठीक करते हैं। शिंदराइन चंद्र पॉल वो आकर बेल्स को जो है वो सेट करते थे जब अपना गार्ड लेते थे। तो ये मुख्तलिफ बल्लेबाजों के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं जिनसे वो कंफर्टेबल रहते हैं। तो फिर स्टंप्स में किया हुआ बॉल, इसको निकाला ऑन साइड में। इस डॉट बॉल के साथ सलमान इरशाद के इस अच्छे ओवर का इख्तिताम। सिर्फ 19 बने हैं पहले 5 ओवर्स में। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, आउटसाइड एज। उमेद आसिफ तवातुर से इसी लाइन और लेंथ पे गेंद कर रहे थे और बिलाखिर अच्छी गेंदबाजी का सिला मिला उमेद आसिफ को। उन्होंने कप्तान उमर अमीन की बड़ी विकेट चटखा दी। वेल, उमेद आसिफ ने बैटल विन की। उन्होंने 1-2 बाउंड्रीज भी इनफैक्ट खाई इसी चक्कर में कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मिले, लेकिन इस दफा लेंथ बेहतर थी, ड्राइव करवाने गए, एज हुआ और बाकी का काम कीपर। और उसके साथ साथ उमेद आसिफ की जो सेलिब्रेशंस हैं, ये दूसरी कामयाबी मिली है यहाँ पर लाहौर को, जब उमर अमीन बड़ी विकेट 13 रन पे आउट हुई 19 पे 2। बैट्समैन आ गया है। नंबर 4 पर अटक से ताल्लुक रखने वाले हैदर अली आए हैं। 45 लिस्ट मैचेस में 1300 से ज्यादा रन्स, 32 की एवरेज। इन्हें अपने इस
टैलेंट के साथ आज इंसाफ करना होगा, क्योंकि 238 रन दरकार हैं रावलपिंडी की टीम को। बड़ी बारी की तवक्को है हैदर अली से। फुल लेंथ गेंद, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, लेकिन फील्ड अबूर करने में कामयाब नहीं हो पाए। सही कहा आपने, यहाँ पर बड़ी बारी की तवक्को है, क्योंकि कप्तान उमर अमीन आउट होकर जा चुके हैं वापस। ये वो लम्हात हैं जिस वक्त वो चेस करेंगे, ऑफ स्टंप से पड़ा हुआ बाहर बॉल, उनका एक हाथ भी बल्ले से छूटा और यहाँ पर एज हुआ। जो लेंथ थी या हाइट थी बॉल की, वो उनकी सोच से थोड़ी ऊपर रही। उमैद आसिफ एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त। जाने दिया विकेट कीपर के पास। बड़ी टीजिंग लेंथ होती है ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन, और ये लेंथ बैट्समैन तजब्जुब का शिकार होता है कि इस गेंद को खेला जाए या छोड़ा जाए, और इसी परेशानी में अक्सर औकात जब बैट्समैन खेल जाते हैं तो वो आउटसाइड एज पे अपनी विकेट भी गंवा देते हैं। एग्जैक्टली इस वक्त दोनों बॉलर्स जो कि लाहौर के, सलमान इरशाद और उमैद आसिफ, इन दोनों ने अच्छी बॉलिंग की। एक दो चौके, इनफैक्ट 3 चौके इन दोनों को लगे अब तक इन 5.3 ओवर्स में, लेकिन ओवरऑल दबदबा रोब रहा इनका। बैकफुट पे रखा पिंडी के ओपनर्स को या बैटर्स को, और अभी भी उसका कहीं ना कहीं जो झलक है बैटिंग में वो नजर आ रही है। चूंकि 6ठा ओवर है, 2 विकेट गिर चुके हैं। गुफ्तो शनीद हुई इमरान भट्ट और अंपायर के दरमियान, क्योंकि थम्स अप करके उन्होंने ओके जरूर किया। अच्छी गेंद की बार लेंथ से पड़ के राइज हुई, सिर्फ 1 रन बना पाएंगे। आज सलमान इरशाद और उमैद आसिफ ने नई गेंद से बॉलिंग का आगाज किया, और दूसरी तरफ कोलकाता में हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने नई गेंद से बॉलिंग का आगाज किया, और बड़े महंगे साबित हुए हारिस रऊफ। 2 ओवर में 19 रन दिए हैं, और इंग्लैंड की टीम को अच्छा आगाज मिला है पाकिस्तान के खिलाफ मैच में। बड़े मार्जिन से, बल्कि बहुत ही बड़े मार्जिन से जीतना है पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल खेलना है, जो कि कदर नामुमकिन दिखाई देता है। अच्छी गेंद के बाहर पड़ने के बाद और बाहर की जानिब निकली। आज ऑफ द डेक मूवमेंट मिली है उमैद आसिफ को। अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को बारी भी अच्छी करनी है। ऑफ स्टंप से बाहर एक्जैक्टली अच्छी टीजिंग लाइन है। इन माइंड्स हैं कि क्या मैं खेलने जाऊं या छोड़ूं। बिल्कुल आखिरी लम्हात में बल्ले को बॉल की जो लाइन है उससे हटाया। बहुत ज़्यादा डॉट बॉल, 24 डॉट्स आ चुके हैं अब तक इन 5.5 ओवर्स में। की बार जाने दिया विकेट कीपर के पास। डॉट बॉल के साथ एक और अच्छे ओवर का इख्तिताम उमैद आसिफ का आज एक मुख्तलिफ रूप में दिखाई दे रहे हैं। फास्ट बॉलर 6 के बाद 20, 2 विकेटों के नुकसान पर। माइनर सा आ गया, माइनर सा कवरिंग 1 लेग मिडल मिडल, ठीक है, थैंक यू। राइट आर्म ओवर। अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल, लेकिन रन एक ही मिलेगा। उमैद आसिफ मौजूद हैं। ये अच्छा आगाज है लाहौर ब्लूज के लिए। याद रहे कि मैच जीतना बहुत जरूरी है और अच्छे मार्जिन से जीतना जरूरी है। उमैद आसिफ अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हुए शानदार 3 ओवर्स में 11 रन देकर 2 विकेट्स हासिल किए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है हैदर अली के लिए, अपनी खोई हुई फॉर्म, खोई हुए जो बैटिंग रिदम है उसको दोबारा हासिल किया जाए। फंसी के लिए भी इंपॉर्टेंट इनिंग है, लेकिन उनका मुकाबला बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही टैलेंटेड स्किलफुल बॉलर्स का सामना है। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में तारिक सईद साहब आ गए।
खुशामदीद कहते हैं आपको। शुक्रिया अली। तो यहाँ इस इनिंग्स को अब रिपेयर करना है। इन दोनों खिलाड़ियों को फंसी रन्स में है। हैदर को रन्स की ज़रूरत है। मुश्किल हालात हैं रावलपिंडी के लिए। थोड़ी सी जगह मिल गई थी, इससे क्लियर कर गए इनफील्ड को। 2 रन का और इजाफा। फंसी कुछ वक्त लेते हैं, विकेट पर आमतौर पर ठहरना पसंद करते हैं। पाकिस्तान अंडर 19 टीम से आए। यहाँ डेब्यू में 50 रन की इनिंग भी खेल चुके हैं लिस्ट ए में मोहम्मद फसी। अच्छे ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल क्रिकेटर लगते हैं, ऐसे बैटर जो बारी लेना पसंद करते हैं। अच्छा स्क्वायर ड्राइव, लेकिन रन नहीं मिल सकेगा। ये दोनों पूरे टूर्नामेंट में बड़ी उम्दा बॉलिंग करते आ रहे हैं। सलमान इरशाद और उमैद आसिफ नई गेंद के साथ। अच्छा कंट्रोल है, दोनों खासे कदावर हैं मुख्तलिफ अंदाज से बॉलिंग करने का, इसलिए और मुश्किल हो जाता है इनके खिलाफ बैटिंग करना इन टैंडम। लेकिन लाहौर को इनके बाहर कहाँ देखना है, क्योंकि पहली तब्दीली पर भी आपको फास्ट बॉलर की ज़रूरत तो पड़ेगी। इसलिए अगर ये दोनों बैट्समैन जो हैं इनको सी ऑफ कर लेते हैं तो बाद में आसानी हो सकती है। जहाँ आप जायद आलम की तरफ देखेंगे या हुसैन तलत की तरफ देखेंगे, 2 मीडियम पेसेस हैं, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पिच ऐसा है जिसपे आपको फास्ट बॉलर चाहिए, और हुनैन शाह के ना होने से डेफिनेटली डेंट पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इनकी बॉलिंग लाइनअप में। ऑल द क्वालिटी स्पिनर्स दोनों मौजूद हैं, काशिफ भट्टी और उस्मान कादिर, लेकिन यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को काफी मदद हासिल हुई है, तो डेफिनेटली डेंट होगा हुनैन का ना होना। हैदर को एक लंबी इनिंग्स की ज़रूरत है अपना खोया हुआ रिदम और फॉर्म वापस पाने के लिए। 24 पर 2। दो 57 का हदफ अब और ज़्यादा मुश्किल नज़र आने लगा है। 2 विकेटें गिरने के बाद दोनों खिलाड़ियों को उमैद आसिफ ने आउट किया और वही अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे इस वक्त शेल एंड से। आज इसी एंड पर नई गेंद से काशिफ अली ने भी विकेटें हासिल की थी। ये बहुत ज़रूरी है विकेटों के दरमियान अच्छी दौड़ लगाना, गेंद को गिराकर भागना। इस पिच पर थ्रू द लाइन आप शुरू में शॉट नहीं खेल सकते, इसलिए स्ट्राइक रोटेट करने का भी बेहतरीन तरीका यही है। आप गेंद को थपकी भी नहीं दे सकते, गेंद को गिरा के भागे। या स्पेशली नए बॉल के साथ तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप सॉफ्ट हैंड से खेलें और रोटेशन करें और आप डटे रहें, लड़ते रहें, क्रीज पे मौजूद रहें, क्योंकि आप मौजूद रहेंगे तो उसके बाद जब फर्स्ट चेंज बॉलर्स आते हैं तो बैटिंग थोड़ा आसान हो जाती है, थ्रू द लाइन शॉट्स लगना शुरू हो जाते हैं। आउटसाइड एज और अच्छा कैच, वहां पर हुसैन तलत थे स्लिप में, दूर से खेल गए हैदर, बिल्कुल लाइन में नहीं आ सके और एक बार फिर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। जी भले जो आयरन मैन है वो थोड़े एज में ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अपनी एक्यूरेसी में नहीं चूकते हैं। बहुत ही शानदार एरिया में बॉल किया, थोड़ा फ्लोटर हवा में बॉल छोड़ा, स्विंग होने का पूरा मौका दिया और उसी में चकमा खा गए हैदर अली। एक्सपेंसिव ड्राइव मारने चले गए, वापस जाना होगा 2 रन बनाकर। 25 पर 3 रावलपिंडी। बैट्समैन से पहले रेडी होंगे, उस्मान गली चाहिए।
उमर मसूद नए आने वाले बैट्समैन। आज रावलपिंडी की परेशानी का आगाज इनके कैच गिराने से हुआ था पहले ही ओवर में, लेकिन लाहौर ने बहुत अच्छे कैचेस पकड़े। तीनों जो विकेटें हासिल की हैं उन्होंने कैचेस के जरिए हासिल की हैं। इसलिए कहा जाता है कि पकड़ो कैच जीतो मैच, वही राह हमवार की है लाहौर ने। 361 रन हैं उमर मसूद के। ये बासलाहियत खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर बैट्समैन, आज सिर्फ बैट्समैन की हैसियत में। एक स्लिप है, एक फाइन गली को भी बुला लिया गया। ज्यादा दूर निकल गए, उम्दा फील्डिंग, अच्छी टेक जुनैद अली की। या बहुत ही आला, और ऐसी ही सपोर्ट की जरूरत है। हमने पहली इनिंग में देखा था कि सपोर्ट हासिल नहीं थी फील्डर्स की, लेकिन यहाँ पे लाहौर ब्लूज बहुत जान मार रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं। ऐसी एफर्ट्स ही टीम का मोराल लिफ्ट अप करते हैं। और आई एम श्योर ये आसान रन चेज नहीं होगा रावलपिंडी के लिए, क्योंकि लाहौर ब्लूज के पास एक मकसद है कि ये मैच जीतना है और अच्छे रन रेट से जीतना है। लाहौर वाइट्स की टीम हो, अक्सर टीमें हम देख रहे हैं। पिछले मैच में पेशावर ने भी नॉन रेगुलर विकेट कीपर को खिलाया था, तो बैट्समैनों से विकेट कीपिंग कराई जा रही है। इससे पहले ये अच्छा कैच लिया हुसैन तलत ने। हैदर अली ने कमजोर शॉट खेला, बिल्कुल लाइन में नहीं आए, उनका पांव जो है गेंद की पिच तक नहीं पहुंचा। तो जुनैद अली जो हैं ये स्पेशलिस्ट विकेट कीपर हैं। अभी इन्होंने 22 के रन्स बचाए थे। इस 80 पिचेस पर आपको ज़रूरत होती है स्पेशलिस्ट विकेट कीपर की, और ये फॉर्मेट भी ऐसा है जहां आपको स्पेशलिस्ट विकेट कीपर चाहिए। जहाँ बिल्कुल 100% मैं आपसे एग्री करूंगा। और एक अच्छा टेक, एक अच्छी इस तरह की एफर्ट जो अभी जुनैद ने किया, पूरे टीम का जो मोराल है वो लिफ्ट अप कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि विकेट कीपर प्रॉपर विकेट कीपर हो, मेकशिफ्ट ना हो, जो कि गलती लाहौर वाइट्स कर रहे हैं। हम कभी देखते हैं इखलाक विकेट कीपिंग कर रहे हैं, कभी उमर अकमल कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सोचना होगा लाहौर वाइट्स को भी, क्योंकि बहुत सारे अच्छे विकेट कीपर्स हैं जो इंटर डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करके आए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, लेकिन आप मेकशिफ्ट ओपनर्स विकेट कीपर्स खिला रहे हैं और फर्क पड़ा है। लास्ट नंबर पे हैं लाहौर वाइट्स इस टेबल पे। और ये कमेंटेटर्स का एक आसान कैच छोड़ दिया विकेट कीपर ने, आउटसाइड एज, ठीक कैच था और ज्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए थी। ऐसा लगता है कि तारीफ कुछ ज्यादा कर दी हमने, डिसअपॉइंटेड होंगे जुनैद। कमेंटेटर्स का सही है, दूर से खेल गया था, अच्छी लेंथ एक बार फिर। फुटवर्क थोड़ा खराब हो गया, थोड़े जल्दी में थे। ये थोड़ा वेट करना चाहिए था, थोड़ा आंखों के करीब आके ये कैच पकड़ना चाहिए था। आयरन मैन डिसअपॉइंटेड है। जल्दबाजी में कहा जाता है कि जल्दबाजी जो है कभी बारावर साबित नहीं होती। ये स्लिप के फील्डर भी कैच कर सकते थे, लेकिन विकेट कीपर के पास ग्लव्स होते हैं तो ज्यादा इम्कान होता है कि वो गेंद को कलेक्ट कर लेगा। बदकिस्मत रहे, इस ओवर में उमैद दूसरी विकेट ले सकते थे। 28 पे 3। यहाँ पार्टनरशिप है फसी और इस वक्त उमर मसूद के दरमियान।
क्योंकि ज़्यादा तजुर्बा नहीं है आने वाले खिलाड़ियों में। बिलावल भट्टी एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जिनसे आप तवक्को रख सकते हैं, लेकिन यहाँ रन्स बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने लाहौर वाइट्स के खिलाफ एक कामयाबी दिलाई थी, लेकिन अच्छे आगाज़ के बाद और आज अभी रज़ाउल मुस्तफ़ा विकेट कीपर आएंगे, फिर बिलावल भट्टी हैं, महरान मुमताज़ कुछ देर विकेट पे ठहर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा फिर उस्मान कादिर का सामना करना। जी आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन स्टिल उनको निकलना होगा, दिखाना होगा अपना जौहर। इस वक्त तो बैटिंग के लिए हालात मुश्किल हैं। नया बॉल है, सीम और स्विंग हो रहा है, दो एक्सपीरियंस बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं। एक लर्निंग है ये उमैर के लिए भी और फसी के लिए भी कि इन मुश्किल कंडीशन से आप कैसे निकालते हैं अपने आप को और अपनी टीम को। और यही मौके होते हैं तारिक भाई, आप इतनी क्रिकेट कवर की है हमने, कि जब आप टीम को मुश्किलात से निकालते हैं तो आप स्टार बनते हैं। विद इन द टीम आप स्टार बनते हैं, क्योंकि आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि आप मैच जितवाते हैं टीम को। तो ऐसे ही कुछ करना होगा यहाँ पे फसी को भी। हवा में स्विंग हुआ है और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं सलमान इरशाद से। इनका एक्शन अलाउ करता है, थोड़ा स्लिंग है एक्शन में, लेकिन अभी हम बात फसी पे ही करेंगे। अच्छे लगते हैं, टेक्निकली साउंड है, वैल्यू करते हैं अपनी विकेट को, और यहाँ पे उस टैलेंट को कन्वर्ट करना होगा परफॉर्मेंस में, अपनी टीम के लिए, अपने लिए, क्योंकि मुश्किल बॉलिंग है, ब्रॉडकास्ट मैच है, अपना नाम बनाने का बेहतरीन सुनहरी मौका है इनके पास। अच्छी वापसी की इस मैच में। जल्दी विकेटें गंवाने के बाद लाहौर ब्लूज ने, और टॉस हारने के बाद भी यहाँ टीमें जीती हैं पहले बैटिंग करके। एक तरफा मामला रहा नहीं, हालांकि हर बार ये छठा मैच है टॉस जीतने वाले कप्तान जो थे। अच्छा कवर ड्राइव, उतनी अच्छी फील्डिंग भी। उस्मान यहाँ पर फील्डर थे, पीछे रिजवान हैदर, 28 पर 3। इमरान जावेद का इशारा कि 9 ओवर्स मुकम्मल हुए, पहला पावर प्ले इख्तिताम पजीर हुआ, जो कि डेफिनेटली लाहौर ब्लूज के नाम रहा है। बत्तीस पर 1 विकेट गंवाई थी लाहौर ने अपने बैटिंग पावर प्ले में। उनके बॉलर्स ने 3 विकेटें ली हैं 28 रन के एवज। उमैद आसिफ बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं इस पूरे इवेंट में, लाहौर की उम्मीद बनकर वो चमके हैं। यहाँ जीशान मलिक आए, एक आसान कैच उन्होंने पेश किया, उसके बाद उमर अमीन, उनको एक मौका मिला। यहाँ पर खतरों से खेल रहे थे, 1-2 अच्छे ड्राइव किए, जब लगता था कि सेट हो गए हैं और गेंद हवा में गई और पहुंच गई आखिर में शॉर्ट थर्ड की जानिब। खतरों से तो डेफिनेटली खेल रहे हैं उमैर, और शायद रोल भी डिफाइन किया गया है कि फसी ऐसे होंगे जो पूरा मैच खेलेंगे। लेकिन पावर प्ले की बात की जाए, बहुत ही कॉम्पैक्ट डिसिप्लिन बॉलिंग देखने को मिली है, एक्सपीरियंस बॉलिंग, एजेस निकलवाते हुए नजर आए हैं दोनों बॉलर्स। एरिया बहुत शानदार है, स्पेशली उमैद आसिफ ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप किया, अपनी लेंथ विकेट्स हासिल किए हैं। एक मौका भी मिल चुका है फसी को, जब कैच छोड़ा विकेट कीपर ने, तो अब इसको कैपिटलाइज करना होगा इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि अच्छे प्लेयर यही करते हैं कि अगर उनको आप एक मौका देंगे तो वो आपको
पे करना पड़ता है आपको उस मौके का। अब देखना होगा कि फसी कितना कन्वर्ट कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। 8 रन पे हैं अभी। शान मसूद की इनिंग से सीखना होगा, वो भी लेफ्ट हैंडर हैं और उन्होंने एक शानदार सेंचुरी स्कोर की थी रन चेज में। तो क्या फसी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन जैसी इनिंग खेलें, लेकिन उससे सीख के अपने तरह की कोई इनिंग खेल सकते हैं जिससे अपना स्कोर बड़ा करें, अपनी टीम को मैच जितवाएं, क्योंकि पोटेंशियल मौजूद है। एग्जीक्यूट करना होगा आज। स्कोर बोर्ड का दबाव है और आज मुबस्सिर खान के ना खेलने का भी दबाव है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस टीम के सरकर्दा और राउंडर हैं मुबस्सिर खान। आज खेल शुरू होने से पहले ये जख्मी हो गए थे। इनके अंगूठे पर साथी खिलाड़ी का जो स्पाइक है वो चुभ गया था। इस तरह बुरी तरह जो अंगूठे का नाखून है वो उखड़ के रह गया। दरअसल ये इनकी उंगली का जो नाखून है वो उखड़ गया, जिस पर ये मरहम आप देख सकते हैं। ये बड़ा धचका है, क्योंकि मुबस्सिर खान के टीम से बाहर होने से इनका एक बैट्समैन ही कम नहीं हुआ, इनका एक बॉलर भी कम हो जाता है। 2 in 1 है जी। और आपने जैसे कहा कि कॉम्बिनेशन खराब हो गया, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा बॉलर, एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाना पड़ा। शायद जहांदाद की जगह आप उनको खिला सकते थे, विकेट कीपर को भी ऐड करना पड़ा। तो कॉम्बिनेशन में डेफिनेटली थोड़े मसाइल आए हैं। और ये ऐसे प्लेयर हैं कि जो सिंगल हैंडेडली मैच जितवाने की पोटेंशियल रखते हैं। हमने इनको देखा है ऐसा करते हुए, स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट में। 99 रन की इनिंग खेल चुके हैं पाकिस्तान कप में ऑलरेडी। तो डेफिनेटली एक बड़ा धचका है रावलपिंडी के लिए, लेकिन वो होप करेंगे कि आने वाले मैचेस के लिए ये फिट हो सकें, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है रावलपिंडी के लिए कि सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई जाए। मुकाबला सख्त होगा इनमें और मुल्तान की साइड में और लाहौर ब्लूज में, कि कौन सी वो तीसरी और चौथी जो स्पॉट है उसको हासिल करते हैं, क्योंकि पेशावर की साइड नंबर 1 पे सुकून में है। आज अगर लाहौर को कामयाबी मिलती है, मुमकिन तौर पर वो चौथे नंबर पर आ सकते हैं लाहौर ब्लूज 30 पर 3। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 6.49 का है, और ये अगर ऐसे ही खेलते रहेंगे ये बढ़ता चला जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा बैटिंग लाइनअप पे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक पे बिलीव रखें, सिंगल्स डबल्स लेते रहें। बॉलिंग में भी तब्दीली अब देखने को मिल रही है। स्पिन को इंट्रोड्यूस कराया है, उस्मान कादिर आ गए, अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए पाकिस्तान कप में। उस्मान कादिर 62 विकेट्स हासिल कर चुके हैं इस लेवल पे, 3 बार 5 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। और यही एक टिपिकल लेग स्पिनर की निशानी होती है कि वो बड़े विकेट्स हासिल करता है, अटैकिंग ऑप्शन होते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है। यहाँ कासिम अकरम को इनसे पहले 1-2 ओवर ये करा सकते थे लेफ्ट हैंडर फसी के सामने। ज्यादातर मैचों में कासिम अकरम ने पहले बॉलिंग की है उस्मान से। ये अच्छी गेंद नहीं थी, लेकिन पीछे फील्डर हैं, खराब रनिंग। यहाँ दूसरा रन बनना चाहिए था। गेंद बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी और लंबा फासला तय करते हुए आए थे आउटफील्डर। ये दूसरा फर्क है जो लाहौर ब्लूज और रावलपिंडी की टीम में है। फील्डिंग जो कैचिंग हमने देखी वो फर्क है, और रनिंग बिटवीन द विकेट्स। जब उमर सदीक और हुसैन तलत खेल रहे थे तो बहुत सारे सिंगल्स को उन्होंने डबल में कन्वर्ट किया था, और यहाँ पे डबल को सिंगल में कन्वर्ट किया है रावलपिंडी में। तो ये फर्क है दोनों टीम्स में अभी तक। दोनों ही बैट्समैनों का ख्याल था कि ये 4 रन हो जाएंगे। बाउंड्री पर रिजवान हुसैन थे,
हालांकि बैट्समैन को खुद अंदाजा होना चाहिए था कि इतना अच्छा टाइम नहीं कर सके। ऐसा ऐसा आएंगे ग्रूव में उस्मान कादिर, जिनसे बड़ी उम्मीदें हैं इस सीजन में। एक अरसे के बाद उन्होंने तकरीबन पूरा सीजन गुजारा है अपनी फर्स्ट क्लास टीम के साथ, हालांकि सिर्फ एक ही फर्स्ट क्लास मैच खेले और उसमें भी इन्होंने 6 विकेटें हासिल की कराची के सामने गद्दाफी स्टेडियम में। एक बदले बदले बॉलर नजर आते हैं, ज्यादा इंप्रूव क्रिकेटर। और ऐसा ही होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करते हैं एज अ लेग स्पिनर स्पेशली, आपका वो रिदम अच्छा बनता है, कंट्रोल अच्छा बनता है, आपका बॉल अच्छा गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि लेग स्पिनर जो है वो रिदम वाले बॉलर होते हैं। आज सुबह के वक्त इनके जो हेड कोच हैं कामरान खान, उनसे बात हो रही थी 3 विकेटों के नुकसान पर 11 ओवर्स के बाद। तो कामरान खान का यही कहना था कि बहुत मेहनत की है उस्मान कादिर ने ऑफ सीजन में और वो नजर आ रही है। और इस टूर्नामेंट में भी खेलना बहुत ज़रूरी है। हर मैच में पूरे 10 ओवर्स, पूरे 9 ओवर्स का जो स्पेल करना है वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो भी शायद इस टूर्नामेंट में एक ही बार ये कर सकें। हुसैन तलत अब आगे हैं बॉलिंग करने। 35 विकेट्स हासिल कर चुके हैं इस लेवल पे, अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं। बेस्ट बॉलिंग 4 54 रन देकर। उस्मान कादिर की आप बात कर रहे थे, तो ये मैं इनका चशमदीद गवाह हूँ कि जितनी क्रिकेट इन्होंने ऑफ सीजन खेली है, क्योंकि अलीगढ़ ग्राउंड में जहाँ पे मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं भी क्लब क्रिकेट रेगुलर खेलता हूँ, तो अक्सर मैंने इनको क्लब क्रिकेट के मैचेस खेलते हुए देखा है। और जहाँ पे ये पूरा मैच खेलते हैं, पूरा अपना स्पेल करते हुए नजर आए, इसका मतलब ये है कि अपनी क्रिकेट को ये अब मजीद सीरियस ले रहे हैं। मजीद उनको ये अंदाज़ा है कि बॉलिंग करने से ही इनकी बॉलिंग बेहतर होगी। तो वेल डन उस्मान कादिर, लेकिन नॉट सो वेल डन बाय लाहौर मैनेजमेंट, जिन्होंने सिर्फ एक मैच खिलाया इनको पूरे कायदे आजम ट्रॉफी में। और ये थोड़ा सरप्राइजिंग था तारिक भाई, क्योंकि आप अगर एक प्लेयर पाकिस्तान को टच करके आ रहा है या पाकिस्तान टीम से खेल के आ रहा है और आप वो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना रिदम वापस लेना चाहता है, तो वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी फर्स्ट चॉइस वो बॉलर होना चाहिए या वो क्रिकेटर होना चाहिए जो पाकिस्तान टीम को टच करके आ रहा हो। लेकिन बहुत हैरानगी हुई कि इनको सिर्फ एक मैच खिलाया गया, और अब भी जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे, सिर्फ एक बार ही 10 ओवर्स या 9 ओवर्स का कोटा मुकम्मल किया है उस्मान कादिर ने। तो ऐसे लेग स्पिनर्स डेवलप नहीं होते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। यहाँ ये कप्तान की जिम्मेदारी है, ये कोच से ज्यादा कहीं कप्तान की जिम्मेदारी है फील्ड पर, क्योंकि वहाँ बागडोर जो है उसी के हाथ में होती है। बॉलिंग में रद्दोबदल करना और स्पिनर को ऐसी फील्ड देना जो वो चाहता हो, उसे कंफर्ट जोन में रखना, ये कामरान खान है जो कि हेड कोच हैं लाहौर ब्लूज के, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। इमरान भट्ट जो हैं अब इनको बहुत तजुर्बा हो चुका है, ये पाकिस्तान शाहीन्स की भी कप्तानी कर चुके हैं इमरान भट्ट। मूवमेंट नजर आई हुसैन तलत, आम हालात में ये बहुत दिफाई बॉलर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ इनको भी अपना माइंडसेट तब्दील करना होगा और विकेट टेकिंग बॉलिंग करने की ज़रूरत है, वही अप्रोच इनकी होनी भी चाहिए। इंपॉर्टेंट टाइम पे बॉल करना है, फर्स्ट चेंज पे, और काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा इन पे, हुसैन तलत पे, क्योंकि इनके अलावा ऑल्दो ज़ैद आलम हैं, लेकिन इनके पास वो एक्सपीरियंस, वो स्किल है और पेस भी बेहतर है। ज़्यादा एक्सप्रेस तो नहीं है बट स्टेडी बॉलर है, अपनी लाइन और लेंथ पे बिलीव करते हैं। लाहौर ब्लूज अभी तक 2 मैचेस जीते हैं, फैसलाबाद और फाटा के अगेंस्ट, लेकिन लाहौर वाइस्ट को यहाँ पे शिकस्त हुई थी। लाहौर वाइस्ट के अगेंस्ट पहले मैच में पेशावर की टीम से 6 विकेट से हारे, मुल्तान से 37 रन से हारे, और बड़ा मैच एक रावलपिंडी के अगेंस्ट जो आज हो रहा है और कराची के अगेंस्ट जो अगला मैच है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा मैच होने वाला है, तो आसान नहीं होगा।
यहाँ लाहौर वाइट्स के खिलाफ इन्होंने पहला मैच यहीं हारा था। उस दिन टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की थी और अगले दिन टॉस हार कर जब इन्होंने पहले बैटिंग की तो वो फैसला इनको रास आ गया, टॉस हारना। और उस मैच में इन्होंने फैसलाबाद को शिकस्त दे दी। आज फिर टॉस हारे और आज भी अभी तक रास आया टॉस हारना इमरान भट्ट को। रन एक बार बोर्ड पर मौजूद हूँ। फिर इनके बॉलर्स के पास ये सलाहियत है, इनके पास क्योंकि अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छे दो नई गेंद के बॉलर्स हैं जिनने आज भी धाक बिठाई है 35 पर 3। बारह में से लगभग 8 ओवर्स खाली गए हैं रावलपिंडी के लिए। 47 डॉट बॉल्स जब आप 257 चेस कर रहे हैं वो भी 45 ओवर्स में, यकीनी तौर पर ये एक मुजरिमाना गफलत है रावलपिंडी की टीम के लिए। और 3 बड़ी विकेटों का नुकसान, जीशान मलिक, उमर अमीन, हैदर अली, इन तीनों खिलाड़ियों ने आज खातिर खा मुतासिर नहीं किया। और यही वो टाइम है जहां फसी और उमेर को मुतासिर करना है। ऑलरेडी 3 मैचेस जीत चुकी है रावलपिंडी की टीम इस पाकिस्तान कप में। और आज इनके सामने एक बड़ा हदफ है, 257 रन्स कोई मामूली हदफ नहीं है, 220 मजीद करने हैं। अच्छी गेंद उस्मान कादिर की, फ्लाइट देते हैं, स्टंप्स में बॉल करते हैं, बड़े दिल के साथ गेंदबाजी करते हैं। ये थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ बॉल था, लेकिन जब जब उन्होंने फ्लाइट दिया, क्योंकि अपने दूसरे ओवर में हैं, 6 रन्स दे चुके, लेकिन इनके पास एक कैलिबर है कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा फ्लाइट दें सरफेस पे तो माइट भी, जो स्लिप रखा था उन्होंने, वहाँ से कोई ना कोई विकेट मिलते हैं राइट हैंडर को। अब्दुल फसीब ये बड़े टेक्निकली साउंड प्लेयर लगते हैं, क्रीज पे वक्त गुजारते हैं, बेहतर अंदाज से सिंगल डबल करते हैं। लेकिन आज इनके लिए एक मुख्तलिफ इम्तिहान है, क्योंकि सिर्फ दूसरा लिस्टे मैच खेल रहे हैं। पहले में निस सेंचुरी स्कोर की थी, आज सिर्फ 50 के स्ट्राइक रेट से बारी कर रहे हैं। ड्रैग डाउन थोड़ा तेज गेंद कर दिया था उस्मान कादिर ने। 13 के बाद 39, 3 विकेटों के नुकसान पर। यार ये नेल्स देखना किसका है? मैच तुम्हारा है या इसका? कौन सा वाला है? अच्छा, 3 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा है रावलपिंडी की टीम को, लेकिन रन्स नहीं आ रहे। सिर्फ 3 के रन रेट से बारी कर रही है रावलपिंडी की टीम, क्योंकि बाहर गेंद सिंगल डबल पर इत्तेफाक कर रहे हैं अब्दुल फसी और उमैर मसूद की ये जोड़ी। जी हाँ, जैसे आपने बात की कि टारगेट जो है वो बड़ा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट को बेहतर करना होगा इन दोनों बैटर्स को। उमैर जो कि 6 के रन पे हैं, 19 बॉलें खेल रखी, स्ट्राइक रेट 31। तो स्लोली लेकिन श्योरली स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी मैच विनिंग इनिंग खेलनी होगी इन दोनों को। खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेला, लेकिन टाइमिंग नहीं थी। और यही कहानी रही है रावलपिंडी की इस इनिंग्स की, कि टाइम नहीं कर पा रहे सही तरह बैटर्स। क्योंकि जिस वक्त आप चेस डाउन कर रहे हो और
पहले तो एक्सपेक्टेशंस थी कि कप्तान से उमर अमीन, लेकिन यहाँ पर अब फसी और उमैर मौजूद हैं। इनको चाहिए कि वन ऑफ देम एक मैच विनिंग इनिंग खेले, अच्छा तगड़ा 100 या 70-80 के रन। अब्दुल फसी टेक्निकली साउंड लगते हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकली साउंड हैं तो आपके जो रेpertoire है उसमें बॉल स्ट्राइकिंग की एबिलिटी भी होनी चाहिए। आप स्ट्राइक जल्दी रोटेट कर सकते हैं, सिंगल डबल लेते हैं, लेकिन आपकी ये बैटिंग आर्मरी में ये चीज़ होनी चाहिए कि जब जब आपकी टीम को बाउंड्री ज़रूरत हो आप वहाँ बेहतर अंदाज से एक्सेलरेट कर पाए। बिल्कुल इमाम उल हक की तर्ज के क्रिकेटर लगते हैं, लेकिन इमाम ने वक्त के साथ साथ अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है, डोमेस्टिक क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट तक। जब शुरू में एचबीएल की नुमाइंदगी करते थे इमाम उल हक, तो वो इतनी तवातुर से बाउंड्रीज नहीं लगा पाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी क्रिकेट को, अपनी गेम को बहुत इंप्रूव किया है। पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में 50 से ज्यादा की बैटिंग एवरेज है इमाम उल हक की, लेकिन यहाँ पर इन्हें बाउंड्रीज लगानी है, क्योंकि 60 गेंदों कबल आखिरी बाउंड्री लगी थी रावलपिंडी की इस बैटिंग में। तो अगर 215 करना है 31 ओवर्स में तो आपको बाउंड्रीज लगानी होंगी। निकाला इस गेंद को खूबसूरती के साथ, फील्डर सरतोड़ कोशिश के बावजूद गेंद को नहीं रोक पाए। 10 ओवर के बाद रावलपिंडी की टीम के लिए बाउंड्री। थोड़ा सा अपिश जरूर खेले, लेकिन उन्हें भी इस चीज का अंदाजा है कि बाउंड्रीज जो है वो ड्राइड है। थोड़ा सा बैक ऑफ लेन, टोस पे गए, सॉर्ट ऑफ अपर कट पॉजिटिव रहा और ये मैनेज किया, बावर किया इनफैक्ट कि थर्ड मैन से थोड़ा दूर खेले। और यहाँ पर स्लाइड जो है वो शायद बाउंड्री को बचा पाती, लेकिन इस तर्ज का वेकअप कॉल होनी चाहिए दोनों बैटर्स के लिए। का इस्तेमाल किया और फिर फील्ड अबूर करने में कामयाब हुए मेहर मसूद। सिंगल के साथ ओवर का अख्ताम। 14 के बाद रावलपिंडी 47, 3 विकेटों के नुकसान पर। लाहौर वाइट्स के खिलाफ बिलावल भट्टी ने 69 रन की इनिंग खेली थी और आज लगता यही है कि खेल जो है इन्हीं के कंधों पे जाएगा। फुल टॉस कवर्स की तरफ खेले, लेकिन टाइमिंग बड़ी जबरदस्त थी। खूबसूरती के साथ खेला गया ये स्ट्रोक उमैर मसूद की तरफ से और ऐसा लग रहा है कि ये विकेट पर अब आंख बिठाने के बाद अब बाउंड्रीज लगाने की तरफ जा रहे हैं। या जागना होगा। 50 रन टीम के मुकम्मल हुए। इसको थोड़ा सा शायद आगे करने गए, प्रॉपर्ली बॉल को पिच नहीं कर पाए जहां पर टारगेट था, लेकिन प्लेसमेंट बेहतर थी, एफर्ट भी बेहतर थी, लेकिन बेसूद रही। इनिंग्स का आगाज काफी सुस्त रवि से किया था उमैर मसूद ने, लेकिन पिछले ओवर में एक बाउंड्री उन्हें मिली, उसके बाद इस ओवर का आगाज भी उन्होंने बाउंड्री से किया है। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये इनिंग्स पेस पकड़ रही है रावलपिंडी की टीम के लिए और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि 6.68 का रिक्वायर्ड रन रेट के लिए आपको कम से कम ओवर में एक आध बाउंड्री जरूर लगानी होगी। हाँ, यहाँ पर स्विच हिट के लिए अपनी पोजीशन तब्दील करने की कोशिश की अब्दुल फसी ने, लेकिन उस्मान कादिर भाग गए थे, वो रुक गए। बैट्स पे गेंद, दोबारा वही करने की कोशिश की अब्दुल फसी ने। अक्सर औकात बैटर्स ये करते हैं बॉलर की लाइन डिस्टर्ब करने के लिए। जी, उनकी कोशिश यही है, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करें, तो ये वो जराए हैं, ये इनोवेशंस हैं जहां पर फसी या उमैर जो है वो कोशिश करके रन रेट को बढ़ा सकते हैं। ये कन्वेंशनल क्रिकेट शॉट्स में महारत रखते हैं अब्दुल फसी। पार्टनरशिप लगाना बेहतर है, लेकिन वो पार्टनरशिप जो है वो थोड़ी सी
तेज होनी चाहिए कि देखें 33 पे 17, 25 पे 17, क्योंकि मुश्किल वक्त ये दोनों गुजार चुके, इसको कैपिटलाइज करना है टुवर्ड्स मैच विनिंग इनिंग्स। जिस तरह बात कर रहे थे पिछले मैच की, 97 रन पर 6 विकेटें गिर गई थी। सूरत काफी मुख्तलिफ थी उस मैच में, क्योंकि सिर्फ 201 रन करने थे रावलपिंडी की टीम को, ओवर्स भी काफी ज्यादा बाकी थे। तो वहां पर उमैर मसूद और बिलावल भट्टी ने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली थी, काउंटर अटैक किया था। और आज भी कुछ इसी किस्म की इनिंग्स की तवक्को है। इसके बाद बिलावल भट्टी ने आना है, मेहरान मुमताज, विकेट कीपर रजा उल मुस्तफा। किसी किस्म की जल्दी में नहीं दिखाई दे रहे। अब्दुल फसीह सिंगल के साथ इस ओवर के अख्ताम। 8 रन आए इस ओवर में, 15 के बाद 55 पर 3। आपने कुछ देर पहले बात की 201 का हदफ या 250 का, तो यकीनी तौर पर 250 का हदफ इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आखिरी 5 ओवर में 47 रन दिए पिंडी की टीम के बॉलर्स ने। 1 विकेट उसमें गिरा लाहौर का, काफ़ी डिफरेंस बना उस वजह से भी। जी, आपको कैपिटलाइज करना होता है आखिरी पावर प्ले में, क्योंकि आखिरी ओवर में बैट्समैनों की कोशिश होती है कि तेजी से रन्स करें, रन रेट को बढ़ाएं। और वही ऐसा लम्हा था जहां मोमेंटम लाहौर ब्लूज की टीम की तरफ गया। अगर अब इस मैच में कमबैक करना है रावलपिंडी की टीम ने, तो जो मोमेंटम है उसको अपने हक में रखना होगा, और वो उनके हक में आ सकता है तबातुर से लगाई गई बाउंड्रीज की वजह से। तो इस वक्त 6.77 का रिक्वायर्ड रन रेट। ज्यादातर सिंगल डबल पर इत्तेफाक करते हैं अब्दुल फसी। और अगर हम दोनों टीम्स की शुरुआत भी देखें, पहले 10 ओवर्स में अगर हम रावलपिंडी को देखें तो वो भी लगभग 30-33 रन थे, लेकिन उनके 3 खिलाड़ी आउट थे, जबकि लाहौर के भी वो 30-32 के ऊपर 1 खिलाड़ी आउट था। तो शुरुआत में लाहौर की टीम ने वॉचफुल ज़रूर खेला, लेकिन रावलपिंडी के जो बैटर्स थे, ओपनर, जो कहना चाहिए लाहौर के बॉलर्स हैं, उन्होंने वहाँ पर अपना काम किया। इनफैक्ट एक यहाँ पर शायद फसी को एक मौका भी मिला विकेट कीपर पे। खराब गेंद, पैड पर ये बॉल, इजी पिकिंग उमैर मसूद के लिए, लेकिन बड़ी जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट डीप मिड विकेट पर। उमर सदीक पहली मर्तबा नहीं है कि आउटफील्ड में बड़े चाको चौबंद दिखाई दिए उमर सदीक। सपोर्ट चाहिए यहाँ पर अपने फील्डर्स से, क्योंकि अर्लियर ऑन रावलपिंडी की जो इनिंग थी उसमें हमने बहुत से ड्रॉप कैचेस देखे, और ये बेहतर है कि आप स्लाइड करके बॉल करो के रेदर देन विद फुट। बाज़ का इंजरीज का भी खतरा होता है, और इतना ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहते इस तर्ज के रोकने। बिल्कुल, लेकिन आज खासा मायूस किया है उमर अमीन, हैदर अली, जीशान मलिक। ये तीनों बड़े खिलाड़ी हैं, इनसे बड़े रन्स की तवक्को थी रावलपिंडी की टीम को। एग्जैक्टली इससे पहले उमर अमीन शायद फैसलाबाद के अगेंस्ट एक अच्छी इनिंग खेल चुके थे, जो कि सक्सेसफुल चेस था फैसलाबाद के अगेंस्ट, बीइंग अ कैप्टन उमर अमीन। लेकिन आज वो एक अच्छी बॉल पे ट्रैप हुए ऑफ स्टंप से बाहर, और ये कर्टसी होती है होमवर्क की, कि जो अपोनेंट टीम है वो आपको किस तरीके से अपना होमवर्क करके आती है कि कहाँ पर हमने पर्टिकुलर बैटर को जो है वो लाइन ऑफ अटैक रखना है। उसी वजह से वो कैच आउट हुए। जी, लेकिन ऐसी सूरत हाल में आपकी गेम अवेयरनेस जो है वो बेहतर अंदाज से नजर आती है, आपका जो तजर्बा है वो बेहतर अंदाज से नजर आता है। हम अक्सर औकात इसी पाकिस्तान कप में बात करते रहे हैं कि अगर आप तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, तो आपको इस यंग लॉट में स्टैंड आउट करना होता है, और वो आपकी परफॉर्मेंस से, आपकी गेम अवेयरनेस से, की बेहतर अंदाज से, अडेप्टेबिलिटी से हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से आज उमर अमीन नहीं कर पाए।
अब्दुल फसीब सिंगल के साथ 20 पर जा पहुंचे हैं। 16 के बाद 60, 3 विकेटों के नुकसान पर। टाइम ही 7 मिनट चले गया ना। तो 3 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा है। सबसे पहले उमैद आसिफ ने निशान मलिक को चलता किया, बड़ा जबरदस्त कैच जैद आलम की जानिब से। उसके बाद उमर अमीन ड्राइविंग लेंथ पर थ्रू द लाइन खेलना चाह रहे थे और एक फुलर गेंद को निकालना चाह रहे थे कवर की जानिब। बड़ा जबरदस्त कैच किया स्लिप में हुसैन तलत ने और अभी तक की ये बॉलिंग एफर्ट नाम रही है उमैद आसिफ के, जिन्होंने बड़ा उम्दा स्पेल किया। 5 ओवर में 17 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया और उसके बाद से ये रिकवरी फेज 35 रन की शराकतदारी 52 गेंदों में अब्दुल फसी और उमैर मसूद के दरमियान। कट किया खूबसूरती के साथ, लेकिन स्वीपर कवर पर फील्डर मौजूद। well, इस अंदाज से इस वक्त ये दोनों बैटिंग कर रहे हैं। आई थिंक सो कि जो पावर प्ले का टाइम था काफी गुजर गया। कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा टेक ऑन करना पड़ेगा। पार्टनरशिप गो के 36 पे जा पहुंची, लेकिन वक्त बहुत ले गए। और इन दोनों में से जो रोल्स हैं वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है। कि हमने देखा है कि उमैर मसूद ने इनिंग्स का बड़ा सुस्त रवि से आगाज किया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने गेयर्स बदले हैं। दूसरी तरफ अब्दुल फसी अभी तक सिर्फ सिंगल्स और डबल्स पर ही इत्तेफाक कर रहे हैं। और उस्मान ऐसी लाइन और लेंथ पे बॉल करवा रहे हैं, शायद बैटर के माइंड में भी ये है कि कोई रॉन्ग वन ना निकल जाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैकफुट पे अटैक नहीं कर रहे उनके ऊपर, क्योंकि चौथे ओवर में 17 रन अब तक दिए हैं, विकेट के मुतलाशी हैं। यही ऑन ड्राइव 1 रन के लिए अब्दुल फसी। इनका दूसरा सीजन है, इन्होंने फर्स्ट क्लास में नॉर्दर्न की नुमाइंदगी की पिछले सीजन में। अब की बार रावलपिंडी की टीम का हिस्सा थे।
शुमार भी लंबी बारी करने वाले खिलाड़ियों में होता है। थोड़ा सा तेज और सीधा रहा बॉल, और जिस तरीके से ये बात हो रही थी कि कुछ देर पहले जो पावर प्ले है उसको उसी तरीके से खेलना चाहिए। अब तक कुल 5 बाउंड्रीज आ चुकी हैं, 70वें ओवर का खेल है, और जो पावर प्ले के अगर हम पहले 10 ओवर्स की बात करें तो इनफैक्ट अगर एक एक बाउंड्री भी करें तो लगभग 10 बाउंड्रीज एटलीस्ट इस वक्त तक होनी चाहिए थी। उठा दिया इस गेंद को फील्डर, गेंद दस्तरस से दूर थी और ड्रैग डाउन ये बॉल था, इसको सही तरह पिच नहीं कर पाए उस्मान कादिर। सत्रह के बाद 64, 3 विकेटों के नुकसान पर। वेल, अब तक ये जहां पर आप इवेंट देख सकते हैं पाकिस्तान में ARY जैप माइको, उसके साथ साथ PCB का जो YouTube और Facebook का चैनल है वो आउटसाइड पाकिस्तान। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं और आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को देखना चाहते हैं, दीज आर द प्लेटफॉर्म्स। जी हाँ, ये नवाब शाह से ताल्लुक रखने वाले काशिफ भट्टी अब कमेंट्री बॉक्स एंड से आए हैं। बड़ी अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकली, बड़ी जोरदार अपील विकेट कीपर की तरफ से, अंपायर ने नफी में सर हिलाया। ग्रिप देखने को मिला है सरफेस से काशिफ भट्टी के लिए। अच्छा डिसीव किया और फ्रंट फुट पर लेकर आए। देखिए फ्लाइट दिया, लालच भी, थोड़ी देर के लिए जो पिछला पांव है उठा जरूर, क्रीज से बाहर थे, लेकिन इन टाइम शायद मैनेज कर गए। एग्जैक्टली बहुत बड़ी विकेट हो सकती थी इस क्रूशल वक्त पे रावलपिंडी के लिए। वॉचफुली खेलना पड़ेगा यहां पर इन दोनों बैटर्स को। ये इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल स्प्लिट सेकंड का मार्जिन होता है एजाज, और बड़ा जबरदस्त फैसला देखने को मिला अंपायर की जानिब से, क्योंकि बिल्कुल आखिरी लम्हे पर उमैर मसूद का जो पांव है वो क्रीज के अंदर था। तारिक रशीद जो स्क्वायर लेग अंपायर है, ईगल आइज, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि जो खाने का वक्फा है, हल्का फुल्का खाना खाकर हल्की सी खुमारी जरूर आती है, लेकिन एक्टिव है इस वक्त। तक अच्छा ओवर रहा है काशिफ भट्टी का। आज हमने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की तरफ से अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है। मेहरान मुमताज भी, उनको भी विकेट से मदद मिल रही थी, ग्रिप मिल रहा था कि गेंद जो है वो इतनी आसानी से रीड नहीं कर पा रहे थे बैटर्स। अभी तक काशिफ भट्टी का स्पेल भी बिल्कुल इसी तरह का रहा है, 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए हैं। जी राइट ऑन मनी कहना चाहिए कि आते ही अपने पहले ओवर में जो एरियाज हैं अच्छे सेलेक्ट कर रहे हैं, और अब तक सिर्फ 2 रन दिए। आगाज बेहतर था, बैटर को आते ही रिसीव किया, और यही वजह है कि अब अगले 1-2 ओवर तक माइट भी बैटर्स उनको खेलते हुए थोड़ा सा बैकफुट पे रहें, सोच में रहें कि बॉल कहीं ब्रेक ना हो जाए, विकेट ना गिर जाए। अच्छी गेंद, यहां बॉल थी, पड़ने के बाद अंदर की जानिब आई, डॉट बॉल के साथ अच्छे ओवर का इख्तिताम काशिफ भट्टी के। 18 के बाद रावलपिंडी 67, 3 विकेट के नुकसान पर। Bowling over to you as well.
Usman Khader will continue. He's into his 5th over. It's 19 runs given. Controlled bowling by Usman Khader, and that is what we expect from him. He's been such a brilliant operator, a rare talent, and he has mastered it. Googly in the air and away from the fielders. Right between the two. Will run down to third for 4. It was a risky shot, was in the air. Fassi will take it. He knows it, that it was in the air. Slower one into the air. Placed it nicely, but just could not quite control it. It was in the air for a little while. As I welcome along after a very nice lunch, Salman Butt, a very warm welcome to you. Thank you, Ali. Good afternoon, everyone. And India at the moment, they are not on track. They've lost 3 wickets. It's the 19th over in progress, and they have only 70 on the board with the mainstays of the batting already gone. Lahore Blues desperately need to win this, and they are well on course at the moment. That is well flighted delivery. A dot ball. And Usman Khader, closing in on his 5th over, has been bowling decently. Length, shorter. It's been flat batted for a couple of runs by Fassi. This partnership is just building at the moment. 47 of 69 delivery. It seems like that they're going to take this game deep and then see what happens, because they lost 3 wickets early on. Zishan Malik, Umar Amin, Haider Ali, 3 top batters. But now these 2 young batters, they're taking it deep. 19 gone, 72 for 3. चलो मैक्सिमम पे 3 है 63 dot balls already. That's more than 10 overs. 37 singles, 5 twos, 0 threes. Hero of the previous game, the batting hero, Bilawal Bhatti, is on our screens along with Umar Amin, who is already gone. And maybe the talk is about Bilawal. You have to repeat that. Because if they get to that total, maybe Bilawal has a big role to play then. We shall know. It's Kashif Bhatti to operate now. Bowling slow within the stumps, asking the batters to take the risk. Umair Masood is looking in good touch. At the same time, he must be feeling the pressure. Yeah, you make a good point when you say that. They're going to take it to where Bilawal Bhatti can come and play a cameo. For that to happen, these two need to bat long, maybe till 35th over. Then expect something magical again from Bilawal Bhatti to happen after 35 overs. But if you lose your wicket now and allow Bilawal Bhatti to come early, then it will be a little too difficult for him. But yes, last 10 overs, Bilawal Bhatti is your man. He's done that already. That's where you would ideally want him to come. In the previous game where he got those 70-odd runs, that was a bit too much to do for him, but he did that magnificently. And he did a lot more than what should be left to him. So maybe that's why I say maybe he could be the hero again, but not every time you want to leave him too much to do. And this one, maybe a chance. No, one bounce to the fielder. Didn't time, and he would thank God for that it was mistimed to an extent where it did not get to the fielder. Yeah, he's lucky that he hasn't timed it. He just chipped it. Not exactly where he wanted it to go. It's a huge learning curve for both Fassi and Umair, because 2 very quality bowlers are bowling in tandem. 20 overs gone, 74 for 3. सलमान थोड़ा सा इधर हो बस
For Fassi and Umair in this inning, because once you face quality bowlers in a pressure situation, look at that spin. Usman Qadir, we know what he's capable of. So you got to learn from this inning, both of these youngsters. Yes, very encouraging to see Usman Qadir bowl in this Pakistan Cup. He's been flighting the ball, showing us his variations with good flight, spinning the ball, taking wickets as well. And then asking the batter to come across his off stump. And once it starts to drag him away, then that will be a good place to come in with a quicker one, the flipper within the stumps. But firstly, he has to make him play consistently towards covers and point. Googly this one, and this time not timed again. Will go to the deep cover man for one. It was the Googly. I think the batter read it, but he could not execute the stroke that he was looking to play. 50 partnership, important one, coming off 79 deliveries. Two young batters of Rawalpindi. Can they take it deep? Can they take it long? Shorter one, pulled, there is protection. Yeah, you were talking about Usman Qadir. It just surprises me a lot that a bowler of his quality hasn't bowled his full quota of overs. That's where they've been missing out on Usman Qadir. And we've been discussing about Usman's quality. And another thing that surprised me, in fact shocked me, was that he did not play Qaeda-Azam Trophy, just one game. And that too in the last game, last pool game. Salman, what do you have to say about that? Well, absolutely true, Ali. That was the case. And the one game that he played was on an absolute green top, where he took 6 wickets, where the fast bowlers had 21 for 5. They had Karachi on the first day. So that is the kind of pitch it was. And they played only 2 fast bowlers and 2 spinners and 2 keepers in that game. So strange tactics, but definitely Usman is someone who needs to play a full season to get his bowling the desired lines and lengths consistently that he can produce in international cricket. He'll have to play a couple of seasons. Again, a quicker one. Usman just needs to bowl his leg spin most of the time. Over bowled, 21 gone, 77 for 3. And it's even stranger that Pakistan national side is also searching for a quality spinner. And here we have somebody who has almost touched Pakistan side, played a few games. He comes back to domestic cricket to get his rhythm back, to get his line and length right, and he doesn't play. That is very surprising. I think there needs to be a check that somebody like him, who will definitely be needed in Pakistan side sooner or later, he should get maximum gains and maximum exposure at this level. Very well done. Yes, the domestic team's selection process has to relate to the international needs of the Pakistan team. Remember this. Oh, this is a big stroke over square leg in the gap. Beautifully struck. 4 runs to the left-hander. An elegant sweep. Calculated risk, this one. So talking about the system, the selection has to relate. Is the replay. Picking it outside the off stump and depositing it over square leg. Good stroke that. Good one-day shot. So basically, this is where you prepare players for the international circuit. And this is a place which feeds your international team with their requirements. And if you are looking for a certain product, let's say leg spinner in this case, you have to make sure that 2 or 3 who are in competition, they need to be appearing in every game. And if they don't, then how come you're looking for someone? And if you're really looking for someone and he's not playing, doesn't make any sense. Absolutely, 100%. And leave about the spinner, a leg spinner. You need a spinner at international level for Pakistan team. We're struggling there. We do have Noman Ali who plays Test match cricket. Sajid Khan, he's not the regular member anymore. Osama Mir has just been included. But they're not enough. They're just 3 or 4 bowlers.
You need quality bowlers. You need bowlers of international quality. Kashif Bhatti is definitely one of them, but Usman Qadir definitely has to top the list. We have seen many spinners around the world. Well, the over bowled, 22 gone, 83 for 3. Many spin bowlers or any cricketers around the world, when they come up for their first showing at the international level, if they're not that good, we have seen them come back in 2 or 3 years, really developed, and they look like they belong to the international circuit later on. And if you have identified a talent once, then definitely you have to give them a proper run. Salman, one example, the biggest example that we have seen recently has been Usama Mir. He was given the full go of Pakistan Cup matches last year. He was the bowler of the tournament, and that changed his luck. He was included in the Pakistan side because of that performance, because he was bowling so well. His rhythm, his line and length, his control was immaculate, and he was taken to a World Cup. Same should be happening to Usman Qadir as we see a change in bowling. Another all-round cricketer, off spinner, another spinner who Pakistan really is looking at. 38 wickets at this level, 6 for 26 is best. Partnership 59 with this single. Umair, Masood and Fasi. I really want Fasi to go and get a big one. Something what Shan Masood did for Karachi. Can he be, I'm not saying exactly like him, but can he play out of the skin? Can he take his team deep and long till the end? Because he has that potential in him. It's all about executing it and valuing your wicket. Big one, lofted into the gap, but there is no need because this has gone all the way to mid-wicket boundary for a 6. Well, to start with, the matchup has gone into the stands. First one to the left-hander, and he has swept it over mid-wicket into the chairs, and he's got 6 handsome runs off this stroke. The big gap over there between the sweeper and mid-on, there's a huge gap. The whole mid-wicket area, the cow corner is empty, and the batter had that in mind, and once Qasim Akram pitched in his zone, he had no second thoughts. So Fasi is on 43. Partnership is looking good. And now an easy single. So good batting this. They get a boundary and then they start rotating strike. That's it, how you build up partnerships. And especially by the time you realize another 10 overs and they'll be 160 odd for 3, game on. Yeah, he's been well supported by Umar on the other hand. It's very important that your partner keeps rotating the strike. Don't let the pressure get to you, because once you start playing those blocks and dot deliveries, the pressure definitely gets to you, especially in a run chase. 257 the target for Rawalpindi. Another one lofted, again in the gap, but very well done. He had a long way to cover, just restricting these batters to one. Umar Siddiq was the fielder that time. Yes, the moment he sees ball pitching closer to him and outside the off stump, and he definitely has that big gap in mind over mid-wicket, and he doesn't shy away from the stroke. And this one has been driven, just the one, to the fielder who was in the ring at mid-off, over bowled. 23 gone, 94 for 3, Pindi. All eyes on Fasi at the moment, because he's the not out batter on 45 alongside Umar, who's on 30. Umar Amin did get a start, couple of boundaries, but he lost his wicket to Umaid Asif. All 3 batters going to Umaid Asif. So the dugout, as you can see, Umar Amin,
He doesn't want to take his pads off. Obviously, he wanted to be there till the end, bat for longer periods. Not to be some good bowling, definitely, from the Lahore Blues bowlers. 3 early losses. And 3 senior men, Umar Amin, Zishan, Haider Ali, having played international cricket, 2 of them, they needed to be there. And that's why Rawalpindi was facing early trouble. But these 2 youngsters are putting up a good partnership now. Once again, confidently driven. He was down the ground. He's responding to the flight. Every time he sees the ball in the air, he steps towards it. That's a good thing to see in the young batter. And this one has been placed through the third region. And it might go to the boundary. Salman Ashad is making good ground. And he's able to stop 1 run for his team. 3 to Fussy and Pindi. Both these batters looking good. They are creating scoring opportunities and playing sensibly as well. Yeah, this is giving Rawalpindi the hope, this partnership. They can still chase down this total. It has kept them in the hunt, this partnership. 73 at the moment, coming from 2 young batters. Just heartening to see, especially Fussy. I'm really looking forward that he scores a big one, 100, a big 100. Because he's very technically very sound. Somebody who values the wicket. There's nothing flashy about him. Very cool and calm customer. Oh, he's drawn well. Good call by Umair, putting the pressure on the fielder. Qasim Akram. Single brings up the 100 for Rawalpindi in just 24 overs after losing 3 wickets. Nice bunch of lads, youngsters mostly, other than Bilawal Bhatti. Everyone else, youngsters, energetic, well led by Umar Amin. He's fit, Bilawal Bhatti. Bowled a spell of 7 good overs today. Also batted well in the previous game. I was not saying about his fitness, but of his age. Let me complete, Ali. Between those games, he took 2 matches rest as well. You said it right. Cuts straight to the man. But there is nothing taking away from Bilawal Bhatti. The way he's motivated still to play cricket, still to make it big. It's not easy when you're not playing international cricket. No, still on 49, Fussy. Anyways, he's fit enough, good enough. He's bowling well. And you need a senior person in your team as well to lead the young boys. And this one has been driven through the point and the cover region for 1. And he goes to 50, a very elegant looking 50 for Fussy. And he has to convert this into a big score because he carries the chances of the Rawalpindi team with himself. Second 50 in his second List A game. Consecutive 50s for him. Wonderful. He's got a good future, I tell you. This lad can bat. And this is poor, down the leg. The keeper unable to collect it. But will be 3 runs. And 1 of the wide will make it 4. An extra ball to be bowled by Qasim Akram here. And he's already conceded 16 runs and he's only bowled 1.5 overs so far. So this is not the stage where they can afford such overs. Especially when the partnership is on, you need to be really tight. Let the batters do the job. Wow. Have a look at that for placement. Waited for it, played it late, played it in the gap.
Superb batting by Fassi. Sensational stuff. Is not done yet. He's looking for a big one. Yes, rocked on the back foot, perfect position to cut, and he put it in the gap. An absolutely gorgeous stroke that. He certainly has some good cricketing shots up his sleeve, and he is comfortable doing that. Doesn't have to do anything extraordinary. So he's 54 of 68, and if he can just keep going and quickening up his strike rate from here onwards, he will be a real threat to the Lahore Blues. One ball to go in the second over for Qasim Akram. He's already given away 20 runs. And the partnership is just beginning to flourish the way that Rawalpindi want them to. He reminds me of the person on my left. Very technically good, technically correct, both left-handers. 109 for 3. अच्छी सेंचुरी बनाई है फसी ने, उमर उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो तीसरे स्पेशलिस्ट पेसर हैं उनकी कमी महसूस की है लाहौर की टीम ने इस पिच पर, क्योंकि 3 स्पिनर्स जो हैं वो अगर बॉलिंग करें तो निस्बतन आसान हो जाते हैं हालात बैटिंग टीम के लिए। बिलखसूस तब जबकि तीनों जो हैं वो रेगुलर स्पिनर्स ना हो, उसमें से 2 रेगुलर हैं, एक पार्ट टाइम स्पिनर है। और जब बैटिंग अच्छा करती है, बैटर्स सेट हो जाते हैं, पिच आसान हो जाता है, तो फिर स्पिनर्स पे रन्स करना 5 फील्डर दायरे के अंदर होते हुए कदरे आसान हो जाता है। विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे जो कैच गिराया उसका भी नुकसान हुआ। लाहौर को आसान कैच था फसी का, जो लेना चाहिए था जुनैद अली को, वरना हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। चौथे बैट्समैन आउट हो जाते उस मरहले पर। अच्छी रनिंग, खेलते ही दौड़ पड़े, स्ट्रोक के साथ ही फसी। इम्प्रेसिव लगे अभी तक फसी। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी अच्छी है, स्ट्रोक्स भी अभी तक जो लगाए हैं उसमें टेक्निक भी अच्छी डिस्प्ले कर रहे हैं, और रिस्की नहीं खेलते, कैलकुलेटेड शॉट्स खेलते हैं जिसमें मिनिमम रिस्क इन्वॉल्व है। और यही एक ऐसी खासियत है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बैटर्स को चाहिए होती है। और यहाँ पर एक मॉडर्न स्ट्रोक है तो बहुत पुराना, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा खेला जाता है, रिवर्स स्वीप। 4 रन्स बनेंगे यहाँ, स्लिप के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे, हालांकि खेलना पॉइंट से दाएं तरफ चाहते थे, लेकिन रिजल्ट वही जो ये चाह रहे थे उमर। स्कोर पहुंचा 115 पे और उमर 37 रन्स पर। जहाँ जल्दी रिवर्स खेलने के लिए चले गए, ये स्वीप शॉट खेलते हैं रिवायती, और ये गैर रिवायती था, हमने सर को हिलने नहीं दिया। इस बार पिच तक पहुंचे लेकिन फ्लैट है काशिफ भट्टी। अच्छा मुकाबला जारी है काशिफ और उमर के दरमियान, 115 पर 3। तुलफसी अपने दूसरे मैच में दूसरी 50 बनाई, और ये वो कट था जो थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर था। बहुत ही खूबसूरत शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से, एक अच्छा वनडे स्ट्रोक है ये जब स्क्वायर लेग दायरे के अंदर हो, और फिर एक खूबसूरत मिड विकेट के ऊपर छक्का लगाया। कासिम अकरम को आते ही इन्होंने अटैक किया और एक अच्छी 50 कंप्लीट की। बहुत ज़रूरी इनके लिए कि अपनी इस इनिंग्स को लंबा करें। इस पार्टनरशिप का अगले 60-70 रन करना बहुत ज़रूरी पिंडी के लिए। 90 रन की ये पार्टनरशिप हुई है
इस वक्त गेम रुक के भी नहीं आ रही स्पिनर की सुबह की निस्बत, इसलिए स्ट्रोक प्ले खासा आसान हो गया, स्ट्राइक रोटेशन आसान हो गई है। इसे लेफ्ट हैंडर जो है आसानी से निगोशिएट कर रहे हैं ऑफ स्पिनर को भी। 7.47 इस वक्त रन बनाने की दरकार औसत है, एक नज़र जो है इस पे भी रखने की ज़रूरत है। अगर ये 35 ओवर तक अगर ये जबकि अभी 8.5 ओवर पड़े हैं, अगर ये उसमें 55 to 60 रन बना लेते हैं तो आखिरी 10 में आजकल 70-80 रन का बनाना कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन ज़रूरी बात ये होगी कि कितनी विकेटें अपने लिए बचाते हैं और कितने सेट बैटर्स आखिर तक मौजूद होते हैं, क्योंकि चेस का सेटअप ऐसे ही होता है। और कॉन्फिडेंस इन्हें यह भी होगा कि बिलावल भट्टी फॉर्म में है, यहाँ पर उन्होंने 69 रन की इनिंग खेल के इनको पिछला मैच जितवाया था, जबकि ये 86 पे 5 आउट हो चुके थे। सो ये पार्टनरशिप का अगले 10 ओवर्स में 60 से 70 रन करना और क्रीज पे रहना बड़ा क्रूशल। जी हाँ, जो दरकार औसत है इनकी ये 5.7 5.75 शुरू में थी, और अगर ये उस पे भी चलते हैं तो आखिर में जो गेंदों और रन्स का इस वक्त फ़र्क है, ये आखिरी 10 ओवर्स में भी वो ख़त्म कर सकते हैं। इस बार बड़ा याला शॉट खेला, इंतज़ार किया फसी ने और कट कर दिया इसे पॉइंट के पीछे 4 रन्स के लिए। इस तरह की जो बैटिंग है ये बॉलिंग साइड को बहुत तंग करती है, क्योंकि इसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। जब भी ये स्ट्रोक खेल रहे हैं बड़ी अश्योरेंस के साथ और बड़ी नपी तुली बैटिंग है ये, यहाँ पे कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। और ऐसे में बॉलर्स को बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो क्या बॉलिंग करें, क्योंकि जब अच्छा बॉल करते हैं तो फिर बैटर्स उसको सिंगल कर लेते हैं। ये अभी देखिए स्ट्राइक और रोटेट दोनों की तरफ से बड़ी जहीन बैटिंग की जा रही है, और एक चौका और 5 सिंगल्स के साथ बासानी 9 रन हासिल किए इस ओवर में। 27 ओवर 124 पे 3 पिंडी। सारे बारी बारी जा रहे हैं, अब जरा बाकी रोक के रखना है, किसी को सीरियस होगा कोई प्रॉब्लम तो फिर है। नौजवान टीम है रावलपिंडी की, उमर अमीन इसके कप्तान हैं। आज नए फास्ट बॉलर्स को आजमाया गया, उन्हें खासा मुतासिर किया वैस अनवर ने, जहां दाद खान को मौका मिला है इस सीरीज़ में। आज नए विकेट कीपर रजाउल को हमने देखा विकेटों के पीछे। बिलावल भट्टी अलबत्ता वो पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन आज बड़ी जान मारी बिलावल भट्टी ने, 7 ओवर्स किए और बड़ी एनर्जी के साथ वो बॉलिंग की। बैटर्स के लिए एक टफ टाइम था वो, यहाँ पे एक बुरा बॉल था जिसे आई एम श्योर के फसी बेहतर प्लेस कर सकते थे, लेकिन खुशकिस्मत रहे काशिफ भट्टी। डॉट बॉल हुई और यहाँ पे एक और अच्छा स्वीप शॉट, 1 रन ही बनेगा। ये पार्टनरशिप अब 100 की हो गई, 3 हिस्सों में दाखिल हो गई। 25 रन पर तीसरी विकेट गिरी थी जब हैदर आउट हुए 2 रन बनाने के बाद, और उस वक्त मुश्किल का एक पहाड़ खड़ा हो गया था रावलपिंडी के लिए। और प्ले में 3 विकेटें गिरने के बाद आसान नहीं होता मैच में वापसी करना, लेकिन किया है इन दोनों ने। थोड़ा सा उमैर को भी अब पुश करना होगा, यहाँ पे अकेले फसी पे रिलाय करना नाइंसाफी होगी। उमैर सेट हैं, तकरीबन 60 बॉलें खेल चुके हैं और ड्राइव किया इस बार, लेकिन 1 ही रन बनेगा। एक बाउंड्री अगर ओवर में लगती रहेगी तो ये हदफ फिर कहीं नहीं जा रहा। लेकिन सलमान, अगर थोड़ी देर के लिए कप्तानी की जो कैप है वो अगर आप पहने हैं तो जो लाहौर की टीम है ये क्या कर सकती है इस पार्टनरशिप के रिदम को तोड़ने के लिए? क्या फास्ट बॉलर्स की तरफ ये देख सकते हैं 1-2 ओवर्स के लिए, क्योंकि दोनों एंड से स्पिनर्स पर ये रिदम जो है ये बढ़ता जा रहा है इस पार्टनरशिप का। देखिए बिल्कुल दोनों प्रीमियर फास्ट बॉलर्स ने अभी 5-5 ओवर्स किए हैं, और यहाँ पर जो 10 ओवर्स में टोटल 30 रन दिए दोनों फास्ट बॉलर्स ने और 3 विकेट्स हासिल किए हैं। तो आप उन्हें वापस ला के 1-1 2-2 ओवर करा सकते हैं, और फिर भी आप उनके 6 ओवर्स आखिर के लिए बचा सकते हैं।
और आपका लेग स्पिनर अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आई कि उन्हें अभी तब्दील क्यों किया गया। कासिम अकरम ने 2 ओवर्स में 20 रन दिए, फिर उन्हें तीसरा ओवर दे दिया गया और अब उन्हें 3 में 29 हो चुका है। तो कैप्टन को जब मोमेंटम बॉलिंग का बिल्ड हुआ है, अगर आप खुद से बॉलर को चेंज करेंगे तो आप तो बैटर्स को रिलीफ दे रहे हैं। जहां फास्ट बॉलर को लाने का फैसला किया है पवेलियन एंड से। उमैद आसिफ ने अपना जो पहला स्पेल था वो शेलैंड से किया था। 5 ओवर 17 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की। यहाँ एक बार फिर विकेट की ज़रूरत है आज, क्योंकि हुनैन शाह नहीं खेल रहे तो उसकी भी तलाफी करना है यहाँ पर उमैद आसिफ को। यहाँ इनके पास क्या ऑप्शंस होंगे? नई गेंद पर सीम मूवमेंट थी, बाउंस मिल रहा था, अब इस मौके पर ये परेशानी कैसे खड़ी कर सकते हैं? देखिए उमैद आसिफ बड़े एक्सपीरियंस बॉलर है, जाहिर है इस पे लेंथ तब्दील होगी। अब बॉल उतना स्विंग नहीं होगा तो थोड़ा बैटर से दूर, थोड़ा हार्ड लेंथ के ऊपर बॉल करेंगे। और चेंज ऑफ पेस इनका बहुत अच्छा है, बहुत ही डिसेप्टिव है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर चेंज ऑफ पेस के लिए अपनी ग्रिप बदलते हैं। ये देखिए चेंज ऑफ पेस था, बैटर जोर से खेलना चाहते थे लेकिन बॉल आया नहीं। तो ये खासियत है उमैद आसिफ की, ये बहुत ही डिसेप्टिव है और बहुत ही लास्ट मोमेंट के ऊपर ये अपनी फिंगर्स को स्प्लिट करते हैं, जिसकी वजह से फिर बॉल की पेस बिल्कुल नहीं आती बैटर को। उमैद आसिफ जो है उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है यहाँ पर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट। रावलपिंडी आकर साल तक लिस्ट ए क्रिकेट का तजुर्बा है, तीनों फॉर्मेट्स खेलते रहे डोमेस्टिक क्रिकेट में। और ये बैट पर लगी, सवाल पूछा पलटकर, लेकिन अंपायर ने सुनी अनसुनी कर दी। तारिक रशीद अंपायर थे और काफी जल्द आज उन्होंने डिसाइड किया। थोड़ा ऊपर लगा था ये, वरना पिछले मैच में हमने देखा कि कुछ देर बाद एक फैसला उन्होंने किया, काफी देर उन्होंने फैसला महफूज रखा, लेकिन आज बहुत जल्दी डिसाइड किया उन्होंने कि बॉल ऊपर लगी है। ये एलबीडब्ल्यू की कम अपीलें अंपायर सुनते हैं इस पिच पर, ज्यादा तवज्जो भी नहीं देते। कॉट बिहाइंड करार दिया था तारिक रशीद ने पिछले मैच में, जिसका तज़किरा भी सलमान ने किया। लेकिन वापस आना होगा। लाहौर का जो कॉम्बिनेशन है ये मुतासिर लगता है, इतना ये बॉलिंग अटैक है ज़्यादा मुतवाज़िन नहीं लग रहा। हुनैन शाह को आज आराम दिया गया है। इसके अलावा एक और फास्ट बॉलर थे अली शफीक, जो सियालकोट के हैं, लाहौर से खेलते हैं, वो स्क्वाड के साथ नहीं है। हसीबुर रहमान ऑफ स्पिनर हैं और 2 बैट्समैन हैं, फाद उस्मान और शुएब अकरम इस टीम में। देखिए मेरा ख्याल है कि ये काशिफ भट्टी की जगह हसीबुर रहमान के साथ जाना चाहिए था इन्हें, क्योंकि एक तो इस टीम में लेफ्ट हैंडर ज़्यादा हैं, दूसरा हसीब बहुत ही बाइक ऑफ स्पिनर है और साथ अच्छी खासी बैटिंग भी करते हैं, पूरी बैटिंग करते हैं। तो ऐसे में ये दोनों ऑप्शंस इनकी कवर हो जानी थी। अभी ये एक बॉलर शॉर्ट लग रहे हैं, एक रेगुलर बॉलर, एक स्पेल इनको पूरा कासिम अकरम और हुसैन तलत से करवाना पड़ेगा और वहाँ पे इन्हें कहीं ना कहीं कैपिटलाइज कर सकती है पिंडी की टीम। क्योंकि अभी हुसैन तलत ने 3 ओवर्स कराए, 3 कासिम ने, तो 3 ओवर्स जो है ना वो नॉन रेगुलर बॉलर्स ने करने हैं। कदमों का इस्तेमाल किया, उड़ाया इसे स्क्वायर लेग के ऊपर, तो ये बड़ा छक्का 70 पर जा पहुंचे, बिल्कुल खातिर में नहीं लाए यहाँ उमैद आसिफ को। जी हाँ, ये शॉर्ट बॉल था और इसका पूरा फायदा उठाया, बहुत ही खूबसूरत पुल स्ट्रोक, और बिल्कुल इसे नीचे खेलने की कोशिश नहीं की उन्होंने, बस इसकी मदद की और इसको पहुंचा दिया उन्होंने पिंडी स्टेडियम की सीढ़ियों के अंदर। ये देखिए चार्ज किया, शॉर्ट बॉल था लेकिन चूके नहीं, उसको टेक ऑन किया और बहुत ही अच्छी टाइमिंग और एक लंबा छक्का। तो ये वो बाउंड्री है जो हर ओवर जिसकी ये तलाश में, और इन्हें एक बार फिर वो बाउंड्री मिल गई है और अब यकीनन इन्हें सिंगल्स की तरफ देखना है। फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार भी रन्स मिलेंगे और 4 ठहरे दौड़ते हुए आए यहाँ पर काशिफ भट्टी, लेकिन मौका नहीं मिल सका।
उमैद आसिफ को आड़े हाथों ले रहे हैं फसी। जी बिल्कुल, उमैद आसिफ को ठीक है, उन्होंने छक्का लगाया, लेकिन यहाँ पर इस मोमेंट पे इन्हें यह भी ख्याल रखना है कि अपनी विकेट नहीं गंवानी, और ये रिस्की हो सकता था। लकी रहे, ये कोई इतना अच्छा स्ट्रोक नहीं था। लकी 4 रन्स इनको मिले हैं, लेकिन इनकी जिस तरह की आय सेट है, जिस तरह आसानी के साथ ये रन्स बना रहे हैं, इनका विकेट पे रहना बहुत ज़रूरी है। और जब आप बगैर रिस्क के इतने शानदार स्ट्रोक्स खेल रहे हैं, तो फिर आपको अपनी जान जो है उसका रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है। इस वक्त जो फील्ड है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग के लिए ही लगाई गई है। डीप स्क्वायर लेग है, डीप पॉइंट है, इसके अलावा फाइन लेग और डीप थर्ड मैन भी है। 1 रन हासिल किया, ये बेहतर शॉट था फसी का। 140 पर 3। ये ऑन टाइम है उस्मान? Bowling change. Right arm over. दोनों एंड्स पर फास्ट बॉलर को इस वक्त काम में ला रहे हैं, क्योंकि विकेट बहुत ज़रूरी है ब्लूज के लिए। रावलपिंडी की टीम ने अच्छा कमबैक किया। नौजवान टीम है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में इस बार ये जो इलाका है अपने टाइटल को डिफेंड नहीं कर सके थे, लेकिन वनडे क्रिकेट में नौजवान खिलाड़ियों ने मनवाया अब तक खुद को। जी हाँ, इस वक्त स्क्रीन पे पिंडी रीजन के कोचेस समीउल्लाह न्याजी, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, बहुत ही शानदार बॉलर थे अपने प्लेइंग डेज में और दोनों तरफ बड़ी महारत से बॉल स्विंग करते थे। और उनके साथ फील्डिंग कोच राहील मजीद, जो कि एक हार्ड हिटिंग बैटर थे, ओपनिंग बैटर थे। और सलमान इरशाद आए हैं इस टाइम। और जब से ये पाकिस्तान कप चल रहा है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि नया टैलेंट कौन सा है, कौन सा बैट्समैन है। तो आज एक बैट्समैन है जिस पे आप कह सकते हैं कि अपने दूसरे मैच में जिस तरह की वो बारी ले रहे हैं, डेफिनेटली इनमें ये टैलेंट है टू मेक इट बिग। जिस तरह की बारी ली है, जो स्ट्रोक्स इनके पास हमने देखे हैं, और चौके के बाद जिस तरह सिंगल करते हैं, इसका मतलब है कि बड़ी इनिंग के बारे में सोच रहे हैं कि लंबा स्कोर करना है। ऑल्दो एक शॉट इन्होंने फोर्स करने की कोशिश की है, लेकिन दूसरा मैच है और मेरा ख्याल है कि बहुत ही शानदार इनिंग इनकी तरफ से। अच्छा बाउंसर आसान नहीं होता इस सेक्शन के बाउंसर पर शॉट खेलने के लिए जाना, और ये वाइड भी थी। ओवर के शुरू में जाहिर है अगर ये बाउंसर कर दिया है, ये सामने आने से चाहते हैं कि गुरेज करें बैट्समैन सामने आने से। दोनों तरफ से मेन बॉलर्स को वापस लाएं। जरूरी है कि इन 2-3 ओवर्स में इन्हें विकेट ना दी जाए, चाहे एक आध ओवर में 5-6 रन्स भी बने, लेकिन इन दोनों में से अगर किसी को विकेट ना मिली तो लाहौर ब्लूज के लिए बहुत परेशानी होगी, क्योंकि 3 ओवर्स अभी नॉन रेगुलर बॉलर्स ने करने हैं और 2 सेट बैटर्स खेल रहे हैं। अच्छे बैट्समैन है उमैर, पाकिस्तान अंडर 19 के लिए वर्ल्ड कप खेले थे बांग्लादेश में, वहां पर इन्होंने सेंचुरी बनाई थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में। अब्दुल फसी हैं, खड़े वापस भेजा। अब्दुल फसी हाल ही में वेस्ट इंडीज में जाकर वर्ल्ड कप खेले थे, ओपनिंग बैट्समैन थे। कासिम अकरम जिस टीम के कप्तान थे। कुछ वक्त ज़रूर लगा है उन्हें अपना लिस्ट ए का डेब्यू करने के लिए, बट जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने हार्ड टाइम यूटिलाइज किया है, क्लब क्रिकेट खेली है, क्योंकि जिस तरह की इनिंग खेल रहे हैं, बहुत कम यंगस्टर्स हैं जो इस डिटेल और इस थिंकिंग के साथ इनिंग खेलते हैं।
तो ये खुशहाइन चीज़ है कि टारगेट की चेज में एक बाउंड्री लगती है तो फौरन स्ट्राइक रोटेशन पे चले जाते हैं। समझदारी का मुजाहरा किया अभी तक। आसान नहीं है एलबीडब्ल्यू मिलना। खाब का बॉलिंग एक्शन जो है वो लासिम मलिंगा जैसा हो और गेंद लगी है सीधी आकर विकेटों में, लेकिन पहुंच गए थे लेग बाई के रन होंगे। रन नहीं रुक रहे, हालांकि फील्डर्स जो हैं करीब लेकर भी आए हैं। लाहौर के कप्तान स्पिनर्स की जगह दोनों एंड पर फास्ट बॉलर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रन रुकने में नहीं आ रहे। पिछले ओवर में चौका और छक्का लगा था, इस ओवर में ज्यादा खतरा मोल लिए बगैर 6 रन इन दोनों ने बना लिए। और रावलपिंडी में रन इतनी आसानी से रुकते भी नहीं है। एक बार जब बैट्समैन सेट हो जाए इनिंग्स शुरू करना मुश्किल होता है यहाँ। 30 ओवर का अख्ताम, 146 पे 3 रावलपिंडी। Right arm over. वो उमर चले गया बाहर। उमर 15 ओवर्स का खेल बाकी है, 111 रन की जरूरत। सारे जतन कर रहे हैं इमरान भट्ट, उस्मान कादिर को आप वापस आए और अच्छा खेल रहे हैं। लेग स्पिन बॉलिंग को भी यहाँ पर फाइन स्वीप किया, पैडल किया इस गेंद को। तीसरे रन के लिए भी वापस लौट जाएंगे। देखिए यहाँ पर शॉर्ट फाइन लाने की ज़रूरत है। अब शॉर्ट मिड विकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रन रेट इस तरह का है, आपको विकेट्स चाहिए। आप बैटर इतने सेट हैं कि वो विदाउट रिस्क रन्स ले रहे हैं, तो जब आप उनको इतनी वेकेंट स्पेसेस देंगे, खाली जगह ज़्यादा देंगे, तो वो तो उसको बड़े मज़े से पुर करते रहेंगे। यहाँ पर ज़रूरत है विकेट लेने की, तो अगर आप स्लिप नहीं रखना चाहते तो फिर उसको एग्जैक्ट रन सेविंग पोजीशन पे लाना चाहिए। ये अच्छी डिलीवरी, जितना यहाँ पर बाउंस मिल रहा है वो मदद है उस्मान के लिए, कोई मुजायका नहीं। अगर स्लिप रख लें ये राइट हैंडर उमैर के लिए, क्योंकि बैट्समैन को एक पैगाम जाना भी बहुत ज़रूरी होता है कि बॉलर आपको आउट करना चाह रहा है। जी हाँ, यहाँ पर विकेट ही है जो लाहौर की तरफ मैच को टिल्ट कर सकती है। और ये वो विकेट मिल गई, गुगली किया जिसको उमैर जो थे वो अपनी लेग साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन शायद बैट का फेस जल्दी क्लोज किया और टॉप एज आसान कैच वापस उस्मान कादिर को, और वो मकसद जिसके लिए इन्हें वापस लाया गया था अपने तीसरी बॉल पे उन्होंने पूरा कर दिया। जहाँ पहले स्पेल में अच्छी बॉलिंग की लेकिन कामयाबी नहीं मिली और ये रीड कर गए थे, लेकिन आखिर में गेंद जो है वो बाउंस हुई और उसके बाद वापस आ गई बॉलर के हाथों में। एक आसान सा कैच उस्मान के लिए अपनी गेंद पर। उमैर मसूद 44 रन बनाकर अच्छी मुजाहिमत करके अब वापस जा रहे हैं 149 पे 4। मुस्तफा विकेट कीपर बैट्समैन रावलपिंडी के इब्तदाई अय्याम में इनके ये दूसरा मैच है। 56 रन से एक ही मैच खेला है, अपने डेब्यू पर निस सेंचुरी बनाई, तो अच्छे रिकॉर्ड के साथ आए, वो कि सैंपल साइज अभी बहुत छोटा है। इस वक्त दोनों बैटर्स जो क्रीज पे मौजूद है दोनों अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं और दोनों ने अपने पहले मैचों में 50-50 रन बनाए हैं। और फसी तो आज भी
तकरीबन 80 रन्स पे खेल रहे हैं और अगर रजा भी आज रन्स बनाते हैं तो बहुत ही शानदार आगाज होगा इस करियर का। जिस उस्मान कादिर 7वें ओवर में है अपने और 32 रन पे एक खिलाड़ी को आउट कर चुके। 150 रन्स पूरे हुए हैं रावलपिंडी के और ये वो विकेट फेस जल्दी बंद कर लिया इन्होंने बैट का, उसको अपनी लेग्स पे प्लेस करना चाहते थे। एक बार फिर कट करने की कोशिश लेकिन बॉल थोड़ा सा शार्प स्पिन हुआ। अब अच्छा खत्म करना है इस ओवर को। उस्मान कादिर ने लेग साइड में एक ही फील्डर हैं मिड विकेट पे, वाइड गेंद की रन नहीं मिल सकेगा तो उस्मान का यहाँ पर बॉलिंग में वापस आना ये कारगर साबित हुआ। उन्होंने कामयाबी दिलाई लाहौर को 150 पे 4। चलो 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 बॉयज, अंदर नहीं कासिम थोड़ा। लेग स्टिक सही है, 2 लेग सही है। काशिफ भट्टी वापस आ गए एक ही ओवर के बाद। इस सेंड से सलमान इरशाद को हटा लिया गया। काशिफ भट्टी इनको उस्मान कादिर पर तरजीह दी जाती रही क्योंकि ज्यादातर पिचेस ऐसी थी जहां पर 2 स्पिनर्स को नहीं खिलाया जा सकता था। कायदे आज़म ट्रॉफी में बहुत ज्यादा कामयाबी मिली नहीं है इनको भी। काशिफ भट्टी कभी भी बड़े स्पिनर नहीं रहे बॉल के, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं और इनकी स्ट्रेंथ है ज्यादा स्ट्रेटर वन पे रिलाय करते हैं। लेकिन हमने देखा कि कदाफी की जो पिच थी वहां पे फिंगर स्पिनर्स के लिए कोई बहुत कामयाब नहीं मिली उन्हें कहीं पर भी। इवन जब लेग स्पिनर्स को हमने देखा तो वो ज्यादा इफेक्टिव नजर आए। रमीज ने 6 विकेटें ली, उस्मान कादिर ने 6 विकेटें ली और हैरान कुन बात यह है कि जिनके पास लेग स्पिनर्स थे उन्होंने खिलाए नहीं वो ज्यादा, और फिंगर स्पिनर्स के साथ ज्यादा टीम्स ने कोशिश की जाने की। पहले मोहम्मद इरफान को मैच खिलाया लाहौर ने, काशिफ भट्टी लाहौर ब्लूज के लिए खेलते रहे, उसके बाद अली मंजूर ने एक मैच खेला और शायद आखिर में आके वो ख्याल आया दोनों टीमों को कि लेग स्पिनर भी हमारे पास हैं। अच्छा रन यहाँ पर हासिल किया। एक बार फिर दबाव में है रावलपिंडी की टीम क्योंकि अभी 104 रन बाकी हैं। बड़ा लंबा सफर लगता है, इस मौके से ब्लूज को फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पर फील्डर्स को और करीब कर सकते हैं। लगता है कि फसी जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को चांस लेंगे और निकले थे उसी इंटेंट के साथ, लेकिन जहीन बॉलिंग काशिफ भट्टी ने गेंद को मजीद स्लो किया और लाइन और लेंथ को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा और मौका नहीं दिया फसी को कि वो बड़ा हिट लगा सके। लेकिन अभी पैनिक होने वाली स्टेज नहीं है, पार्टनरशिप को थोड़ा सा रीबिल्ड करना है। 1 से 2 अच्छे ओवर्स की बात है। रजाउल हसन के लिए जो मिड ऑन के फील्डर थे इनको रख सकते थे आगे। आखिरी गेंद पर 1 रन लिया रजाउल हसन ने। 32 ओवर्स तमाम हुए, 155 पे 4। चले बॉयज राउंड राउंड। ठीक है थैंक यू। बिजी रखा हुआ है, 2 है ये कट। नीचे और हो जाए, 1-2 कदम बस। इसका हाँ मेरे पास 2 हैं। 102 runs of 78 deliveries.
That's what is required for Rawalpindi region. All eyes definitely are on Fuzzy, who's an 81, single-handedly keeping the hopes alive for Rawalpindi. What a magnificent inning this has been from him. Heartening to see a youngster coming at a big stage, playing an inning of this caliber. Naman Chaudhary, in the commentary box with him. A very warm welcome. Good afternoon to you. Good afternoon, Ali. And what a batting display it has been by Abdul Fassi. And the best part about his batting is that out of 81 runs, 32 runs only came of boundaries. And apart from that, he has been dealing in singles and doubles. So that shows the caliber, the class, the quality he possesses. We have been talking a lot about rotating of strike, players playing the number of dot balls. And that has been the missing part in this tournament so far. A youngster stepping up in a big game against a decent bowling attack, scoring good runs. Clever, very clever. And that rotation of the strike is very important, because it will never let you get under pressure of the scoreboard. If you keep on taking the scorecard and just 89 deliveries, that is because he's been taking singles regularly. It's never easy when you lose 3 of your main batters inside 10 overs. And then taking the responsibility on yourself, that's a lot for a youngster. Absolutely, and that was a need of the hour for the Rawalpindi region. They lost 3 quick wickets, and after that, they were looking for a partnership. Both Umair and Fassi were off to a slow start. Cuts and cuts well. Raza will get a boundary. That was a bad ball. Width was on offer. And all Raza had to do was to guide the ball in the gap. Perfect placement. And gets his first boundary. Spin. Nicely placed. Played it late. Played it till the end. Played it in the gap. Better effort was required. It feels like Lahore Blues are just quite easy in the field. Got to be spot on, because this partnership is also starting to build up. 12 at the moment though, but they have Bhatti. Mehran can bat also. 161 for 4. Run is the partnership, and with that we are going to have the drinks break at the Rawalpindi Cricket Stadium.
The best thing that has happened to Pakistan cricket is you can watch the domestic cricket anywhere in the world. If you're in Pakistan, you can go on to ARY Zap, also Myco. And then if you're outside Pakistan, like Shah Faisal, you can go to PCB YouTube channel and Facebook. Brilliant broadcast continued by Trans Group. Just amazing, Naman, how things have changed. The technology has brought up these superstars in front of us. Anyone can see Fussy play a blinder of an inning. Big shot, very big, all the way, 6 runs. That was a flighted delivery. He read the length early. He's picked up the pace. Went out of his crease. Went to the pitch of the ball. And has deposited that towards the mid-wicket fence. He is continuing the onslaught. The little man in some form today. Moves to 88. And now only 90 required of 71. And again, same area, same result. Car corner, 6 runs for Fussy as he moves to 94. Little man with big dreams. Well, not learning the lesson once again. Kashif Bhatti, the experienced Kashif Bhatti, have been taken to the cleaners by the youngster. Abdul Fussy, flighted delivery, stepping out of the crease. No mercy whatsoever. A huge hit. What a start to the over and what a start to the post-drink session for the Rawalpindi team. They are not going to give up easily. 84 of 70. Can he repeat? Can he make it 3 in the throw? Sensible, very sensible. That is what we've been talking about him. Get a boundary early on. And then a couple of singles, a boundary here or there will do your work. And how smart Fussy has been. Change of length on that occasion by Kashif Bhatti. Slightly pitching it shorter. Now that's also the need of the hour from Razul Mustafa, because he's seeing that Abdul Fussy is well settled. He's seeing the ball like a football. Now at this point you can do is that you can play some good shots and you can rotate the strike. That's brilliant running between the wickets. Just so heartwarming to see the game awareness that is being shown by these two youngsters. Yeah, especially Fussy because he's on 80, 94, and look at the way he ran. First one very quickly. Made the second one quite easy. That's good cricket. Very sensible. 15 runs off that Kashif Bhatti over. Expensive over. 34 gone. 176 for 4. How badly Lahore Blues have missed Hunain Shah. They've opted to go for just 2 fast bowlers, and that has definitely dented their chances. Nothing taking away from the quality of the spinners, but they needed an extra fast bowler. Oh, very cute, very cheeky, and equally well fielded by Salman Irshad. Well, they have used a third bowling option as Hussain Talat. He gave away 15 runs in 3 overs, but he's a medium pacer. He's not that express bowler. And if you compare the bowling options that Pindi had, they had Jahadat Khan, Bilawal Bhatti, Awais Anwar, Kashif Ali, 4 front-line seamers. And that is what you require on this Pindi's deck. Good fast bowling options. And that is something that Lahore Blues have missed out on. Yeah, even you look at their 15, the only fast bowler that I see is Hunain Shah. Hasibur Rahman, off spinner. Shoaib Akram, Fahd Usman, both batters. I'm not really sure about Fahd Usman, but... So definitely, yes, they've missed out on 1 spinner. On an important game where they had to win. And now they're struggling. They're paying for that decision.
Sliced it. Oh, that's gone through. That is very poor, and that misfield will bring up his first 100 for Abdul Fassi. Take a bow, young man. You've played a fantastic inning for your team and for yourself. Just the second game at this level. 150 and now 100 for Abdul Fassi. Fantastic inning. Well, the youngster living up to the hype, living up to the expectation, has been provided the opportunity at his home ground, Rawalpindi, to bat up the order. Scored a magnificent ton of 95 balls, and look at the strike rate. 6 boundary, 4 sixes, has been striking at 105. And he has had a brilliant start to his list A career as well. Scored 94 on his first class debut last year, and today has scored 100 on his second game of list A. And how brilliantly has he paced this inning. Numan, first 44 deliveries, he scored 23 runs without a boundary, scoring in singles and doubles. And next 51 deliveries, he scored 77 runs with 6 fours and 4 sixes. How good is that from a young batter from Rawalpindi? Abdul Fassi scoring his first 100 in list A. This is how he did it. He was helped by some poor fielding by Zaid Alam, but he will take it. You need some luck when you've played such a brilliant inning for your team. Just sensational stuff. This is dream stuff by Abdul Safi. Deserves all the credit. He's been dreaming of this moment for his life. Raising your bat and helmet, looking up to the heaven. And if he can win the match for his team, it will be cherry on the top. Yeah, spot on about the way he has progressed to his innings. And we were mentioning earlier on about the game awareness, about how you adapt to the situations, how you understand the conditions. We have seen at this surface, against this bowling lineup, Umar Amin, Haider Ali, Zishan Malik, they all struggled. But the way Abdul Fassi has paced his innings, that was absolutely brilliant. The first 50 came of 67 balls, and next 50 it came of only 28 deliveries. So that is what happens if you spend some time in the middle, if you get your eye settled in, batting becomes a bit easier on this Pindi wicket. Great game awareness also. Oh, wow, wow, wow. How cool is that? I mean, down the track, just punching it through covers. He's making it count. He's going to make it big. This young lad, Abdul Safi. Fassi. Well, oozing confidence and class on this occasion was Abdul Fassi. Stepping out of his crease to Hussain Talak and drilling through the covers. High elbow, good weight transfer, perfect head position. Continuing the good form and the momentum, Fassi. He's putting the pressure right back onto Lahore Blues bowlers, because every time on the first or the second delivery he gets a boundary and then he negotiates, he just maneuvers the field, put the pressure right on the bowling. Look at that, he's making them ball away from him. Lahore Blues are in need of a wicket. Imran Butt, he will be looking at different options, but unfortunately he doesn't have a lot of fast bowling options today. Salman Irshad is bowled decently. 17 runs, couldn't pick up a wicket. Umaid Asif picked up 3 wickets. Probably now is the right time to bring that bowling pair back in. If these two and the remaining batters of Rawalpindi are sensible enough to realize that Hussain Talat and Qasim Akram, they're going to make the 5th bowling option. Wide again. And Hussain Talat is into his 4th over. Qasim Akram is bowled 3 overs, so that makes it 9. There's still 2 overs to be bowled either from him or the Qasim Akram. And if he
can stay along and utilize those 2 overs, that will definitely help their cause, because 68 runs only now to win of 58 deliveries, and if he stays, it's done, because he is playing an inning that he will remember for the rest of his life, because he's single-handedly taking his team home. Yeah, he had a very decent stand with Umair Masood as well. He walked into bat when his team was struggling. They lost 3 wickets. And after that, a very good partnership between Umair Masood and Abdul Fassi. They were reeling at 25 for 3, losing 3 top order batters. Zishan Malik, Umar Amin, Haider Ali. This batting lineup of Rawalpindi, they rely a lot upon these 3 batters. But over the course of last 2 games, previous time around that was Bilawal Bhatti and Umair Masood, and today Abdul Fassi doing the rescue work for Rawalpindi. And I'm pretty sure, Numan, after this inning, he will be counted amongst those 3 reliable batters. The list you mentioned, which includes Umar Amin, Haider Ali, Zishan Malik, and now add another name, Abdul Fassi, to that list. I'm pretty certain that he belongs to that list. He belongs to that level. Ali, there is certain something about the technically correct batters. They can bat at any position. They can score quick runs. They can absorb the pressure. So Abdul Fassi is, I believe, one of those players who are technically very correct. He takes some time in the middle. Absolutely milk the bowlers. So the progression has been great. The composure shown by him, especially when the pressure was on, when 3 wickets were down. And after that, when things started to get better, he accelerated. The way he's slicing them now, it's way too easy at the moment for Abdul Fassi. 36 gone. 109 for 4. The journey of a boy to man, Abdul Fassi, the way he has played, took his time early on, and then he started flowing, runs started flowing from his bat. All sorts of shots, that is the quality. Coming down the track also. Kashif Bhatti hit a couple of 6s to him. Very brave inning by Abdul Fassi, and helped by some average fielding, completed his superb 100. This is definitely going to change his career altogether this century. Getting at a big stage against a quality opponents. 3 overs remaining for Salman Irshad. Now the momentum or the pendulum is swinging towards Rawalpindi. Now can Salman Irshad provide a breakthrough that Lahore Blues are looking for? But currently it seems like it's all way too easy for Rawalpindi. Doesn't seem to be in a hurry. They are getting runs, they're getting boundary, odd boundary every over. The required run rate, it's 7.36, very much gettable. With these 2 batters in the middle, the partnership has raced along to 43 of 34. Yeah, Blues would be hoping that the ball starts reversing. Slower one, beautifully picked. Excellent placement. What a knock this guy is playing. Uppercuts it for 4. Well, he's at that time of his innings where he's dictating the terms. Everything seems to be going right for Abdul Fassi and the Rawalpindi region. Trying to hit the deck hard. It gets way too easier for Abdul Fassi. Raced along to his boundary number 8. What a knock it has been.
61 of 51 now. And with the type of innings he has played, Ali, and has eaten up 104 deliveries. Now Rawalpindi would surely want Abdul Fassi to stick around to finish the game for his side, because he has got his eye settled in. And again, this is just splendid batting by Abdul Fassi. All around the ground, all over the ground. This is what he's doing, and he's brought up 200 for Rawalpindi with that extravagant cover drive. Just sensational batting. Yeah, he took it on the full. Was placed in the gap, getting his 9th boundary. Top edge, has he got that? Has he got that? Yes, Salman Irshad has done the damage. Has provided a much needed wicket to the Lahore Blues side. Much needed, much needed. Very smart bowling. Bowled a few deliveries up to him and then surprised him with a shorter one. That is quality bowling by Salman Irshad, and this is why he was brought back. Just got big on him. Was not expecting it to come that high. And he's such a huge partnership breaker, Salman Irshad. But what an inning we have just witnessed from a 20-year-old Abdul Fassi. 114 of 106 deliveries, strike rate 107. Just wonderful. I totally believe that he deserves a standing ovation from his team members, because he's given them the hope and maybe a chance to win this game. Yes, he did get a standing ovation because he's played like a champion. Bhatti. Bilawal Bhatti. .57 of 49 is what Rawalpindi require. Samiullah Niazi, Rawalpindi region coach, looks worried, but he should not, because this man has got a 69. His listed career best in the last game here at the Rawalpindi Stadium against the Lahore White side. He made sure that Rawalpindi gets over the line. Got over 100 partnership with Umair Masood, but today he walks into bat with Rawalpindi requiring 57 of 49. Sharp endeavour, sharp endeavour. Whenever Salman Irshad is bowling in the death overs, you expect some sort of reverse swing. Bilawal Bhatti is here because Salman Irshad has got the prize scalp of Abdul Fassi. The length ball, trying to guide that one towards a fine fielder, but a good catch there by the wicket keeper Junaid Ali, making sure that he holds on to the opportunity. It was Salman Irshad, the experienced Salman Irshad, providing a much needed breakthrough. Two is the call. They're not going to get it. Wasim Akram very quick. Couple of Bhattis. Kashif and Bilawal. Bhatti to Bhatti. Can be a rhyme. Bhatti to Bhatti. Who's gonna win it? There you see the two Bhattis of Pakistan cricket. Oh, was in the air.
The bowler Bhatti almost won. You were asking me who's going to win. The bowler Bhatti. Yeah, that was a good delivery right within the stumps. Oh, that nearly carried in the air, in the hands of the fielder. Kashif Bhatti has dismissed Bilawal Bhatti. Yeah, not this time. He has to go back. The bowler Bhatti wins. The smile says it all. This was an important wicket. They needed this one. Because Bilawal Bhatti played a brilliant inning in the last time that they played here at Pindi Stadium. But this one, he chipped in just early into the shot. He bowled it slower. And a simple catch for Imran, but he's not going to miss out on those. Bilawal Bhatti going back without troubling the scorers. 201 for 6. मिडल थोड़ा बाहर रखी Mehran Mumtaz walks in to bat at number 8. He can bat. Look at the strike rate, 108. 239 runs in 28 games. Best of 46. Two is the call, but they will settle for a single. You have 44 more balls to come, 55 runs needed. So you should not be impatient. And look at that. Slower in the air. Away from the batter, just driving him into the shot a little early. Oh, what is happening? What is happening? Total confusion. Mehran Mumtaz, what are you doing? It just went right to deep cover. And he probably could not pick the ball where the ball is. Look at that. The batter, the striker had no problems. You got to be trusting each other's call. That is how partnerships are built, on trust. Ali literally begged him. Not once, not twice, but thrice. And rightly so, Numan, because the ball went right to deep cover. You got to be trusting your partner. 38 gone, 202 for 6. And that's what happened. Punched off the back foot. The first call, the second call, and that's the third call. Come on, partner. There was a definite single. Nevertheless, 55 required of 42. Salman Rashad was used to get a wicket, and he did. So he's been replaced now by Umaid Asif. It's a luxury to have a player like Umaid Asif in your side. Somebody who can play a cameo, get you important wickets with the new ball, and then is very reliable at the death also. So he's a very handy wide ball cricketer. The Iron Man of Pakistan cricket. They've lost 6 wickets. They have Kashif Ali, Awais Anwar, Jahadad Khan, the 3 fast bowlers to come. And if Rawalpindi has to win, they have to make sure that these batters bat for at least 20 odd more deliveries. $114 is what Fossey has scored. 44 by Umair Masood. Full toss placed in the gap, but they'll only settle for a single. They've lost wicket at 2 wickets, in fact, at a very important juncture of the game. And at this point, Lahore will believe
that if they somehow manage a wicket, another wicket here, the momentum that has shifted in their favor, they can continue that. Oh, in the air. Ali, that's what happens once you lose two quick wickets. They were going, marching along well for the target. But against a run of play, they lost two quick wickets, and now the pressure has gone back to the Rawalpindi side. Who is going to take them out of the pressure? The two batters in the middle, or the three batters to follow? Good flick of the wrist. Will find the fielder at deep backward square leg. So we're into match number 23 of the Pakistan Cup. 6th game at the Rawalpindi Stadium. So Ali, what has been your favorite memory of this tournament so far? Food. Well, you did not get the food as per your taste or expectations. See, it has to be today. It has to be Abdul Fassi. It's always good to see. It's always heartening. A young batter coming through the system, playing an inning, a mature inning, a responsible inning. It would have been ideal that he finished off the game, but still, 114 of 106 is still very good. Just 20 years of age, Abdul Fassi. And the way he has shown, the maturity that he has shown, you've got to keep your eyes on him. He's one for the future. One. 39 gone, 206 for 6. पार्टनरशिप रही 124 रन की उमर मसूद और अब्दुल फसी के दरमियान। उससे पहले और उसके बाद में चिरागों में ज़्यादा रोशनी नज़र आई नहीं है, इसलिए मुकाबला जो है वो बज़ाहिर इस वक्त लाहौर का तरफदार लगता है, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा खेल के जाना होगा महरान और विकेट कीपर रज़ा को मैदान मारने के लिए, क्योंकि 2 ओवर सलमान इरशाद के बाकी हैं, 2 ओवर्स मज़ीद उमैद आसिफ करने का मजाज हैं। तो ये स्पेशलिस्ट हैं, ख़ासतौर पर सलमान आसान नहीं है डेथ बॉलिंग में इनका सामना करना है एजाज। एग्जैक्टली ऑलरेडी हमने देखा कि एक सेटल बैटर को सलमान ने आउट किया, अच्छी गुड लेंथ पे बॉल थी, तो उनके पास पेस है। इन दोनों को अगर अच्छी बैक ऑफ लेंथ बॉल पे फाइन लेग और थर्ड मैन ऊपर लेकर 1-2 बॉलें टारगेट करें तो माइट भी कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई एक आध विकेट जल्द से जल्द ले सके लाहौर की टीम। पुल करने के लिए गए इनटू द पिच, ये गेंद की शॉट थी और ऊपरी हिस्सा लेती हुई बल्ले का 4 रन के लिए निकल गई। इससे रन रेट जो है वो 8 से अब कम हो गई। अच्छा, खुशकिस्मत रहे यहाँ पर, ट्राई किया और रिजल्ट उनके फेवर में गया। टारगेट यही था कि इससे पीछे पे पड़े बॉल को कहीं ना कहीं बाउंड्री के बाहर पहुंचाया जाए, गो के जो टारगेटेड एरिया था वहां नहीं गई, लेकिन इनफैक्ट 4 रन जरूर मिले।
ये उम्दा शॉट, कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर के फील्डर नहीं रोक सके। रिजवान ने खासी कोशिश की लेकिन गेंद ने रफ्तार तेज पकड़ ली आउटफील्ड में पहुंचकर। उम्दा बैटिंग विकेटकीपर बैट्समैन की। एग्जैक्टली रजाउल मुस्तफ़ा अच्छी निक में, इससे पहले भी चौका और इस दफा बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल बल्ले के नीचे बॉल लगा और परफेक्ट ड्राइव। उसके साथ साथ प्लेसमेंट इतनी अच्छी थी कि फील्डर के ताक्कुक के बावजूद वो इस बॉल को रोक ना पाए। एक्सीलेंट वर्क। एक और अच्छा शॉट खेला, यहाँ पर दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते थे लेकिन उतनी अच्छी आउटफील्डिंग भी। तो इन दो चौकों की बदौलत वापस जो मोमेंटम है और रवानी वो रावलपिंडी की तरफ हो गई है। और 7.50 की औसत चाहिए। 32 गेंदों में 40 रन, कुछ भी हो सकता है। नियाजी बेहद खबरदार टीम के हेड कोच, ये दोनों बैटिंग कर लेते हैं। मेहरान जो हैं इनमें भी सलाहियत है। जब पाकिस्तान अंडर 19 के लिए भी खेले थे तो वहां पर भी कुछ अच्छी इनिंग्स देखने में आई थी इनके यहाँ। जी एग्जैक्टली, इस वक्त समीउल्लाह काफ़ी एक्टिव है, पैगामात पहुंचा रहे हैं इन द सेंटर। और बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सा बॉलर इसका कौन सा ओवर करवाए, उसके साथ साथ जो प्लेसमेंट है फील्डिंग की वो भी। यहाँ मिड ऑफ को भी ये पीछे भेज सकते हैं ताकि यॉर्कर करें, और की है यॉर्कर। क्या ये बल्ला टकराया था? यकीनी तौर पर 2 आवाजें आई थी और अंपायर ने इसे रन करार दिया। स्टंप्स के बिल्कुल सामने थे रजा। जी हाँ, लगता है यही है कि बल्ला लगा है जिसकी वजह से सरवाइव हुए, बिल्कुल सामने थे। अदरवाइज सलमान ने क्वेश्चन जरूर किया यहाँ पर पूछा, लेकिन उन्हें भी इस चीज का आइडिया था कि बॉल कहीं ना कहीं बल्ले के साथ भी लगा। 40 ओवर गए, 219 पे 6। ओए 5 में 37 भाई, 5 में 37 मसला ही नहीं है, आराम से। एक मैच हराया वो नहीं हराना। उमैद आसिफ अपना 8वां ओवर लिए आ रहे हैं। ये तो जाहिर है कि फ्लैप के भी ऊपर लगी, ज्यादा काबिल तवज्जो अपील नहीं थी। अब मुश्किल ये है, सलमान इरशाद का 1 ओवर है, इसके बाद इनका भी 1 ओवर उमैद आसिफ का होगा। यही ये देखना है क्या गेंद दोनों पैड्स पे तो नहीं लगी थी, क्योंकि बल्ला इनका लेट आया है। बल्ला यहाँ दिखाया था रजा ने अंपायर को। गेंद ऐसा लगता है ये सीधी पैड पर लगी है, दोनों पैड्स पर लगी। ये 2 आवाजें थी वो पैड टू पैड की थी। खुश नसीब रहे यहाँ पर रजा। जी एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर एक विकेट रावलपिंडी के लिए बड़ा धचका हो सकती थी, क्योंकि ये पार्टनरशिप 19 पे 16 बॉल है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मौजूद है इन दोनों बैटर्स में, रजा और मेहरान के दरमियान। खासा साया आ गया है पवेलियन की छत का। मुकाबला बेहद दिलचस्प, कोई भी टीम बाजी यहां से मार सकती है। अपने आसाब पर काबू रखना वो बेहद ज़रूरी। और लाहौर के कप्तान की मुश्किल ये है कि ये 2 ओवर्स के लिए, क्योंकि 2 ओवर्स जो हैं ये इनके स्ट्राइक बॉलर्स के बाहर इनको कराना होंगे। इमरान भट्ट को हुसैन तलत ने 4 ओवर में 23 रन दिए हैं, क्या उनकी तरफ देखेंगे? काशिफ भट्टी, उस्मान कादिर जो 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स से वो अपना कोटा पूरा कर चुके। कासिम अकरम और हुसैन तलत
इन्हीं की तरफ देखना होगा और ये बहुत बड़ी मुश्किल है और उसी का इंतजार है शायद पिंडी को। और तजर्बे और टैलेंट के दरमियान अब चॉइस होगी, हुसैन तलत या कासिम अकरम। उमैद आसिफ को यहाँ से रोक भी सकते थे, लेकिन विकेट लेना भी उतना ही जरूरी है। कटर किया, एक रन का और इजाफा, क्योंकि यहाँ अगर विकेट गिर जाती है तो फिर जो नॉन रेगुलर बॉलर्स हैं वो भी खेल में रहेंगे टेल अंडर्स के सामने। यही इस वक्त चाल चली है इमरान ने। आपको कहीं ना कहीं चांस लेना पड़ता है, मेरे हिसाब से ये बेहतर है उमैद का जो ओवर है, क्योंकि अब तक इसमें सिर्फ 3 रन बने हैं, 3 बॉलें बाकी हैं। एक आध एफर्ट डिलीवरी करनी होगी उमैद को ट्राई करने के लिए कि एक आध विकेट वो अपने इस ओवर में ले लें। खासी सोच विचार उमैद जो हैं रुके हुए हैं, पॉइंट को आगे लेकर आए। ये खिलाड़ी डीप कवर्स में, डीप थर्ड मैन, डीप फाइन लेग, शॉर्ट ऑफ लेंथ की तवक्को थी मेहरान को। माइंड गेम्स भी चल रही हैं, फील्ड को देखकर भी मेहरान को अंदाजा हो गया था इस लेंथ का। यार उन्होंने डेलिबरेटली बल्ले का जो रुख है, फेस है, उसको जमीन की तरफ रखा। उनको भी इस चीज का बखूबी अंदाजा है कि अगर मैंने हवा में खेला और कहीं मिस हिट हुई तो एक बहुत बड़ा ब्लो होगा उनकी टीम के लिए। एजाज, काशिफ, उवैस अनवर, जहांदाद खान, इनमें बैटिंग की कितनी सलाहियत है? वेल, काशिफ अली किसी हद तक, उवैस अनवर और जहांदाद खान से आप 50-50 तवक्को कर सकते हैं कि लॉन्ग हैंडल के साथ को बड़ी हिट लगाएं, लेकिन उस वक्त उन पे प्रेशर भी होगा कि अगर ये 2 आउट होते हैं और वो आते हैं तो विकेट कॉलम का जो प्रेशर है उसको सस्टेन करने की एबिलिटी कम होगी। एक रन और जमा हुआ मजमुए में। हमारे स्टैटिस्टिशियन जो हैं फरहान निसार, उनको सलाहियतों पे भरोसा है जहांदाद खान की। उनका ये अंदाजा है कि ये बेहतर बैटिंग कर सकते हैं या हीरो बन सकते हैं। होम ग्राउंड है और उनकी टीम मैनेजमेंट, उसके अलावा पिंडी के कुछ जो फैंस उनके यहाँ पर हैं, यकीनी तौर पर उनकी भी ये निगाह होगी कि आज पिंडी की टीम जीते। क्या बड़ा शॉट खेलने के लिए जाएंगे या इंतजार करेंगे उन कमजोर ओवर्स का? मेहरान अच्छी क्रिकेट, समझदारी के साथ गेंद को धकेला और रन के लिए आगे बढ़ते चले गए। दबाव में लिया उन्होंने मिड ऑफ पर मौजूद खिलाड़ी को। 225 पर 6। वेल, मैच विनिंग नॉक की यहाँ पर ज़रूरत है इन दोनों बैटर्स से, वन ऑफ देम एटलीस्ट, क्योंकि हमने देखा था कि जिस वक्त लाहौर की टीम बैटिंग कर रही थी तो उनमें भी हुसैन तलत, कासिम अकरम, उमैद आसिफ, उमर सिद्दीक, इन प्लेयर्स ने अच्छी बैटिंग की थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग। और लगभग 30वें ओवर तक आप कह सकते हैं कि दोनों टीम्स के जो स्कोर्स थे तकरीबन बराबर थे। फ़र्क पड़ेगा तो इन्हीं आखिरी 5 ओवर्स में, जिनमें 47 रन्स बनाए थे लाहौर की टीम ने 1 विकेट खोकर, लेकिन चूंकि उस वक्त वो टारगेट की तरफ गामजन थे, यहाँ पर अब ताक़ुब करना है पिंडी की टीम को, तो यकीनी तौर पर जो प्रेशर की सिचुएशन है वो डिफरेंट है। हुसैन तलत के ये पीछे पड़ेंगे, इनमें से एक जो है उसको जाना होगा। हुसैन तलत के पीछे 24 गेंदों में 32 रन बनाना है और इसमें इनका अंदाज भी, वो भी देखना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। क्या ये बड़े शॉट्स के लिए जाते हैं या फिर, क्योंकि रन्स और गेंदों के दरमियान ज़्यादा फर्क है नहीं। ये उम्दा शॉट खेला 1 ही रन के लिए, कट शॉट खेला। काशिफ भट्टी को आना पड़ा, क्योंकि ये एक ऐसा हदफ है जो आप खतरा मोल लिए बगैर भी इस तक पहुंच सकते हैं। विकेट पे ठहरने की जरूरत है, पिच बिल्कुल ट्रू है,
फील्डर पीछे खड़े हुए हैं, दायरे से आ रहे हैं। जी, और जो शॉट मेकिंग है उसमें कॉन्फिडेंस झलक रहा है कि हमने देखा कि अभी इवन जब मेहरान ने स्ट्रोक खेला तो अच्छा मिडल किया और हवा में नहीं था, प्रॉपर एक रेटिंग शॉट था। मिड ऑफ को आगे बुला लिया गया रजा के लिए। तीनों फील्डर स्क्वायर लेग बाउंड्री पर हैं। बैकफुट पर खेला, यहाँ पर दूसरा नहीं मिल सकेगा। अच्छा एंटिसिपेट किया हुसैन तलत ने। ये बड़ा कलीदी ओवर है। सलमान इरशाद, उमैद आसिफ, उनका एक ओवर, इसके बाद बाकी बचा है। स्पिनर से इस वक्त कप्तान जो है वो बॉलिंग कराने के मूड में नहीं है, इमरान भट्ट। या अभी पहले भी मैंने बात की कि यहाँ पर शायद तजर्बा जो है हुसैन तलत का उस पर ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, कि कोशिश है कि हुसैन माइट भी उन्हें एक विकेट लेके दे सकें, लेकिन फिलहाल जो रन्स हैं वो कंटेन कर रहे हैं। स्टम्प्स को छोड़कर चली जाती है और आगे भी निकल गए थे। गेंद हाथ लगी नहीं पॉइंट के। जी हाँ, हालांकि ज्यादा वाइड नहीं थे क्रीज के, लेकिन ऑफ और मिडल स्टंप अंपायर को दिखाई दे रही थी, इससे फैसला करना आसान हो गया बैट्समैन की तरफ। हाँ, थोड़ा सा डाउट जरूर क्रिएट किया यहाँ पर बैटर के माइंड में, कि बॉल को थोड़ा तेज भी किया, विकेट टू विकेट रखा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने ऑफ स्टंप पे बॉल देखा, थोड़ा बैक ऑफ लेंथ था, वो अच्छा कनेक्ट किया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगा कि लेफ्ट हैंडर मेहरान जो है वो थोड़ा सा फंसे इस बॉल पे। तो अब देखना है कि इन बाकी की जो 3 बॉलें लाइन ऑफ अटैक क्या ऑफ स्टंप पे रखते हैं या विकेट टू विकेट। स्कूप किया इसे और फाइन लेग के हाथों में गेंद पहुंच गई। उस्मान कादिर ने कोई गलती नहीं की, ज्यादा रफ्तार मिली नहीं ये शॉट खेलने के लिए मेहरान को, और यूं ये 7वीं विकेट रावलपिंडी की गई और खेल और ज्यादा दिलचस्प। बड़ा वाइटल ब्रेक थ्रू, यहाँ पर इनोवेट करने गए, सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए, बॉल को स्कूप किया लेकिन हवा में ज्यादा चली गई, उसमें इतनी फोर्स नहीं थी कि फाइन लेग पे खड़े हुए उस्मान कादिर को बीट कर सके। अच्छा कैच थामा और अहम विकेट, अहम शराकत टूटी, जो कि सेंसेबल जा रही थी। मेहरान मुमताज 10 रन बनाकर वापस हुए 227 पे 7। जानदाद खान 6 मैचेस 6 इनका बेस्ट है, लेकिन आज उनकी टीम को इससे ज्यादा की एनर्जी, इससे ज्यादा का वक्त दरकार है ये मैच जीतने के लिए। अराउंड द विकेट लेफ्ट हैंडर के लिए हुसैन, से उठाकर खेला, ये अच्छा शॉट है और नहीं पहुंच सकेंगे लॉन्ग ऑन के फील्डर। चौके के साथ शुरू हुए जहांदाद खान, तो बैटिंग सलाहियत है नंबर 9 में भी। जी हाँ, बेसबॉल की तर्ज का ये स्ट्रोक था, खड़े खड़े ये बॉल जो कि थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर था, अच्छा मैनेज किया ये देखते हुए कि मिड ऑफ का फील्डर, मिड ऑन का फील्डर भी इनफैक्ट दायरे के अंदर है। और शायद अंदाजा नहीं था हुसैन तलत को यहाँ पर कि इस तरह के बॉल पे इस तरह का रिप्लाई आ सकता है, लेकिन क्रिकेट बाय चांस। लेग साइड की फील्ड को और खोल दिया है मिड विकेट, और खिलाड़ी पीछे चले गए। फाइन लेग आगे, मिड ऑफ भी। एक ही रन यहाँ पर बन सकेगा। हुसैन तलत की ज्यादा रफ्तार है नहीं, पीछे गेंद गिरा के ये अपना रोप जमा सके टेल एंडर पे भी। या इस सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे चांदाद, तो 232 पे 7।
वेल पार्टनरशिप सेंसिबल थी, अच्छी बन रही थी, अच्छा चल रहा था पिंडी के लिए सब कुछ, लेकिन यहाँ पर इनोवेट करने गए और अपनी विकेट थ्रो कर दी। उस्मान कादिर ने बाकी का काम किया। अब सूरत हाल रावलपिंडी के लिए बेहतर नहीं लेकिन नामुमकिन नहीं। दोनों टीम्स इस वक्त सर तोड़ कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरीके से लाहौर एक दो अच्छी तेज विकेट ले पाए। अब ओवर्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे। कासिम अकरम 3 ओवर करवाए उन्होंने, 29 रन दिए, थोड़ा कॉस्टली रहे। एक बात तय है कि अगर ऑल आउट नहीं हुई रावलपिंडी की टीम तो वो जीत जाएंगे मैच। गेंद जो है अपने पैड पे खेल दी, लेकिन इनके इरादे खतरनाक लगते हैं। जहांदाद खान के ये नंबर 9 नंबर 10 से ये बेहतर बैट्समैन लगते हैं, अच्छे स्ट्राइकर लगे, क्लीन स्ट्राइकर। जी हम अब तक का जो साउंड है इनके बल्ले से जब जब बॉल लगा बेहतर रहा, और ये भी बड़ी हिट हो सकती थी, मिस हिट, और उसके साथ साथ खतरनाक भी था, बिल्कुल स्टंप्स के सामने क्रॉस खेला उन्होंने। आखिरी ओवर है उमैद आसिफ का। सलमान इरशाद को मुमकिन है कि इनिंग्स का आखिरी ओवर दिया जाए। उम्दा यॉर्कर, लेकिन अच्छा निगोशिएट किया एक और रन के लिए। इस वक्त 1 रन की फिक्र नहीं है लाहौर को, क्योंकि इस दौरान अगर विकेट गिर गई तो जाहिर है और मुश्किल होगी फिर पिंडी को, वो डॉट डिलीवरी भी होगी। जब नया बैट्समैन आएगा तो उसको और डॉट गेंदें करना आसान हो जाता है बॉलर्स के लिए। और जानदाद में थोड़ा सा ट्रस्ट है रज़ाउल मुस्तफ़ा को, क्योंकि जिस अंदाज से वो इस वक्त बैटिंग दे रहे हैं, उन्हें चार्ट पे लॉन्ग हैंडल यूज करके ऑन साइड पे एक बड़ी हिट अगर लगती है, एक आध चौका या छक्का इस ओवर में, तो यकीनी तौर पर सांस लेना आसान होगा रावलपिंडी की टीम के लिए। फिर रफ्तार खासी कम कर ली, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट भी और अच्छी प्लेसमेंट। जहांदाद खान ने ये दूसरा चौका लगा दिया इनटू द पिच। गेंद की थी, रफ्तार कम की उमैद आसिफ ने, लेकिन कोई मुश्किल पेश नहीं आई यहाँ लोअर ऑर्डर बल्लेबाज को। यहाँ अच्छा रीड किया, अर्ली पिक किया उन्होंने स्लो बॉल को, और देखा कि मिड विकेट का फील्डर काफी वाइड है, नीचे है, उससे काफी फाइन खेला। तो उन्हें प्लेसमेंट का तो अंदाजा है कि कहाँ पर फील्डर मौजूद है। इवन 8वें या 9वें नंबर पे अगर बैट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको सेंस है क्रिकेट की, स्ट्रोक्स की, कि कहाँ पर उन्हें पिक करना है, कौन सा स्पॉट पिक करना है। इनको यॉर्कर के लिए जाना चाहिए, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर भी कर सकते हैं, ये ज्यादा बेहतर लाइन थी। लेंथ जो है उसमें भी थोड़ा सा रद्दोबदल किया, गेंद को निस्बतन आगे किया। 14 गेंदें 18 रन्स। मैदान पर साए लंबे हो रहे हैं, दोनों टीमों की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। दिलों की धड़कनें जो हैं वो भी, उसमें भी रद्दोबदल हो रहा है हर गेंद के साथ। एक्शन से भरपूर ये क्रिकेट मैच रावलपिंडी स्टेडियम में। अच्छी डिलीवरी सीम होकर गई, तेज से लगी पैड पर, एक लेग बाई का रन। वेल विकेट टू विकेट इस वक्त बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि दोनों बैटर्स, अगर रजा की बात करें या जानदाद की, ऑन साइड या ऑफ साइड पे अगर उन्हें जरा सा भी लूप होल मिला तो यकीनी तौर पर वो जाएंगे बॉलर के पीछे। लेकिन यहाँ पर विकेट टू विकेट माइट भी क्रॉस खेलते हुए उन्हें परेशानी जरूर हो रही है। जो बॉल बिल्कुल पैड के ऊपर पड़ा, थोड़ा सा पेस भी उम्मीद की जो वो बेहतर है। मिड ऑफ को अगर ये पीछे भेज देते हैं उमैद आसिफ, तो उस सूरत में वाइड यॉर्कर कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त लेग साइड में तीनों फील्डर बाउंड्री पर हैं, इससे मिड ऑफ का दायरे में रहना जरूरी। स्लो यॉर्कर किया, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा
यहाँ पर माइंड गेम जो है आखिरी गेंद पे जीती उमैद आसिफ ने। 240, 7 खिलाड़ी आउट, अभी भी 17 रन बाकी। वेल इंपॉर्टेंट ओवर, क्या इसी ओवर में रावलपिंडी की टीम ऑल द गो जाएगी, लेकिन उसका मुकाबला इस वक्त सलमान इरशाद से, जो कि बैक ऑफ लाइन डिलीवरीज काफी बेहतर करवा रहे हैं और टेल के लिए शायद यही बेहतर ऑप्शन है। यह मुमकिन है कि 20 से ज्यादा अगर रन दरकार होते तो ये रोकते, आखिरी ओवर तक इंतजार करते सलमान इरशाद का, लेकिन यहाँ क्योंकि 17 रन रह गए थे 12 गेंदों में, तो नहीं चाहते इमरान बट कि पानी सर से ऊंचा हो जाए। उन्होंने हुसैन तलत को रोक लिया है और अपने मेन बॉलर को लेकर आए हैं शेललैंड से। थर्ड मैन पर खिलाड़ी को आगे लाया गया। इस वक्त डीप कवर पॉइंट है, लेग साइड में लॉन्ग लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, 4 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर। तो अगर ये लेंथ गेंद करेंगे या इनटू पिच करेंगे तो भी स्टंप्स में करना होगी। यॉर्कर स्टंप में किया और रन आउट का मौका जो है वो जाता रहा। 2 रन हासिल किए जिसमें एक इजाफी था ओवर थ्रो का। दबाव महसूस कर रहे हैं रिजवान हुसैन और लाहौर ब्लूज। जी हाँ, यहाँ पर कुछ किस्मत भी खेल गई रावलपिंडी के हक में, क्योंकि यहाँ पर अगर डायरेक्ट हिट लगती तो विकेट मिलता लाहौर को, लेकिन किस्मत में इरबा हुई, डायरेक्ट हिट नहीं लगी और 1 रन का इजाफा फालतू, इनफैक्ट कहना चाहिए कि गिफ्टेड रन था। यहाँ ऑन साइड में कोई खिलाड़ी नहीं था दायरे में बैकअप करने के लिए। अच्छा यॉर्कर, फिर जल्दी करनी होगी। इस बार पहुंच गए अपनी क्रीज में, स्टीयर करना चाहते थे रजा, उनको चौका ना लगने पर थोड़ी सी मायूसी हुई। जी हाँ, काफी खुशकिस्मत भी रहे, क्योंकि जिस अंदाज से ये स्ट्रोक लगाया था, प्रॉपर्ली मैनेज किया कि थर्ड मैन की तरफ से ये बॉल जो है वो वाइड निकल जाए, लेकिन थर्ड मैन जो कि दायरे के अंदर थे उन्होंने भी अच्छा काम किया, इसको निकलने नहीं दिया। या अगर इनको 10 रन भी आखिरी ओवर में दरकार हुए तो मुमकिन है यहाँ पर विकेट नहीं गंवानी चाहिए रावलपिंडी को। सलमान को विकेट से अगर ये महरूम रखते हैं अगली 4 गेंदों में और ये मजीद 2-3 रन भी बनाते हैं तो भी ये अच्छी हालत में होंगे। उठाकर खेल गए, पूरी तरह गेंद बल्ले पर नहीं आई लेकिन रन मिल जाएंगे और वो भी 4। हुसैन तलत की दौड़ रायगा गई और काशिफ भट्टी की भी जहादात बड़ी अहम इनिंग्स खेल रहे हैं जो कि फैसला कुन साबित हो सकती है इस मरहले पे। एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं कि फुल ऑफ एनर्जी और बल्ला उन्होंने स्विंग किया, टारगेट बेहतर था और उस टारगेट को अचीव किया 4 रन्स की सूरत में, जो कि थर्ड मैन दायरे के अंदर था, ये इलाका खाली था। स्वीपर कवर ने भी काफी कोशिश की लेकिन बेसूद, तो ये वैल्यूड 4 रन्स। और लेग साइड में खेल गए और यहां पर मौका है, गेंद गिरी 2 फील्डर्स के दरमियान और दूसरा रन भी यहां अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। यहां हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया, ज्यादा देखा नहीं गेंद को फील्डर की जानिब और रनिंग पर तवज्जो दी जहादात ने। एग्जैक्टली, क्योंकि इस सूरत हाल में जब बॉल हवा में जाता है तो बैटर की निगाहें मैक्सिमम बॉल की तरफ होती हैं, लेकिन अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो भागते रहे और तेज भागते रहे, जिसकी वजह से उन्हें इतना लूप टाइम मिला या बफर टाइम मिला कि वो दूसरे के लिए भी पलटे। जहां कमजोर थ्रो थी और अच्छी डाइव की, अपनी जान पे खेल के पहुंचे जहादात खान। हाई बॉलिंग में उनने खातिर का कारनामा नहीं किया लेकिन बैटिंग में वो एहसास दिला रहे हैं अपनी अहलियत का।
अब 8 रन 8 गेंदों में, और अभी भी लाहौर को विकेट नहीं मिली, लेकिन रावलपिंडी को 1 रन। ये अच्छी फील्डिंग, एंटिसिपेट किया, दौड़ते हुए पहुंच गए। 250 रन रावलपिंडी ने मुकम्मल किए। इससे पहले एक मैच में पिंडी को 1 रन से शिकस्त हुई थी, इसी से मिलते जुलते रन चेज में पेशावर के सामने। लेकिन आज अभी 3 विकेटें बाकी हैं, होम ग्राउंड है। जी हाँ, एग्जैक्टली। और जैसे आपने बात की कि साए इस वक्त काफ़ी लंबे हो गए इस ग्राउंड पे, और सलमान इरशाद ने इस ओवर में ज़्यादातर पेस पे रिलाई किया, कोई वेरिएशन जो थी वो देखने को नहीं मिली। आखिरी बॉल इस ओवर का ऑन साइड पे तेज हिट है, उससे बढ़कर दूसरे के लिए भी वापस हुए। अच्छा ओवर रावलपिंडी के लिए, एक्सीलेंट बैटिंग इन दोनों यंग बैटर्स के दरमियान, और रावलपिंडी की टीम पहुंची 252 पे। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव, 44 गए, 7 का नुकसान। वेल, थिंक टैंक्स इस वक्त इसी सोच में है कि जो कुछ भी हो रहा है वो बेहतर हो रहा है रावलपिंडी के लिए। अब सिर्फ 5 रन चाहिए 6 बॉलों में, और जबकि लाहौर को अच्छे 2 बॉल चाहिए जहां पर वो विकेट ले सके। अब देखना यह है कि नर्व किसके बेहतर रहते हैं, किस्मत कहां पर किसका साथ देती है। लेकिन फिलहाल पिछले कुछ 20-25 मिनट से रावलपिंडी की जो नर्व्स कहना चाहिए प्लेयर्स की वो बेहतर रही, अच्छे कहना चाहिए उन्होंने सेलेक्ट किए शॉट्स को, और बॉलिंग के अगेंस्ट जो कि बुरी नहीं थी, अच्छी बॉलिंग थी, अच्छा डिस्प्ले किया क्रिकेट बैटिंग का। लाहौर ब्लूज को अपने तीसरे रेगुलर सीमर हैं उनकी कमी शिद्दत से महसूस हुई है इस पिच और कंडीशंस में। आप सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स के साथ मैच नहीं खेल सकते, लेकिन अभी 5 रन बनाना है रावलपिंडी को, और जहां दाद ऐसे खिलाड़ी हैं ये आखिरी गेंद की तरफ नहीं ले जाना चाहेंगे मैच को। ये जल्दी वार करेंगे हुसैन तलत पे, रफ्तार आहिस्ता की और बड़ा शॉट खेला, सनसनीखेज छक्का, और मैच का इख्तिताम रावलपिंडी के हक में हुआ। जहां दाद खान ये लेट हीरो साबित हुए हैं होम टीम के लिए, और उन्होंने अपने आसाब पर मुसलसल काबू रखते हुए पिंडी को ये कामयाबी दिला दी। इस नौजवान टीम ने आज धाक बिठाई है। बड़ा हदफ था 258 का, आखिरी ओवर में उन्होंने हासिल किया 7 विकेटें गंवा के। एक्सीलेंट सेंसिबल बैटिंग, इवन टेल की जानिब से भी रावलपिंडी की टीम का आगाज स्लो था, बल्कि इनफैक्ट कहा जाए 3-4 विकेट ऊपर गिरे, जो कि आगाज बेहतर नहीं था, लेकिन मिडल और टेल ने ऐसा काम कर दिखाया। बहुत खूब स्लोवर वन, और उसका खड़े खड़े जवाब दिया जानदाद ने, और क्या खूब जवाब दिया, ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि मैच भी लाहौर के मुंह से खींच लिया। वेल डन, एक्सीलेंट जानदाद खान, बहुत जबरदस्त अंदाज में बैटिंग की, और जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि ये नर्व्स गेम था। रावलपिंडी की टीम ने जो कि 3 विकेट से जीता, लेकिन लाहौर की तरफ से भी अच्छा फाइट देखने को मिला। गो के बॉलर्स चेंज होते रहे, कोशिश यही थी कि कोई ना कोई विकेट ले पाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द ओवर्स तकरीबन 41 से 45 तक जो विकेटें हैं वो उस तरीके से नहीं गिरी, और रावलपिंडी की जो बैटिंग थी वो बेहतर रही, जवाब बेहतर रहे, वेरिएशंस जो इस्तेमाल की बॉलर्स ने उन पे रिप्लाई बहुत बेहतर रहा बैटिंग का रावलपिंडी की। फुल मार्क्स टू देम, होम ग्राउंड पे मैच जीता, और क्या जबरदस्त दिन रहा आज इस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, इस पाकिस्तान कप में एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला। दोनों साइड से अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, पार्टनरशिप्स, उसके साथ अच्छी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग कहीं खराब भी रही, कहीं अच्छी भी रही, तो मिला जुला, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रावलपिंडी की जो क्रिकेट टीम है उसने मार्का मारा। यहाँ रावलपिंडी की टीम जो है उसने 45वें ओवर में मतलूबा हदफ हासिल किया 7 विकेटों के नुकसान पर, और इस इनिंग्स की काबिल जिक्र बात अब्दुल फसी की पहली सेंचुरी थी लिस्ट ए क्रिकेट में। 106 गेंदों में 114 रन की बड़ी उम्दा इनिंग्स, 3 विकेटें उनके सामने 25 पर गिर गई थी।
फिर विकेट कीपर उमैर मसूद के साथ 124 रन की जो पार्टनरशिप थी वो मुकम्मल तौर पर खेल में वापस ले आई। होम टीम को अच्छी इनिंग्स खेली। उमैर ने 44 रन की, 37 रन रजाउल हसन ने बनाए। रजाउल मुस्तफ़ा 2 विकेट कीपर के साथ पिंडी की टीम खेली थी। सेल्फी मोमेंट, हैप्पी मोमेंट इनफैक्ट कहना चाहिए रावलपिंडी के क्रिकेट टीम के लिए। तो बहुत जबरदस्त अंदाज में जानदाद खान, वेल डन, यू डिजर्व दिस। बॉलर्स की कहना चाहिए कि आखिर में जाकर पिटाई हुई, जहां पर 3 विकेटें ली। उमैद आसिफ ने एक विकेट शेयर किया, सलमान इरशाद ने, उस्मान कादिर ने और हुसैन तलत और उनके साथ काशिफ ने, लेकिन उनका जवाब पायदार नहीं रहा, जिसकी वजह से रावलपिंडी की टीम ये मैच अपनी फेवर में ले गई आखिरी ओवर में। कल हम एक निगाह डालते हैं रावलपिंडी की इनिंग पे इन हाइलाइट्स के जरिए। आगाज जो है वो थोड़ा सा शेकी रहा रावलपिंडी का, जब एक के बाद एक विकेट गिरती गई, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट शॉट्स भी हमें देखने को मिले। उमर अमीन जो कि कप्तान थे, उन्होंने कहीं कोशिश ज़रूर की कि बेहतर खेले, लेकिन ऑन द वे अपनी विकेट गंवा बैठे। उमैद आसिफ ने 3 विकेटें हासिल की, अच्छी बॉलिंग करवाई, ऑफ स्टंप उनका टारगेट रहा, एजेस निकलते गए, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रॉप कैचेस भी हमें देखने को मिले। उसके साथ फिर मिडल में जाकर कहीं थोड़ा सा संभाला दिया रावलपिंडी की टीम को मिडल ऑर्डर ने, और कोशिश यही थी कि यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता रन बनाते जाएं, लेकिन उस्मान कादिर आए, उन्होंने डिस्टर्ब किया रावलपिंडी की बैटिंग को। लेकिन फसी की बैटिंग एक्सीलेंट, सेंचुरी मेकर, इंप्रूविंग एवरी गेम। फिर सलमान इरशाद आए, यहाँ पर थोड़ा सा ड्रामा देखने को मिला कि रावलपिंडी की टीम की विकेटें गिरना शुरू हुई और लग रहा था कि प्रेशर में आएगी रावलपिंडी की टीम, लेकिन जवाब बेहतर था। विकेट गिरे जरूर, लेकिन साथ साथ रन्स बनाते गए, जिनकी रफ्तार बेहतर रही, और जानदाद खान आते साथ ही एक्सक्लूसिव बैटिंग की और आखिर में मैच अपने फतहगर इनिंग खेली। वेल, नोमान चौधरी इस वक्त मौजूद हैं आज के मैन ऑफ द मोमेंट के साथ, आइए उनकी तरफ चलते हैं। जी, मेरे साथ फसी मौजूद है, जिन्होंने आज बड़ी जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की। फसी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, किस तरह महसूस कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। मेरी पहली लिस्ट ए सेंचुरी थी, और बस टीम मैनेजमेंट ने जो प्लान दिया था उसकी कोशिश की। उन्होंने कहा था तुमने लंबा जाना है अगर तुम सेट हो जाते हो। फसी, 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी, 35 रन पे 3 टॉप ऑर्डर के एक्सपीरियंस खिलाड़ी आउट हो गए। क्या कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन हुई आपकी और उमैर मसूद की विकेट के? बस हमारी यही बात हो रही थी कि हम लंबा लेके जाएं, जितना हो सके हम इनिंग्स को लंबा करें, तो आखिर में हमें पता था कि स्कोर आ जाएंगे। आपने इनिंग्स का आगाज जो है वो कदरे स्लो किया था, और किस तरह प्रोग्रेस रही आपकी कि इनिंग्स के जो पहले 50 रन थे वो अपने 70-75 गेंदों पे किया, उसके बाद जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सेलरेट किया आपने? बस यही था, शुरू में आपको पता है हमारी 3 अर्ली विकेट्स गिर गई थी, तो कोशिश यही थी कि हम अब लंबा लेके जाएं, तो इस वजह से थोड़ा स्लो खेलना पड़ा। तो जब हमारी पार्टनरशिप अच्छी लगी तो फिर हमने बाउंड्री में। फसी, देखने वालों को बताइए कि आपकी क्रिकेट जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर आपने क्रिकेट खेली, और अब यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा आपका? बस मैंने क्रिकेट, मेरा क्लब है, साका क्लब है, उधर से स्टार्ट किया है, तो बस। और किस तरह देख रहे हैं आगे पाकिस्तान कप के सफ़र को? भाई इंशाल्लाह हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, पूरी कोशिश है, तो इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे सेमीफाइनल और फिर इंशाल्लाह फाइनल। चले, ज़बरदस्त, आपकी इनिंग्स देख के बहुत मज़ा आया। इसी तरह की इंटरटेनिंग क्रिकेट खेलते रहिए। शुक्रिया। ये मोहम्मद फसी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। ओवर टू यू गाइस इन द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू वेरी मच नौमान। फसी के साथ चिट चैट करते हुए लिस्ट ए की पहली सेंचुरी उन्होंने दागी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे, और ये है विनिंग मोमेंट जब रावलपिंडी की टीम ये मुकाबला जीती। जानदाद खान ने ओवर पिच डिलीवरी पे स्ट्रेट ओवर द बॉलर सेट, और अंपायर के सर के ऊपर से शॉट खेला और फतह को हासिल किया रावलपिंडी की टीम के लिए। यह है खुलासा, लाहौर ब्लूज ने बनाए 256 रन 45 ओवर्स में, जिनमें हुसैन तलत के 69, उमर सिद्दीक के 51 रन थे, जबकि इन रिप्लाई रावलपिंडी की टीम 44.1 ओवर्स में 258 रन बनाई। ताक़ुब किया फसी की बेहतरीन इनिंग, जिसमें उन्होंने मोर देन रन अ बॉल खेली और अपने कैरियर लिस्ट ए की पहली सेंचुरी बनाई। उमैर और रजाउल हसन ने अच्छी बैटिंग की, और जानदाद के भी रन्स यहाँ पर काउंट करेंगे रावलपिंडी की फतह के लिए। तो यूं
रावलपिंडी की टीम ने 3 विकेट से आज के इस मैच में कामयाबी हासिल की। पॉइंट्स टेबल पर ये सूरत हाल है। रावलपिंडी की टीम अब दूसरे नंबर पर आ गई है। पेशावर अभी भी नाकाबिल शिकस्त है। आज उनका मैच बारिश की नजर हो गया, इसलिए 1 पॉइंट पर इक्तिफा करना पड़ा। उनके 11 पॉइंट्स हैं। कराची के मैच में भी बारिश हो गई थी, उनको भी 1 पॉइंट मिला। और मुल्तान से जो नेट रन रेट है कराची की वो बेहतर है। लाहौर ब्लूज और लाहौर वाइट्स की टीमें जो हैं ये बॉटम की तरफ चली गई हैं अब आज के नताइज के बाद। कल एक दिन के आराम के बाद यहाँ पर 13 नवंबर को फिर से 4 मैचेस खेले जाएंगे। पिंडी स्टेडियम वापसी होगी लाहौर वाइट्स की। उनका मुकाबला होगा फैसलाबाद से। एबटाबाद जाएंगी फाटा और पेशावर की टीमें। और रावलपिंडी और मुल्तान का मुकाबला शोएब अख्तर स्टेडियम में होगा, जबकि मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम मेजबान ठहरा है कराची वाइट्स बनाम लाहौर ब्लूज मुकाबले के। अब आज के लिए इतना ही। आपकी खिदमत में 2 दिन के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। We have got the news from the center. That's a Rawalpindi side opting to ball first. What a shot, getting a boundary. बोल्ड हो गए, आगे से स्विंग हुई और आखिरकार एक कैच पकड़ा गया। और इस बार रोक लिया और यहाँ कैच आउट हो जाएंगे। यहाँ अगले कदम पर खेला एतमाद के साथ। ये अच्छा शॉट, शानदार तरीके से खेला। And he's given it all away, flicking it with soft hands. जिसको सीधा खेले, लेकिन मिड ऑन पर फील्डर कैच करने में कामयाब हुए। खूबसूरती से खेले, बड़ी उम्दा ड्राइव। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, आउटसाइड एज। आउटसाइड एज और अच्छा कैच। Wow, and we'll look at that replacement. And again, same result. Bring up his first 100 for Abdul Fasi. Take a bow, young man. रफ्तार आहिस्ता की और बड़ा शॉट खेला, सनसनीखेज छक्का और मैच का इख्तिताम रावलपिंडी के हक में हुआ।